जी सर, थैंक यू सर। व्हाट्सएप पर मैंने आपको एक मैसेज भेजा होगा, उस पर आया होगा आपके पास। हाँ
Good morning, sir. सर आपका शायद वॉइस म्यूट में है क्या? No, not coming. It's Is it okay? yes, yes, sir. Now it is coming. So without this speaker, this mic, Okay. it's okay now? Yes, it is Okay. loud. Yes, yes. Good. So I was asking that how is the training now confidence level? Which is the day today? 6th day or 7th? 6th day. Yes, 6th 6 day. days. Today should be the last day? I think so, sir. 50 hours मतलब 7 day होता है या 6 day इसीलिए? 50 hours has to be completed. हाँ. Uh, So I think 6 day means 6 into 8, 48. Maybe today is the last day, or maybe tomorrow. I don't know exactly. But as per the syllabus, what are the chapters uncovered so far? That's what I want to know. yes. Case study has been done or not? Case No, study. case study is not done. Not done. Okay, fine. So I will do it today. What about case law? Case laws are done. I think is that Holland versus Hodgson. Holland versus Oxford. Correct, Yes, correct. that is done. That is done. Yes. All right. So what is left now? Actually, what I was seeing yesterday, in page number, say serial number 7, page number 3. There is one serial number 7. I will come to that page. Good morning, Verma sir. Good morning, everybody. रौनक जी नहीं आए क्या अभी? अभी तक आया नहीं है. बस पिंग करता हूँ. Page number 7. Okay. No, page number 3. Page number 3, item number 7, serial number 7. Page number 3, item number 7. Okay. Page number 3. Valuation of plant and machinery. This is not done. This is done, but I like in that many topics are there. Cost approach, income approach, all these are done. But if you see depreciation and identification and physical verification of plant machinery and equipment, मेरे को लगता है कुछ चीजें हमने किया है, क्योंकि क्वेश्चंस किए थे हमने कक्कर सर का क्लास में. वर्मा सर थोड़ा आप बताएंगे. आई थिंक पूरा चीज कवर किया है ना इसमें, ये जो. This is what I was told, that many chapters have been left. But I could not get full idea that what are the chapters which is left. Leasing is done. Leasing. Leasing. Leasing is done. Okay. Yes. Then Naresh Kumar sir. Mr. Verma, good morning. Good morning, sir. So leasing is done. So then what is left over? Case study is left over. Case law is done. Case law is done. Case law is done. Case study is very important. 20 marks it is. So we will devote as much time as much we can today.
So that is one thing we are going to do. Then you are saying that valuation of plant and machinery. You are saying that income approach is done, cost approach is done. Yeah, market Discounted cash flow method. Cost approach में. Sir, in which page it is? Discounted, I think it is not explained clearly. Actually, I don't remember. So depreciation, you are saying that discounted cash flow, that is, yeah, it was done, income Okay. approach, but little clarity is required actually. And I am finding the depreciation under Income Tax Act. This is, sir, different than the depreciation on which is explained in the cost. Yes, it is different. It is different. So Right. then, I think this paragraph, I think we have to do this depreciation under income tax and useful life to compute the depreciation as per Schedule 2. Okay. And componentization was mentioned, but it was like I'm not very clear. Clear on that? Okay, Yes. fine. ठीक है. Componentization you have not done. Okay. Then further you are saying that depreciation, componentization 2 हो गया. एक और कुछ बोला था अभी आपने just now. ये जो पैराग्राफ है सर, ये जो जिसमें 3 नंबर लिखा हुआ है, कॉस्ट अप्रोच के जस्ट ऊपर में. Just a minute, sir. Cost approach के 7 नंबर में ही नहीं, पेज नंबर 37. हाँ, अभी Chapter ये 7. हाँ, पेज नंबर 4 में, मतलब मिडिल वाला जो रो है वो. पेज नंबर 4 में मिडिल वाला रो. Identification and physical verification of plant and machinery, correct? हाँ, उसी टॉपिक में. Yes. ठीक है सर, और बताएं. आइडेंटिफिकेशन हो गया. देन डिप्रिसिएशन में अभी कंफ्यूजन है, और यूजफुल लाइफ, दोनों चीज में कंफ्यूजन. यूजफुल लाइफ. इनकम अप्रोच यू आर सेइंग हो गया. ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ मशीन टू बी इनकाउंटर्ड, पेज नंबर 6, लास्ट रो. ब्रॉड कैटेगरी ऑफ मशीन, ये हुआ सर. ये हाँ, ब्रॉड कैटेगरी ऑफ मशीन टू बी, नहीं सर, नहीं हुआ ना? नहीं हुआ. इस पे मुझे डाउट था. ये हुआ है, ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ मशीन. ठीक है, तो आज के लिए तो काफी टॉपिक दे दिया आपने सर, बहुत हो गया. ब्रॉड कैटेगरी ऑफ मशीन भी नहीं हुआ है. देन लेट अस मूव टू नाउ नेक्स्ट. लीजिंग यू आर सेइंग हो गया. वैल्यूएशन ऑफ प्लांट मशीनरी फॉर पर्पसेस हो गया. केस लॉ यू आर सेइंग इज डन. लॉ प्लांट एंड मशीनरी, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस हमने ही किया था. मशीन टूल्स हमने ही किया था. इंडस्ट्रियल प्रोसेस हमने ही किया था. रिपोर्ट राइटिंग मैंने किया था. केस स्टडी इज नॉट डन. तो आज के लिए बहुत टॉपिक हो गया सर. आज के लिए तो आपने सफिशिएंट मसाला दे दिया. नो प्रॉब्लम. तो सबसे पहले हम इजी वाला चैप्टर करते हैं. दैट इज केस स्टडी, जिसपे 20 मार्क्स है. वेटेज इज वेरी हाई, और डे बाय डे इसको टफ करते जा रहे हैं लोग, है ना सर? तो केस स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, और वो प्योरली मैथमेटिकल है. फॉर इंजीनियर्स इट्स ए फेवरेट सब्जेक्ट, है ना? वो केस स्टडी में क्या करेगा आपको कि कोई एक लाइव केस दे देगा. ठीक है सर, लाइव केस दे देगा, और उस पे रिलेटेड 6 क्वेश्चन हो गए. 2-2 नंबर के एक क्वेश्चन होते हैं सर, है ना? तो दिस नीड्स टू बी डन वेरी केयरफुली. एंड दिव्या ज्योति वाला बुकलेट मिल गया आपको? मैंने ही सर्कुलेट किया था. दिव्या ज्योति वाली बुक जो है. नहीं सर, व्हाट्सएप में तो नहीं था वो. व्हाट्सएप पे भेजा था मैंने सर, आई रिमेम्बर. क्या बात है, स्क्रीन शेयरिंग इज डिसेबल्ड?
सर दिव्या ज्योति का ये मशीन टूल का है क्वेश्चन सेट रिपोर्ट राइटिंग और इंश्योरेंस एंड देन रिपोर्ट राइटिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस. Mr. Vijay, I request you to allow a screen sharing. सर अलाउ कर दिया सर. Allow कर दिया? Okay. या सर. Good. So, case study. चलिए जो मिल गया साहब उसको करते हैं. Can you see this screen now? Yes, sir. Okay, good, sir. Yes, sir. So first thing we shall go to ये बुक तो डाउनलोड कर लिया होगा आपने. ये कर लिया. 1900 पेज स्टडी मटेरियल ऑलरेडी यू हैव डाउनलोडेड. Yes. अभी मैं दिव्या ज्योति वाला बुकलेट सर्कुलेट कर देता हूँ सर. डोंट वरी अबाउट दैट. इसमें आई थिंक फिर वही दिक्कत कर रहा है सर. उस पेज पे जा ही नहीं रहा है.
ये आप कह रहे हैं कि ये हो गया है केस लॉ, केस स्टडी इज एट 573. This is case study chapter, sir. 20 number question, but this does not end here only. This contains case study about valuation, right, sir? Valuation methodology. Then there are case studies which came recently. Exam I appeared, that was from discounted cash flow method. One case was given from depreciation also, as you rightly said. So we have to be ready. So first case study comes this. A lathe machine has been purchased at a cost of rupees 50,000 in the year 2016. New similar lathe machine is available at 60,000 as on date of valuation. Fine. The valuers finding are as below. As per Companies Act, जो आप पूछ रहे हैं, the useful life of such machine is 10 years. Fine. Salvage value is 5% of replacement cost new. Please note down all these parameters very carefully. Other costs, charges, taxes, duties, loading are included. The date of valuation is 31st March 2018. So now you have to face these questions of 2 mark each. First question is, what is the acquisition cost of lathe machine in INR? Acquisition cost. 50,000. Sir, Where is the young man? I can't see the young man. Ronak. Mr. Ronak? Good morning. He has gone somewhere. Anyway. Good morning, sir. Good morning. Great to hear you. Great to see you again. Yes. So what is acquisition cost of this lathe machine in INR? It is A, 50,000. B. B, 60,000. As Yes, per sir. Ronak. Yes, Mr. sir. Verma is with A. Mr. Mrinal? Acquisition cost. Acquisition cost, the cost at which you acquired the thing. Okay. Simple, sir. So 50,000 ही होना चाहिए, but I'm doubtful. 50,000 लग रहा है, but doubtful. So in case study, what they do, they confuse us with new terminology. Gross block, you know? Gross block. What is gross block value? No. Gross block value, the price at which you acquired the machine. So in 2000, you acquired this machine with INR 50,000. So Mr. Burma is correct. Mrinal sir was in between, and Raunak was, I think. So here terminology, which is synonyms, gross block or acquisition cost or historical cost. Historical cost, another terminology they have used in one of the exam. So acquisition cost, historical cost, gross block cost. All these three costs are the price at which you acquired the equipment originally at the time of acquisition. Fine, let us be clear. So in 2016, I purchased this equipment with 50,000. So gross block is 50,000. I mean to say that gross historical cost is 50,000 and acquisition cost is also 50,000 only. So let us be clear on this. All right, sir. सर इसमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया है, सैल्वेज वैल्यू, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया, मतलब इट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली. आगे क्वेश्चन उस पे भी है सर. अगला क्वेश्चन वही है, दो नंबर क्वेश्चन देखिए, कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिया है. What is current replacement cost of lathe machine INR? 60,000. B. Yes, Rama, you are right now. So had you seen the second question, you would have replied 50,000 also. Rama? Good. So No, sir. First time I was little bit confused. Okay. I was searching pen. That's why I answered. Okay. Now, third question says, what is the salvage value of machine in INR?
salvage value का definition, I will take you to the question again. I will take you to the question again so that you reply it from there. ये है. Yes. Salvage value पर क्या clue दिया आपको? 5% of replacement cost new. New. What is replacement cost new? 60. 60,000 Yes. 60,000. उसका into 5% 5%. होगा 3,000. 3,000. 3,000. देखिए ऑप्शन है आपके पास. Yes. So B is the correct answer, Yes. right? Fourth. What is the balance useful life? Please. This is the clue for the question. What 8 is years. balance useful life? 8 years. Total life defined is how much? 10 years. 10 years. 10 years. When did you purchase this? 16. 16. You are doing valuation in 18. So Yes. 17, 18, only 2 years it has gone. So how much is the balance useful life? 8 years. 10 minus 2. Right, sir? Yes. So correct answer is 8 year. 8 years. All of us agree? Yes, sir. Yes. Yes, sir. This is what is the amount of accumulated depreciation considering a straight line method in INR? Okay. So salvage value is 3,000. Salvage value is 3,000, correct? And my acquisition cost is 50,000. So 47,000 divided by 10 will be 4,700 per year. Per year. So Then what is the amount accumulated depreciation? Accumulated depreciation means for 2 years. Equipment has lost 2 years. So that is the depreciation which has accumulated to me. 11,400, sir. but sir, I think 9,400. This is Burma Sahab replied 11,400. Yes, sir. Yes, sir. D1. Ronak also replied. So you convinced Mr. Ronak, Mrinal sir. Ronak, you convinced Mr. Mrinal. Sir, first of all, we have to calculate the depreciation amount by straight line. So we are having the value 47,000. So we have to calculate the depreciation by straight line for first 1 year. So it is 1 divided by 8. In multiply by 2, we get for 2 years. 4,700 into 2 will be only, sir, 9,400. So how you have replied 11,400? By your method, I am not reaching 11,400. So, Burma sir, you help Yes, sir. us to understand this. Actually, the price of machine is in 2018 is 60,000. Okay. So we deduct salvage value, that is 3,000. So starting point we did wrong. A starting point was not 50,000. A starting point was replacement cost new. Okay. Minus 3,000. So it is 5,700 divided by per year. Divided by 10. Multiplied by 2. It is 11,400. Yes, sir. Ronak, clear? Yes, sir. Okay. So you work out depreciation always on replacement cost new. New, yes. Not on the historical cost or acquisition cost. That is the most critical aspect of this chapter. If you calculate that way, see, that's why I'm saying, fortunately 9,400 is, there is no reply. There is no option. If 9,400 come, many of us will click on that. So this is just to confuse. So always remember depreciation will be calculated on replacement cost new. New, yeah. After deducting salvage value. Fine. So exact formula, if you ask me to define a formula about this, so formula would be replacement cost new minus salvage value under bracket multiplied by life used divided by total life. This is the formula. What is replacement cost new minus salvage value under bracket multiplied by life used, life for the equipment has been used divided by total life. So it will be
60,000 minus 3,000 multiplied by 2 divided by 10. Right, sir? So that would be 11,400. If you apply this formula, you will answer all the questions correctly. Hopefully, this is the last question. Oh, no, there is one more question. Yes. So what is the depreciated replacement cost of the asset in INR? There is one more question. Depreciated replacement cost. What is 46,600. हाँ, A. 48,600 A होना चाहिए. कैसे हुआ सर? जरा हमें समझा दीजिए. हाँ, 60,000 minus 11,000. 400. Yes. All right. Depreciation value. Yes. 60 minus 11,400 takes you to 48,600. ठीक है सर? और क्वेश्चन है क्या इसमें? नहीं, हो गया. देखिए सॉल्यूशन आपको नीचे सॉल्यूशन दिया गया है. एक्विजिशन कॉस्ट इज 50,000, करेक्ट? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 60,000. साल्वेज वैल्यू इज 3,000. बैलेंस इकोनॉमिक लाइफ इज 8 years, right? Depreciation is 3,000. 11,400 is the correct answer, right now? Yes. And then balance 48,600 is the correct answer. ठीक है ना? So we have done one case study successfully. Now second case study, I expect all replies should be correct by all of us. This is the question. Read it carefully. एक आपने पढ़ा ना इंडेक्सेशन मेथड. हाँ. This is cost approach indexation method problem. सर इसमें 2016 का है, 2018 का. आई थिंक 2018 की जगह 2017 होना चाहिए ना. आई थिंक इट इज प्रिंटिंग एरर. Why sir? 14 में इक्विपमेंट खरीदा आपने, तो 14 से चाहिए आपको. 16 का इन्होंने दे दिया है because the company has started commercial production in the year 2016. ऊपर लिखा हुआ है. ओके. यस यस. वहां से आपको 16 का भी दे दिया है इसने. अब आपको कौन सा लेना है, दैट इज अप टू यू. ठीक है ना? ओके. ऊपर देखिए ना, यहाँ पे दिया ना सर. हाँ, ये कब कंपनी स्टार्टेड 14 में लिया इसने, खरीदा है, बट 16 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया. यस. तो इसलिए 14 का दिया आपको, 16 का दिया, और 18 में वैल्यूएशन करना है तो 18 का दिया. इंडेक्स ठीक दिया है, नो प्रॉब्लम. शैल वी मूव टू द क्वेश्चन? यस. Yes, sir. Case is clear to all of us. The equipment is 2014 vintage, value is 1.5 crore, and commercial production 2016 and valuation to be done in 2018. ये 3 क्लू है आपके पास. उसके बाद इंडेक्सेशन है आपका 100.3, 79.2 और 79.9. 3 इंडेक्स दे दिया आपको. Useful life is 15 year. और salvage value is 5% of replacement cost new. Other costs are included. Date of valuation is this. Okay. So we have all clues noted. बताइए सर. C 1.5 crores. Very good. Yes, sir. Any other answer? No. Ronak is a young boy, so he should differ with us. Yes, sir. You are agree with 1.5 CR? Yes, sir. Okay, good. Second question. Replacement cost.
सर कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, कैलकुलेटर आपको वहाँ एक्सेल सीट अलाउड है एग्जाम में आपको, आप उस पर एक्सेल सीट खोल के कर सकते हैं या कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, अलाउड है, एज यू विश। It is 1.18 crores. 1.18 करोड़ आपने दिया, दूसरा का आंसर B. बी। ओके, मृणाल राय साहब। ओके, रौनक यू डिफर? Yeah, same sir. सेम। वर्मा साहब कैलकुलेट नहीं कर पाया अभी। कैलकुलेट कर रहा है अभी। इसको बहुत ध्यान से करो सर, 20 नंबर है इस चैप्टर पे, सो प्लीज do not go with any confusion today. Everything should be crystal clear to all of us if you clear the exam. ये 20 क्वेश्चन हो गया, 20 नंबर तो 40 नंबर ही लाना है आगे सर, है ना? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर ये, जितना आप फिर से कहेंगे हम फिर से सारा क्वेश्चन करेंगे, नो प्रॉब्लम, है ना? कोई बट डोंट गो विथ एनी कंफ्यूजन इन योर माइंड। क्या किया, फार्मूला समझा दीजिए मृणाल भाई साहब। सर एक्चुअली हमारा जो इंडेक्स दिया है जी। एट 2018 current valuation date, it is 79.2 and my base index is 100.3, so 79.2 divided by 100.3 multiplied by my acquisition cost 1.5 crore. Multiplied by 1.5 crore. Yes. ठीक है, so वर्मा साहब यू डिफर और एग्री विद देम? स्टिल कैलकुलेटिंग। सर कैलकुलेशन में क्या है कि उसका सैलवेज वैल्यू लेस करके और रिमेनिंग अमाउंट को डिवाइडेड बाय 15 करना है और 4 इयर्स का डिप्रिसिएशन ले करके और उसको लेस अभी तो करके रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू निकालना है, इसलिए उसमें तो साल्वेज वैल्यू की बात नहीं आएगी ना सर। डिप्रिसिएशन निकालने के लिए साल्वेज वैल्यू की बात आती है। that I was confusing sir. नहीं, let us not be too theoretical. रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू करना है तो सिंपली एक्विजिशन कॉस्ट पे हम इंडेक्स लगा के इसको कर देंगे। बस एक ही पॉइंट है कि इंडेक्सेशन करेंगे हम फ्रॉम 2016 या 2014। राय साहब ने जो किया है 2014 से किया है, रौनक ने भी 2014 से किया है, ठीक है? तो because equipment was originally procured in 2014, so indexation will be from there. 15 में महंगाई बढ़ गई तो उसका फैक्टर कहाँ आएगा अगर हम 16 लेंगे तो 16 जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है, कुछ लोग 16 से कंसीडर करेंगे। सो लेट अस सी द आंसर। तीसरा बताइए सर, व्हाट इज साल्वेज वैल्यू ऑफ एसेट? You want to go back to question? हाँ सर। Salvage value is 5% of replacement cost due. 5.9 lakhs. 5.9 lakhs. Yes. Yes sir. 5% of 1.18 crores जो हमारा करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू निकला, तो साल्वेज वैल्यू इज 5% ऑफ दैट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या आया था सर? जी साहब, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या आया था न्यू सर? न्यू 1.18 आया था ना? 1.18 हाँ। What is the balance useful life of the asset in books of the company? 11. टोटल लाइफ कितना दिया हुआ है? 3 इयर्स। 15. 15 साल, 15 ईयर। और 14 में लिया, 16 में कमीशन किया, 18 में वैल्यूएशन कर रहे हो सर। इकोनॉमिक लाइफ की बात हो रही है, बैलेंस यूजफुल लाइफ की बात हो रही है। फुल लाइफ। अब यहाँ पे आपका 11 ईयर भी आंसर है, 13 ईयर भी आंसर है।
बट एज पर द बुक्स 15 ईयर भी एक क्लू है आपके पास, तो तीनों चीजें आपके पास है। बताइए आप। बैलेंस यूजफुल फुल लाइफ लाइफ में सर 16 से लेंगे 30 इयर्स। 11 ही होना चाहिए, क्योंकि कंपनी के अंदर आपने कमीशन नहीं किया, प्रोडक्शन नहीं किया, बट इन द बुक्स इट शुड बी एंटर्ड एज 11 ओनली। इट वाज So Rai साहब is with 11. वर्मा साहब? फुल लाइफ सर जब से मशीनरी स्टार्ट किया मेरे ख्याल में तो 13 इयर्स होना So चाहिए। as per you it is 13 year. Raunak? 11 sir. 11. Okay, fine. So there is a difference of view. So we will see the correct answer and then conclude it. I know the correct answer, but I will not B दो हैं और A पे राय साहब है। हाँ, नहीं, A पे राय साहब भी B पे ही है। बी पे है 11 वर्मा इयर्स। साहब A पे है। वर्मा साहब A पे है। ठीक है। What is the amount of depreciation considering the straight line method of depreciation as per Companies Act 2013? वो बार-बार आ रहा है, मेरे ख्याल से depreciation हम कर लें क्या? Depreciation आपको confuse ना करे। Anyway, इसके बाद depreciation ही कर लेंगे, don't worry. As per Companies Act, salvage value is equal to residual value. C 29 lakhs. आप कर रहे हो रौनक, जोर से बोलिए। C 29 lakhs. C 29.89. Okay. अनमोल है दीदी। हाँ अनमोल बोलो। एमजी कहाँ जाना है? ये खुला हुआ है ना? आप पे जाना भी मेरे पूछना है। ऊपर अभी नहीं जाऊंगा, 12 बजे जाऊंगा। टाइम ज्यादा ले रहा है सर ये। You have only 120 minutes to address 100 questions. तो 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए सर किसी क्वेश्चन पे। सर ये वाला एक्चुअली रौनक has done it 29.89 C. रौनक आप एक्सप्लेन करो अपना मेथोडोलॉजी। सर जो पहले तो क्वेश्चन में किया था वही सेम मेथड ही है। इनिशियली वी आर हैविंग रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू 1.18 करोड़ 18 करोड़ माइनस 5.9 करेक्ट। या -5.9 तो कितना बच गया into आपके पास? मैंने एक्चुअली डायरेक्ट कैलकुलेटर में 0.95 किया है। आपको एक्चुअली बचा है 1.121। नहीं सर 1.18 माइनस 5.9 होगा तो ये बचेगा 112.1। हाँ मतलब 1 करोड़, हाँ 1 पॉइंट या हाँ मतलब वही 112.1 बचेगा आपके पास, ठीक है। ओके, 112.1 ओके, यस यस राइट।
हाँ 112.1 में इन्होंने क्या किया कि मल्टीप्लाइड बाय 2 ईयर यूज 16 से 18 ही लगेगा इसमें, ईयर ऑफ इंस्टॉलेशन से जाएगा, ये ईयर ऑफ कमीशनिंग से जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 15। मैंने डिवाइडेड बाय 10 किया है एक्चुअली। हाँ 10 क्यों किया सर, इसमें आपको 15 साल लाइफ दिया गया है। नहीं हाँ Right. करेक्ट। All of us agree for 29.89 now? सर थॉट ऑफ 14.95 आएगा सर, मैंने 4 इयर्स लिया है। Oh, 14.95 is the correct answer. Ronak, good that you corrected it. ये क्वेश्चन ही गलत होता है जनरली सारे कैंडिडेट से। पहले वाले में भी ये गलत हुआ, यहाँ भी ये गलत हुआ, तो इस पे आई रिक्वेस्ट यू टू डू मोर R&D and do it accurately. Sir, why not 2? Because equipment has been put to use from 2016. But sir, when I am buying from the market, my see in the market actually depreciation sir किस पे निर्भर होता है? अगर market में value अगर कम हो रहा है, inflation will be from date of purchase. Inflation. Okay. Indexation जो लगाया हमने year of purchase से लगाया, but depreciation will be from the year of use. Because और अगर वो कंपनी मेरे को झूठ बोल रहा है, मतलब ऐसा तो मतलब how will I check like he has used for 2 years? आपसे झूठ नहीं बोल रहा है, आपको 2014 में आपने उसको ऑर्डर दे दिया, उसने 2014 के दिसंबर में आपको सप्लाई कर दिया मशीन। अब आपके यहाँ बाकी सब चीजें काम हो रही थी, ग्रास रूट प्लांट है आपका, 2 साल 1 साल आपके स्टोर में पड़ा रहा, फिर आपने 15 में उसको लगाया, 16 में चालू किया, है ना? तो जब तक इक्विपमेंट चल नहीं गया तब तक डेप्रिसिएशन नहीं होगा उसका। ओके, was as good as new equipment, है ना? ओके, मैं उस दिन भी एक्सप्लेन किया था, आई रिमेम्बर, बट एनीवे चलिए कोई बात नहीं। So that is the reason. So 14.95 is the correct answer. okay. What is the net book value as per Companies Act 2013? So net book value would be 1.18. Sorry, नहीं, कंपनीज एक्ट के हिसाब से आएगा तो वो लगेगा एक्विजिशन कॉस्ट पे 1.15 1.5 करेक्ट। हाँ माइनस इसमें तो डेप्रिसिएशन जो कंसीडरिंग एसेट लाइन मेथड है आपका 14.95, कितना बचा सर? 135 करोड़। हाँ यस, उसके आसपास वो गलत हो रहा है। हाँ गलत हो रहा है, यस। Because there is no option like that. Net book value. Sir, net book value will be 1.18 minus the depreciation. No? ठीक है, करिए, कहाँ पहुंचे सर आप? 1.18 minus 15. So you are left with 1.03. There is no answer. Yes. So let us see the correct answer now. यहाँ पे ये आपसे नहीं होगा, I know that. तो पहला तो 150 is correct, ठीक है? सेकेंड का इंडेक्स फैक्टर लगाया आपने 1.1845 करेक्ट, राइट? थर्ड साल्वेज वैल्यू 590 आपका करेक्ट है, ठीक है सर? बैलेंस इकोनॉमिक लाइफ 13 ईयर करेक्ट है, राइट? डेप्रिसिएशन इज ये किया इन्होंने 150 माइनस 7,50,000 एक्विजिशन कॉस्ट ले लिया यहाँ पे into 2/15 किया है इन्होंने, ठीक है सर? 2/15 वो सही है, बट यहाँ पे इन्होंने एक्विजिशन कॉस्ट ले लिया है बिकॉज नेट ब्लॉक की बात हो रही है, नेट ब्लॉक निकालना है, तो 2/15 तो वो 19 लाख करीब वर्कआउट करता है। सो 14.95 वाज आल्सो नॉट करेक्ट। अब देखते हैं 19 लाख आपके पास ऑप्शन है कि नहीं है? 19 ऑप्शन है, ही वाज करेक्ट इन दिस। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ दे हैव एड्रेस्ड इट। ऑब्वियस है, डेप्रिसिएशन निकल गया आपके पास 1.15 minus 19, so 131 is the, ठीक है सर? 113, so 113 was ऑप्शन है ना, 113 लाख,
150 माइनस 19 131 yes. 31 आंसर है आपके पास, 131 होगा करेक्ट आंसर इसका। सर इसमें जो फॉर्मूला इसमें लगाया है इसमें एक वैल्यू लिया है 7.5 लाख, ये 5% ऑफ द एक्विजिशन कॉस्ट लिया है। तो हाँ सर एक्विजिशन कॉस्ट लिया है। तो सैल्वेज वैल्यू एंड स्क्रैप वैल्यू बोथ आर सेम सर? So let us revisit how they have defined the acquisition cost. Salvage value is 5% of replacement cost new. ओके कुछ गलती लग रहा है सर, ये बिल्कुल ठीक पकड़ रहे हो आप। Replacement cost new is 1.18. यस 1.18 into 5% करते हैं तो वो आता है। So let us not go by this concept. Let us go to question number 3 and we'll freeze our thought process. How to go about it. ओके आ जाओ सर इस पे। सिंपल क्वेश्चन है, ऑल आंसर शुड बी करेक्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट 6 लाख, बी 6 लाख। बी बी What is the answer for first? बी 6 लाख। B. यस Any differ? Any view? Different view? Raunak? 1 second. 6 lakh. Question 2. रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 8 लाख करंट। 8 lakh 8 लाख सी सी All are with C. Yes, sir. Question 3. salvage is 5%, so 40,000. it is for 40,000. हाँ. 40 lakh All are with B. Yes, Yes. sir. Question 4. What is balance useful life? दोनों ईयर याद है आपको? 2015, 2018, 18. 18. 3 years. Sorry, 7 years. 7 7. years. So C. All are with C. 7 years. पांचवा आ जाओ सर। Depreciated replacement cost. What is DRC? इसमें 8 lakhs 40,000. 7.2 होना चाहिए, नहीं। मृणाल सर कितना बोला आपने? B. एक मिनट सर, मैं थोड़ा दोबारा 40,000 इसमें तो कोई आंसर ही नहीं है। डिप्रिसिएशन कितना है आपका? ऊपर निकाला है क्वेश्चन में 40,000। 40,000 हाँ। और 532 सर सी। अब 6 और 8 लाख है आपके पास। और 8 40,000 हाँ पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम आई थी ना मैं। हाँ
है, तो वो पहला वाला फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 8 लाख पे किया था, दैट इज क्लियर. यस. Second question confused us. Why it confused us? I will explain you that from here. तो ये कर रहा है depreciated replacement cost कितना होगा एसेट का, ये आज की तारीख मार्केट वैल्यू निकाल रहा है. तो इस केस में आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू लोगे. ठीक है सर. 8 लाख minus 40,000, how much you are left with? 7.2 lakhs. 7.6. 7.6 sorry. हाँ. 7.6 multiplied by 3 divided by 10. करेक्ट फॉर्मूला. हाँ. करो सर कैलकुलेटर पे, हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप लोग करो. 7.6 multiplied by 3 divided by 10. $2.28. 2.28. लेकिन सर इसमें 40,000 मेरे को क्योर के लिए भी तो चाहिए. सो उसने आपको बराबर कर दिया. So what would be the correct value for that? मेरा तो सर सी आया है. हाँ 5.32 होना चाहिए minus 40,000. 5.32. Yes. क्यों? एक्सप्लेन कीजिए राय साहब. Because the depreciated replacement cost जो है मेरे को निकल रहा है 5.72, but I have to spend 40,000 because 40,000 मतलब I think as per definition कहीं मैंने पढ़ा था या क्लास में बताया गया था कि जैसे to bring it to the current state of working I have to spend some money, so that is also to be deducted from this. ठीक है. So 5.72 minus 40,000, so 5.32 आना चाहिए, मतलब राइट आंसर होना चाहिए. All of us agree with this. आपने पूरा शुरू से नहीं किया सर. 5.32 कैसे पहुंचे? आई थिंक वर्मा साहब के बेनिफिट के लिए और रौनक के बेनिफिट के लिए आप पूरा एक्सप्लेन कीजिए. हाउ डिड यू रीच 5.3? स्टार्टिंग में नंबर क्या है आपके पास? 8 लाख है या 6 लाख है? 8 लाख है. 8 lakhs. You started from 8 lakh. 8 lakhs, yes. 8 से फिर 5.6 पे कैसे आया? हाँ 8 lakhs minus 40,000 divided by 10 multiplied by 3. 10 useful life into 3. एक मिनट में 8 7 बच जाएगा ना. बैलेंस यूजफुल लाइफ. minus so 2.28 सर बच रहा है. बैलेंस 3 यूज हुआ है ना. 3 यूज हुआ है तो वो मैं यही सर हमें कंफ्यूज नहीं करना है. लेट अस नॉट यूज्ड लाइफ सर इसमें 15 से 18 यानी कि 3 साल. So 2.28 is my depreciation. So 2.28 is your depreciation. How did you yes, arrive at this depreciation? Please explain, sir. Na? 8 lakh is my replacement cost new. Right. Minus 40,000 is the salvage value, 5% of 8 lakh. Right. ठीक है. You are left with 760. I'm left with हाँ मतलब 7.6. Right. And straight line method divided by 10. Number of used years is only 3. So into 3 divided by 10. So that becomes 2.28. हाँ 2.28 correct. 2.28 is my depreciation. Okay. So 8 lakh 2.28 is 532. हाँ. Right, sir? वर्मा साहब क्लियर ना? 5.72 सर. हाँ? सर मेरा तो दूसरे ढंग से आ गया 532. तो 5.72 आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सर. नहीं 5.32 आया मेरा. हाँ 5.72 आया लेकिन minus 40,000 I have to do. मैंने सर हाँ वर्मा सर मैंने कैसे किया एकदम सर उसकी जो वैल्यू है 8 lakhs जो वैल्यू है उसमें मैंने सैलवेज वैल्यू लेस कर दिया 40,000
40,000 लेस हुआ तो 7,60,000 हुआ, उसको डिवाइड 7 बाय लाख 10 को, जो ठीक उसकी है, लाइफ है उससे डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई से यूजफुल लाइफ आ गया, सीधा 532 आ गया। 5.32 सीधा आ रहा है सर। सीधा आ रहा है सर। ओके, अब यहाँ पे देखिए 5.32 भी है और 4.92 भी है सर आपके पास आंसर। वो 40,000 कॉस्ट ऑफ क्योर जो है वो माइनस करना है कि नहीं करना है? हाँ ये बराबर। So correct answer would be 4.92 और 5.32. That is the only question we are left with now. किसी दोनों में कोई करेक्ट है, ये तो पक्का हो गया। ठीक है सर, आते हैं आंसर पे सर। एक और लास्ट क्वेश्चन है सर, कर लो इसमें। What is the range? Now you have to do valuation as per insurance. ये मैंने बताया था आपको। It is only 8 lakh, nothing else. आज नए कार का दाम 8 लाख रुपए है तो 8 लाख रुपए पे इंश्योरेंस होगा इसका। ठीक है सर, रीइंस्टेटमेंट कॉस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। रीइंस्टेटमेंट इज ओनली कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट, है ना? तो इंश्योरेंस के लिए ओनली रीइंस्टेटमेंट कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ न्यू। तो ये मुझे पता था ये डिफिकल्ट होगा आपके लिए, तो मैंने इसका थोड़ा क्लैरिफाई कर। देखिए, एक्विजिशन कॉस्ट 6 लाख, नो प्रॉब्लम। रिप्लेसमेंट कॉस्ट 8 लाख, नो प्रॉब्लम। डेप्रिसिएशन 40,000, नो प्रॉब्लम। बैलेंस लाइफ 7 years, नो प्रॉब्लम, सब सही है आपका। DRC जो निकाला इसने यही किया, देखिए 5.72 में इसने 40,000 माइनस किया कॉस्ट टू क्योर और दे कम टू 532। Yes. 532 was correct answer. कॉस्ट ऑफ क्योर यहाँ पे अकाउंट फॉर कर लिया है इन्होंने। और 8 लाख तो बता ही दिया, ये यहाँ पे एक जीरो छूट गया गलती से, इट इज 8 लाख, करेक्ट ना? सो अब 1, 2, 3 क्वेश्चन आपने किया तो आपको सेकेंड क्वेश्चन ने कंफ्यूज किया। Had we discussed depreciation as per Companies Act and Income Tax Law, तो वहां कंफ्यूजन आपको नहीं होता। तो चूंकि वो चैप्टर अभी नहीं हुआ है, that's why you confused there। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे फिर चलते हैं, ठीक है? सर ये रीइंस्टेटमेंट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू दोनों को एक ही है ना, बराबर ही मानेंगे, राइट? राय साहब सॉरी, रीइंस्टेटमेंट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू दोनों एक ही है, राइट? एम आई करेक्ट? स्लाइट डिफरेंस है। स्लाइट डिफरेंस है कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू जो होगा that will do adjustment for, because नया कार आया है, suppose that it is gearless car, ऑटोमेटिक है, अब पहले वाला मैनुअल है आपका, राइट ना? तो that adjustment for betterment will be done in case of replacement cost new. Okay. But reinstatement cost के केस में there will not be any adjustment. ये डिफरेंस है। Okay. There is a little difference, है ना? कि betterment की एडजस्टमेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू में हो जाती है, इसमें नहीं होती है reinstatement cost। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे फिर ले चलते हैं सर, तब आपको क्लियर हो जाएगा। सी यहाँ पे 2 क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन था, इसीलिए आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट में जाना पड़ा, ग्रॉस ब्लॉक पे जाना पड़ा, एक्विजिशन कॉस्ट पे जाना पड़ा। एक अगला क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, व्हाट इज नेट बुक वैल्यू? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? व्हाट इज नेट बुक वैल्यू? बैलेंस शीट में जो नेट ब्लॉक लेते हैं ग्रॉस ब्लॉक के बाद, वो बैलेंस शीट जो कंपनी की बनती है ना, वहां पे दे आर सपोज टू अप्लाई डेप्रिसिएशन ओनली ऑन एक्विजिशन कॉस्ट। ये नेट बुक वैल्यू जो है, दिस इज ए वर्ड फ्रॉम बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो नेट ब्लॉक अगर निकालना है आपको, नेट ब्लॉक, तो आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट ही काम आएगा, आपको फिर स्टेटमेंट कॉस्ट नहीं कंसीडर करना है। यहीं से क्वेश्चन नंबर 5 भी डिराइव होता है। ये आंसर भी सही था, ठीक है सर, बट थोड़ा सा वो क्या हुआ कि चूंकि डेप्रिसिएशन चैप्टर डिस्कस नहीं किया है अभी, है ना, इसीलिए कंफ्यूजन हुआ आपको, बिकॉज दिस इज द बैलेंस शीट प्रिपरेशन के लिए नंबर निकाल रहा है वो। और बैलेंस शीट में आप नए कॉस्ट पे एक्विजिशन, बिकॉज यू आर नॉट इनकरिंग दैट न्यू कॉस्ट, आप पुराना वैल्यू पे खरीदा है, डेप्रिसिएशन अलाउंस आपको उसी पे अलाउड है जिसपे आपने इक्विपमेंट को परचेज किया है, नॉट ऑन द न्यू कॉस्ट, ठीक है?
ये आंसर भी सही था, इसलिए प्लीज गो विद दिस क्लैरिटी कि अगर बैलेंस शीट वैल्यू के लिए कैलकुलेट करना है आपको, तो योर फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला विल रिमेन सेम, बट दैट इज दिस फॉर्मूला विल अप्लाई ऑन एक्विजिशन कॉस्ट, बट अदर पर्पस के लिए कैलकुलेट करना है लिक्विडेशन, आई मीन टू से इंश्योरेंस में रहेगा, कॉस्ट ऑफ न्यू हो जाएगा, और इसके अलावा और कोई अदर पर्पस, सेल, परचेज, liquidation, any other purpose you are doing, then you have to take replacement cost new and calculate depreciation on that. ये फंडामेंटल, ये दो फंडामेंटल पे ये बेस था दोनों क्वेश्चन, इसीलिए, बट दैट वाज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, अब क्लैरिटी आ गई सर? सर एक मैं जस्ट एक लाइन लिखा हूँ अपने नोट्स के लिए जी, कि इन बैलेंस शीट नेट बुक वैल्यू इज बेस्ड ऑन ग्रॉस ब्लॉक लेस द डिप्रिसिएशन। ले ओके, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट यू हैव रिटन सर। तो अब क्लैरिटी आ रही है हाउ टू हैंडल केस लॉस, अगर आता है तो कोई भी क्वेश्चन, तो जस्ट आई रिक्वेस्ट यू टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस चैप्टर, अदरवाइज चांसेस आर देयर कि ये गलत हो गया तो फिर पास करने की संभावना बहुत कम होती है, सीधी सी बात है। एक्चुअली सर पूरा कॉन्सेप्ट का यूज इसी में है लगता है। हाँ, जितना पढ़ा आपने ना, इसलिए इसको लास्ट डे में रखा जाता है, इसलिए इसको लास्ट डे में रखा है हम लोगों ने। मेरे पास 2 दिन पहले फोन आया था इनका कि कब लेना चाहेंगे, तो हमने कहा लास्ट डे कब है, तो उन्होंने आज बताया, मैंने कहा आज रखो इसको, बिकॉज सब सारे थ्योरी जानते हैं, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ पे आ रहा है, दिस इज एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर इसको आपने हैंडल कर लिया तो खूब ध्यान से पढ़िए सर, और आराम से समझिए, तब तक मैं पानी पीता हूँ सर। अगर आप लोगों को भी पानी पीना हो तो पीजिए, ऐसा नहीं कि हम ही पानी पीने का अधिकारी है सर। 2 मिनट सर जस्ट। ये आपका 1 घंटा हुआ है, आधा घंटा और करके ब्रेक लेते हैं, ठीक है? एक केस, ये केस लॉ होते होते आधा घंटा लग जाएगा, ये डिफिकल्ट है, इट इज नॉट इजी। Read it 2 times, 3 times. This question, read this question 2 to 3 times, ठीक है ना? Because all factors are to be considered. Imported है, exchange rate है, सारा कुछ आ गया इसमें, ना? Indexation है, everything is here. क्वेश्चन क्लियर हो गया सर, या क्वेश्चन पे कुछ क्लैरिटी चाहिए तो आई विल क्लियर यू। रौनक, क्वेश्चन क्लियर है या बहुत सारे डाटा आ गए इसमें? लिख नोट डाउन कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, क्योंकि फिर difficult नीचे question. आएगा ना, इसलिए। This is the most difficult question in all case study, so इस पे टाइम लगेगा हमें, and we are ready to devote that time, है ना? इसमें सब कुछ है, कस्टम ड्यूटी भी है, और मतलब
इंपोर्ट के केस में क्या क्या खर्चे होते हैं वो भी है, सब कुछ है। तो ठीक है सर, shall we move to question now? Yes. हाँ सर, Yes, sir. पहला क्वेश्चन ही है, एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ दिस मशीन इज, ग्रॉस ब्लॉक कितना होगा इसका? सर ये इसमें टैक्स वैस इंक्लूड नहीं किया है क्या ऑप्शन में, क्योंकि टैक्स सॉरी राय साहब, कुछ पूछ रहे थे? इसमें जो ग्रॉस ब्लॉक रहेगा इसमें लगता है कोई भी ऑप्शन में टैक्स वगैरह इंक्लूड नहीं किया है। नहीं, सब इंक्लूडेड है सर, सब इंक्लूडेड है। तो मैं इसमें हेल्प करूंगा आपको। पहले आप कोशिश कीजिए ना, देखते हैं कोई आंसर दीजिए, गलत करिए कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, यू डू रॉन्ग। सर एक चीज और पूछना था, जैसे ट्रांसपोर्ट चार्जेस ये जो सेकंड में लिखा हुआ, सेकंड बुलेट पॉइंट में, जी, ये इट वाज इन द ईयर 2014 और इट इज करेंटली? नहीं, देखिए पहले आपको क्या किया इसने, मशीन जो परचेज हुआ है, सीएनसी टर्निंग मशीन वाज परचेज इन 2014, ठीक है। वहां पे इसने 25,000 यूरो का खरीदा, ठीक है, और बाकी चार्जों को इन्होंने 2.5 लाख रुपए ले लिया। तो जो भी चीज है, ट्रांसपोर्टेशन, पोर्ट चार्जेस, वो 2.5 लाख में सब इंक्लूडेड है, ठीक है सर। ओके। अब आपका जो है कह रहा है कि अब आज की तारीख में ये सब चार्ज अच्छा, लगेगा, ओ वैल्यूअर्स फाइंडिंग, अच्छा ठीक है। वैल्यूएशन डेट पे। तो 17.5 17.5 lakhs 17.5 फिर हो उस जाएगा। केस में आपको इसमें 17.5 चार्ज लगेगा, यस। क्या ना। तो आपका पहला सवाल है, व्हाट इज एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द मशीन इन, एक्विजिशन कॉस्ट आपका कितना है? 25,000 यूरो 60 into 60 प्लस कितना जुड़ जाएगा उसमें? 2.5 लाख। हाँ, तो 2.5 लाख उसने कैपिटलाइज किया हुआ है पूरा। तो 25,000 इंटू कितना हो जाएगा सर? यूरो 2014 कितने का था? 60 का? हाँ 60 का था, 15 लाख आ रहा सर। कितना हो गया? 3 लाख हो गया? 30 लाख? 15 लाख 15 लाख 15 लाख 15 लाख प्लस 2.5 2 लाख पॉइंट हाँ 17.5 लाख 15 लाख प्लस 2.5 लाख, ठीक है। तो 17.5 होना चाहिए मेरे हिसाब से। यस यस। You beg to differ or you are okay with this answer? ओके सर, ओके सर। ओके सर। 17.5 लाख होना चाहिए, बट
अब आ जाओ सर, व्हाट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट? अगला सवाल यही होना चाहिए सर। नहीं, कर रहा है व्हाट इज पेएबल अमाउंट ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज टू इंपोर्ट द मशीन ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन। क्वेश्चन इज वेरी वेरी क्लियर। क्या बोल रहा है आपको? डेट ऑफ वैल्यूएशन पे ड्यूटी का क्या ऊपर डिफिनेशन है क्वेश्चन में? लेट अस गो बैक टू क्वेश्चन। ड्यूटी का डिफिनेशन है एप्लीकेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज आर 26.85% ऑन CIF वैल्यू। आई होप CIF value is clear to all of you. Yes. CIF value नहीं क्लियर है? CIF value क्या होता है? Cost of insurance and freight. CIF stands for cost of insurance and freight. करेक्ट ना? तो करें CIF value पे 26.85% निकलेगा। तो सबसे पहला काम हमारा हो गया CIF value इसका निकालना on the date of valuation। तो कितना यूरो है वैल्यूएशन के डेट पे? 28,000 इनटू कन्वर्जन है आपका 81। कितना आया सर? चलिए हेल्प मी। 28,000 इनटू 81 कितना आ रहा है? 22,68,000। 42 लाख 22,68,000। 42 लाख 68 नहीं सर, 22 22 लाख है। 22 68,000 कितना है ना सर आपका? हाँ। ये तो हो गया आपका सिंपल मशीन का इनवॉइस कॉस्ट। करेक्ट। अब इसमें कहता है इंश्योरेंस का अलग से कॉस्ट आपको नहीं दिया है, ठीक है ना? लेट अस फॉरगेट इट। फ्रेट कितना लगा इसको? 20,000। नहीं सर, फ्रेट तो इसमें इंक्लूडेड CIF है जो नहीं है ना, CIF वैल्यू नहीं दिया ना आपको। कह रहा है द सेम मशीन फ्रॉम द सप्लायर इज अवेलेबल आफ्टर नेगोशिएशन एट CIF वैल्यू ऑफ 28,000, है ना? हाँ हाँ यू सेड करेक्ट इट। CIF फ्रेट और इंश्योरेंस इसमें इंक्लूडेड है। हाँ हाँ करेक्ट सर? यस। तो सी फ्रेट और जो 200 यूरो जो इनलैंड ट्रांसपोर्ट है वो नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि CIF में तो सब कुछ इंक्लूडेड होगा ना। जनरली इंपोर्ट में क्या होता है सर कि CIF वैल्यू जो है दे इंक्लूड फ्रेट अप टू ओनली सी पोर्ट। सी पोर्ट से जो आप अपनी फैक्ट्री में लाओगे इंडिया में, विद इन इंडिया, तो दैट इंश्योरेंस एंड फ्रेट इज टू बी इनकर्ड बाय यू इफ यू आर ओनर ऑफ द मशीन, ठीक है ना? यस। तो उसमें क्या होता है कि ये 22,68,000 तो वैल्यू हो गया CIF आपका। अब इसका निकालो आप सर 26.85%। ये 6.089 लाख। कितना है? 6.089 है ऑप्शन आपके पास? हाँ ये है सी नंबर। क्लियर ना सर? Yes, sir. What amount the buyer pays as freight charges in INR to import the machine purchased at CIF value on the date of valuation? Question बोलिए देखिएगा। What amount buyer pays as freight charges in INR to import the machine purchased at CIF value on date of valuation? ठीक है? तो अब आपका क्वेश्चन क्लियर है। लेट अस गो बैक टू क्वेश्चन। कह रहा है कि फ्रेट कितना दिया बायर ने? बायर आप हो, आप कितना फ्रेट दिए हो? ट्रांसपोर्ट चार्ज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ CNC मशीन टू पोर्ट ऑफ इंपोर्ट इज 200 यूरो। ये तो उसने दिया, यस। है ना? सी फ्रेट इज 1 लाख। सी फ्रेट भी वही दिया। इंडिया के पोर्ट पे जब आ गया चीजें, तो ट्रांसपोर्ट चार्ज फ्रॉम पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज टू फैक्ट्री लोकेशन इज 20,000। ये किसने दिया? बायर ने। बायर ने। इसका फ्रेट हो गया 20,000 प्लस लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस एट द पोर्ट इज 10,000। ये जो डिस्चार्ज पे लोडिंग अनलोडिंग हुआ है ये भी इसके कॉस्ट पे हुआ है, ठीक है? ये 10,000 ये और देगा। प्लस इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग कॉस्ट ऑफ मशीन इन INR इज 1 लाख। ये फ्रेट नहीं है, इंस्टॉलेशन कमीशनिंग कॉस्ट ये नहीं देगा। ये एक्सचेंज रेट 1 यूरो इज इक्वल टू दिस नहीं देगा। अदर कॉस्ट इंक्लूडेड इफ एनी डेट ऑफ वैल्यूएशन। सो 30,000 होना चाहिए। आपका आंसर है 30,000 के नहीं? What amount buyer pays freight charges in INR to
फ्रेट चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग जो है फ्रेट चार्जेस नहीं है। ओके, चार्जेस दे पेड ओनली इज 20,000, करेक्ट ना? यस। Should be the correct answer. What is the cost of replacement of machine in INR? अब replacement cost calculate करेंगे सर। 22,68,000 तो ऐसे ही हो गया आपका, प्लस रिप्लेसमेंट कॉस्ट है जिसमें सारा कॉस्ट चला जाएगा इसमें। CIF वैल्यू बोल रहा है तो इंश्योरेंस फ्रेट अप टू पोर्ट इंक्लूडेड है, तो ट्रांसपोर्ट चार्ज फ्रॉम फैक्ट्री टू लोकेशन 20,000 ये जुड़ जाएगा, प्लस 10,000 इंस्टॉलेशन चार्ज भी जुड़ जाएगा, प्लस ड्यूटी भी जुड़ जाएगा। ड्यूटी अमाउंट कितना निकला सर? ऊपर निकाला ड्यूटी अमाउंट 6.089 निकला था। 6.08958 एग्जैक्ट अमाउंट ले लेते हैं ना, 608,958 यस। प्लस, फिर जाओ क्वेश्चन पे सर। लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस जोड़ दिया, इंस्टॉलेशन कमीशनिंग कॉस्ट 1 लाख, ये भी जाएगा। हाँ, ये भी एक्स्ट्रा 1.1 लाख जुड़ जाएगा, मतलब ये दोनों मिला करके लोडिंग अनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन 1 कमीशन। लाख हो गया, बस हो गया मेरे ख्याल से। इतना जोड़ दो आप सर, तो कितना होता है ये 22.68 जोड़िए जरा, प्लस 0.2 22.88 प्लस 10 22.98 23.9 गया, प्लस 6.08 ये हो जाएगा 16 30.060958 आ रहा था। 30.06 आ रहा है सर। हाँ, कौन सा ऑप्शन है आपके पास के लिए? एक है कुछ think, हाँ बी होना चाहिए। फोर्थ बी, ठीक है। यस। If the factory is placed in SEZ and benefited by 100% relief from taxes and duties, what should be the cost of replacement of machine? तो इसमें से क्या माइनस हो जाएगा? 6. ड्यूटी नहीं लगेगा, 6.0 वाला माइनस हो जाएगा, यस। तो 23.98 हो गया हमारा करेक्ट आंसर। हाँ, 23.98 करेक्ट। करेक्ट ना सर? यस। अब आप देखो सर एक्यूरेसी ऑफ योर आंसर। पहला तो हो गया आपका 1750 सही आंसर है। If you need to go back to question, let me know. We'll go back to question. है ना? जाने की जरूरत है? नहीं नहीं, अभी नहीं। 15 लाख प्लस 2.5 लाख हमने ईद किया था। हाँ? यस। अब ये टैक्सेज एंड ड्यूटीज के बारे में देखिए 608 हाँ 958 है आंसर सही, ये देखिए, ठीक है सर। अब आ जाओ ट्रांसपोर्ट चार्जेस 20,000 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। देन रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 30,06,958 करेक्ट ना? यस। 23. एंड लास्ट इज 23.98 इज करेक्ट, ठीक है सर। तो ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, मैं भेजूंगा आज आपको ये सारा क्वेश्चन, ठीक है ना? इसको आप बार बार करना। दिस इज द मोस्ट, ये आपने कर लिया तो आपके सारे फंडे क्लियर हो गए, ठीक है सर। एब्सोल्युटली चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्वेश्चन है ये, बट बीइंग इंजीनियर वी हैव टू डू इट, है ना? तो ये क्वेश्चन आप बार बार करना, इसको मैं भेज दूंगा आज व्हाट्सएप पे सर। यस सर। 10 मिनट और बचा है सर, ये क्वेश्चन और कर सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर 5। ये मैंने टीचर नहीं रखी।
क्लियर क्वेश्चन? ये Yes. सिंपल है, इसके पहले वाले क्वेश्चन से सिंपल है सर ये। बस एक ही चीज है कि थोड़ा सा इकोनॉमिक लाइफ पे इसमें प्ले किया है। हाँ, बहुत पुराना मशीन है, मतलब 2010 में सर इसका लाइफ खत्म हो जाता है। दैट इज ठीक व्हाट है। आई एम सेइंग कि हाँ, वो वाला फंडा आपका आना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। दैट फंडा इफ यू आर क्लियर देन यू विल बी एबल टू हैंडल दिस क्वेश्चन। सो पहला है व्हाट इज यूजफुल लाइफ ऑफ कॉर्नफ्लेक्स प्रोडक्शन लाइन? 15। नहीं 15 नहीं है, उसने कहा है एक लाइन और ऐड किया है। हाँ 5 years। ये था मशीनरी इज कैपेबल टू वर्क इकोनॉमिकली फॉर फर्दर 5 years। तो ये 95 विंटेज की है, 2018 में आप कर रहे हो, ठीक है? अच्छा, 95 से 2018 कितना साल हो गया? 23 साल। 23 साल। हाँ 23 साल हो गए ऑलरेडी। हाँ। और कह रहा है 5 साल अभी और इकोनॉमिकली काम करेगा इक्विपमेंट। 23 + 5 कितना हो गया? ये इनपुट आपने इग्नोर कर 28। एक इनपुट ये जो है आपके पास, मशीनरी इज कैपेबल टू वर्क इकोनॉमिकली फॉर फर्दर 5 years, है ना? मशीन प्रॉफिटेबली काम करेगा नेक्स्ट 5 year तक। तो 23 ऑलरेडी कंप्लीटेड है और 5 year और काम करेगा। कितना हो गया टोटल लाइफ सर? 28 years। 28। 28 year इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर सही था। आप 15, चूंकि एक सिंपल आंसर था, वो इनपुट था, तो आपने वहां से क्लू कर, बट एक्चुअल लाइफ इज 28 year। ठीक है। व्हाट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ सर प्रोडक्शन? सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे इफ द कंपनी टेल्स मी दैट मोर 5 years इट कैन इकोनॉमिकली प्रोड्यूस, तो मेरे पास उस समय मतलब शुड आई बिलीव द कंपनी और हाउ विल आई चेक इट एज अ वैल्यूअर? Good question. A study of balance sheet of the company, if it is making profit, fine sir, that is one factor which will help you to conclude that what client is saying is correct, right? If plant is operating profitably, and that is one of the critical process machinery, and if he's saying it will work further 5-10 years, like NTPC plants are producing 100% plus, even if it has completed 40 years of its life. तो वहां पे बिलीव करना पड़ेगा। एनटीपीसी इज नवरत्ना कंपनी ऑफ इंडिया, यू नो दैट, है ना? तो इस तरह का क्लाइंट है, उसका रिपुटेशन है, और बैलेंस शीट की स्टडी, दैट इज वन। तो दैट विल हेल्प यू टू बैलेंस बिटवीन क्लाइंट्स स्टेटमेंट एंड द एक्चुअल सिनेरियो ऑन द ग्राउंड। स्टडी ऑफ बैलेंस शीट इज द आंसर। सर एक्सक्यूज सर 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 इसमें वो मशीन का जो एक्सपर्ट है उसकी ओपिनियन ले सकते हैं? you you are free to do that also. What is the replacement cost of cornflakes production line in INR? दिया हुआ है, क्वेश्चन पे जाएं वापस, या नोट किया आपने? हाँ नोट किया, 612969। हाँ 612 969। 969। सी सही है आपका, बी सही, सी सही है। What is the amount of depreciation considering a straight line method? अब यहाँ पे देखिए, आप बुक वैल्यू नहीं निकाल रहे हो, ठीक है सर? यहाँ पे बुक वैल्यू बेकार हो गया, बिकॉज इक्विपमेंट हैज लॉस्ट इट्स इकोनॉमिक लाइफ। 100% डेप्रिसिएशन ले चुका होगा क्लाइंट, व्हाट इट ना? तो अब वो बुक वैल्यू का बात नहीं, यहाँ पे आपको नॉर्मल फॉर्मूला से जाना है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू से जाना है। $612 जो भी नंबर था आपका, 959 मल्टीप्लाइड बाय 5% ऑफ 5%। RCN, हाँ कितना होता है इसका 5% सर? 30,648। 30,648 माइनस कर दीजिए 612,969 से 5.82 582,320। 582,320। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्मार्ट प्ले करना है। यूजफुल लाइफ इक्विपमेंट का 28 ईयर है आपके पास, 28 उसमें 23 साल जा चुका है, तो बैलेंस लाइफ कितना बचा आपके पास? 5 years। 5 years। क्या होगा इसमें? इंटू 23/28, 28। यस करेक्ट ना? यस। यहाँ पे वो फॉर्मूला लगेगा। कितना आया सर नंबर?
26,270. सॉरी सर, कुछ गड़बड़ है। सेकंड प्लीज राय साहब। 58,320. है हाँ, 4,78,334. right. हाँ, B is the correct B answer. is the correct answer. So B is the correct answer. What is depreciated replacement cost? Depreciated. 612,969 612,969 minus 478,335, यही आएगा ना सर? Yes, sir. हाँ, yes. कितना है? 34. 134,634. So that is the correct answer. What is the salvage value in INR? वो तो निकाल ही दिया था आपने, 30,648. The correct answer. हाँ, yes. Correct ना? So let us see the answer now. Oh, ये आया यहाँ पे, देखो ये आया। Book value. हाँ, अब आपको यहाँ पे स्मार्ट प्ले करना है। ये क्वेश्चन मिक्स कर दिया इसने, ये अकाउंटिंग क्वेश्चन आ गया आपके पास, है ना? Company. क्लियर कर दिया कंपनी एक्ट के हिसाब से बुक वैल्यू क्या है। सीधा इसका साल्वेज वैल्यू होगा, इट्स लॉट्स इकोनॉमिक लाइफ एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है ना? साल्वेज वैल्यू कितना है आपका? 30,648 30,648 होगा इसका, सीधी सी बात है सर। आई एम सॉरी, it would not be 5% of replacement cost new. अकाउंटिंग क्वेश्चन है ना सर, ये होगा ओरिजिनल परचेज प्राइस जो है इसका, which is 2 lakh into 5%. Got it ना? अच्छा. Sorry, I also got confused. Hi sir. अरे बाबू जी, ये नंबर कहाँ से आ रहा है आपके पास? दीपक मेगावाट के नाम से कहीं स्टोर है। हाँ, मेगा मार्ट भी लिखा हुआ है इसमें, है ना? हाँ, आ रहा है। और ट्रू कॉलर लगाए हुए है ना, पता नहीं कौन फोन कर रहा है उसको। यहाँ ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, करूँ बात थोड़ी देर में? हाँ, थोड़ी देर करता हूँ। मैडम ठीक है। गुड़िया खुशी, अरे वो सुनिए, अरे उस रूम में बैठी हुई है। ठीक ठाक है अभी ठीक है। रात में गड़बड़ था, सुबह टेस्ट हो गया, 2,400 रुपये मेरे खर्च हो गया, है ना? हाँ, करता हूँ फोन। थैंक यू। हेलो, हाँ सर, सॉरी, फ्रेंड का। So it would be 2 lakh into 5%, which is 10,000. ये अकाउंटिंग क्वेश्चन हो गया ना सर? सर ये वाला मतलब ये क्यों लगाया हमने? ये सब अकाउंट के टर्म है सर। ये क्यों लगाया हमने? 2 लाख तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू पे लगता है यूजुअली। नहीं, मैंने वही कहा ना सर, ऊपर वाला क्वेश्चन रिप्लेसमेंट कॉस्ट से हैंडल हुआ, बिकॉज दैट वाज नॉर्मल क्वेश्चन, बट ये अकाउंटिंग क्वेश्चन आ गया इसी में। इस क्वेश्चन में दोनों मिक्स कर दिया आपको। इट वुड बी 2 लाख into 5%, ठीक है ना? दैट वुड बी 10,000। सर ये अगर लाइफ मतलब खत्म हो गया, इसके लिए लाइफ खत्म हो गई इसकी, कंपनी एक्ट के हिसाब से लाइफ खत्म हो गई। ओके। और कंपनी एक्ट के हिसाब से उसका वैल्यू 2 लाख ही है, ठीक है ना सर? तो वो 2 लाख का ही 5% ले सकता है अपने बैलेंस शीट में बेनिफिट इसका। यू कैन नॉट टेक ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू बेनिफिट इन बैलेंस शीट, है ना? टैक्स अथॉरिटी का अपना अलग रेगुलेशन है सर, वो दे गो बाय दैट। सो यूजफुल लाइफ इज 28 करेक्ट आंसर, ठीक है ना सर? दूसरा 612,969 आपने निकाला, वो भी सही है आपका। ये आपने 478,335 करेक्ट आंसर, ठीक है। ये 134 भी करेक्ट आंसर हो गया सर आपका, सब करेक्ट आंसर हुआ इसमें। ये 3648 है, 10,000 देख लीजिए, दैट्स व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग, ठीक ना? क्लियर? यस। So exactly our watch is at 11. So you are free to take break or want to continue. That's your conclusion, because you are putting more labor than me.
सर 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। हाँ 10-15 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। 10 मिनट का ब्रेक, सो वी असेंबल एट 11:10, करेक्ट? ओके सर। राइट सर, सी यू। सर एक मिनट, अच्छा अभी अच्छा। जी वर्मा जी कुछ पूछ रहे थे सर। हाँ हाँ सर, मैं ये इसमें इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है, इसमें इसमें स्क्रैप वैल्यू 3065 लिया है, वो कहीं पर दिया हुआ है क्या स्क्रैप वैल्यू? On which question we are? थर्ड सर। Third. इसमें करंट रिप्लेसमेंट कास्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू करके किया, स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैंने वही बोला ना सर, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है ये। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू यूज लाइफ बाय टोटल लाइफ, यहाँ पे तो वही लग गया ना फॉर्मूला सर। रिप्लेसमेंट कॉस्ट माइनस साल्वेज इनटू 23/28, ये फॉर्मूला वही लगा सर। यहाँ पे देखो, ये ब्रैकेट नहीं दे पा रहा है, कंप्यूटर से टाइप किया होगा, दिक्कत है इसको, है ना? अच्छा अच्छा, ब्रैकेट आना चाहिए यहाँ पे, आई कांट पुट ब्रैकेट ऑल्सो। यहाँ सर 3065 कहाँ से आया सर? 3065 3065 6 पचे 30,000, 30065 है सर वो, जो करेक्ट है ना आपका। इट इज नॉट 30, स्पेलिंग मिस्टेक है सर, 30648 है नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बस वही पर ये कंफ्यूज वाला हूँ सर, वैल्यू ठीक है। दैट इज ओके सर, 30648 है सर। हाँ ओके ओके सर। वो टाइपिंग मिस्टेक है सर, लेट अस नॉट गो बाय हाँ दैट। हाँ, ठीक है सर, रिसर्च इज प्रिपेयर्ड बाय ए नॉन इंजीनियर, ठीक है ना? तो ठीक है टाइपिस्ट सर। की एरर से आप मिसगाइड ना हो, लेट अस गो हाँ बाय द करेक्ट नंबर। ठीक है साहब, तो ठीक मिलते है, हैं 11:10 पे। ठीक है एडवांस सर, खराब हो गया, 10 11 15 पे मिलते हैं सर, ठीक है? 11:15। ओके ओके सर, ओके सर।
जितना केस स्टडी हमने किया रहा है साहब अभी तक, उतना ही केस हो रहा है अभी। अच्छा, हाँ, इसके बाद आई थिंक कि फंडामेंटल आपके क्लियर हो जाएगा, है ना। तो वर्मा जी आ जाए जरा, रौनक भी अभी नहीं आया। यस सर। आप बीआईटी मिश्रा से किए हैं क्या? जी जी सर। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मेरा होम टाउन भी रांची है एक्चुअली। ओह अच्छा, ग्रेट ग्रेट, अच्छा। तो मैंने, आप पहले दिन बोले थे ना बीआईटी, हाँ हाँ हाँ, उसी समय मेरे को लगा कि आप बीआईटी मिश्रा से ही होंगे। राइट सर। 87 में पास आउट किया था हमने। ओह ओके ओके, यू आर वेरी सीनियर टू मी। हाँ नेचुरल है सर, नेचुरल है। 83 बैच है बस। So welcome back Raunak, Verma sahab. Yes, sir. We had done 5 case studies, है ना। Yeah. Now we are going to do 6. 10 है टोटल हमारे पास। तो 10 के बाद मेरे ख्याल से at the end of the session your fundamental should be clear. और इसमें तो पूरा दिन लगाना चाहिए मेरे ख्याल से, बट उतना केस स्टडी ही नहीं है अपने पास। तो इसके बाद हम केस डिस्कस करें जो 13 को आया था, 13 वाला एग्जाम जो मैंने दिया था ना 13 अगस्त को, उस दिन जो क्वेश्चन आया था वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो एक्चुअल क्वेश्चन है लाइव ग्राउंड पे, इसके बाद करेंगे वो। So this is the 6th question. A company XYZ has commissioned the integrated automated plant to produce refined soya oil in 2011. केस समझ में आया? इट्स ए रिफाइंड सोया ऑयल प्लांट जिसका कि ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट जो है व्हिच इज मेन यूनिट, है ना, दैट इज नॉट फंक्शनिंग इकोनॉमिकली। इसमें कुछ प्रॉब्लम है इसको, ड्यू टू हायर कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन which leads to higher cost of refined oil than market price. So you can't survive in the market, especially for consumer goods like this. So integrated plant cannot be redesigned, modified to run economically. So these are the important inputs from this case study perspective. The valuer has found this thing. Useful life is 15 years. Total estimated cost of new plant is 10 crore. So RCN is 10 crore. Salvage is 5%. RCN. And date is March 2018. Valuation date. बस वही मेन इनपुट है जो कि इस केस स्टडी के क्वेश्चन को हैंडल करेगा। एक्सट्रैक्शन solvent extraction plant is not functioning economically and redesigning or modification is also not possible to make it viable. तो 5 साल से यूनिट बंद पड़ा हुआ है। ये दोनों चीजें जो है आपके लिए वाइटल इनपुट है to handle these questions. What is the historical cost of asset in INR? 8 crore। 8 इसमें crore. स्ट्रेट, हाँ। That goes without any discussion. What is the replacement of asset in INR? 10 crore। 10 crore. That's correct answer. There is no confusion on that. These two inputs are given very clearly in the question itself. What is balance economic life? So plant was commissioned in 2011, purchased, और हम वैल्यूएशन कर रहे हैं 18 में, है ना, और 5 साल से प्लांट बंद है ना। इकोनॉमिक लाइफ, बैलेंस इकोनॉमिक लाइफ, दैट इज इम्पोर्टेंट। सर आपका ये विंडो में Sure. कुछ आ रहा है क्या सर? ये बीच में ये मेरा- कुछ, ये विंडो, हाँ बस अभी गया सर, ये फिर आ रहा है कुछ। ये रेड लाइन वाला, हाँ हाँ सर। प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम द शेयर्ड एप्लीकेशन। क्या कर रहा है? सर इसको पकड़ कर ड्रैग कीजिए थोड़ा, मतलब नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं आ रहा है ये। हाँ गया 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 गया।
सर बैलेंस इकोनॉमिक लाइफ तो मतलब 7 ईयर हो गया, तो 8 ईयर ही बचा हुआ है इकोनॉमिक। Zero, sir. Total, that is the confusion. Zero or 8. Economic life will be 0 as per me. So let us see the correct answer also. What is the amount of depreciation considering a straight line method? मैं तो क्वेश्चन ही नहीं देख पाया सर, कोई बात नहीं है। I'm sorry, I'll go back again. नहीं sir, question देखना जरूरी है. How can you answer these questions without seeing the question? Yes. नीचे सर जाने दीजिए। Okay. चलें क्वेश्चन पे वर्मा साहब। हाँ पहला दोनों क्वेश्चन हैंडल हो गया एंड आई थिंक हाँ, वो तो ठीक है सर, हिस्टोरिकल और हाँ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू हो गया। बैलेंस इकोनॉमिक लाइफ हाँ, जीरो जीरो। जीरो वी हैव डिस्कस्ड। नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कंसीडरिंग a straight line method? ये होना चाहिए सर 4.43। मैं कर रहा हूँ सर। Your answer is 4.43. यस सर। Any other guess? Yes, sir. 4.4, sir. मेरे हिसाब से इसका डेप्रिसिएशन जो होना चाहिए, बिकॉज 5 साल से इक्विपमेंट यूज में ही नहीं है, 5 साल से प्लांट बंद है, तो सिंपल इट्स वैल्यू शुड बी स्क्रैप वैल्यू। आई मीन टू से कि मतलब 10 करोड़ माइनस 50,000 इंटू 7/15 किया होगा आपने ना? हाँ 950 इंटू 7/15, यस सर। तो दैट इज गिविंग यू 4.43। यस ठीक है, एक आंसर तो ए हो गया। सर थोड़ा आपका थोड़ा वॉइस कम आ रहा है सर। इज इट ओके नाउ सर? हाँ ओके सर, अभी वो माइक थोड़ा खिसक जाता है सर। तो आंसर शुड बी ए एंड सी। सी। दो में कंफ्यूजन है, विल चेक इट। व्हाट इज द डेप्रिसिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट यूजिंग ए स्ट्रेट लाइन मेथड इन INR? डेप्रिसिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट
DRC निकालना है सर। तो गोइंग बाय योर फंडामेंटल इट इज 5.57, तो सर यहाँ पे वही आंसर हो जाएगा ना। और हाँ सर, गोइंग बाय माय फंडामेंटल इट इज D, ठीक है, इट इज D, करेक्ट ना। तो 5.7 व्हाट इज द साल्वेज वैल्यू ऑफ प्लांट इन INR, तो वो तो ठीक है, ए 50 लाख, यस। ए ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। अब इसका आंसर देखेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट 8 करोड़ 10 करोड़, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। हियर प्लांट इज नॉट कैपेबल टू रन इकोनॉमिकली, ये वाला थर्ड का आंसर, हेंस बैलेंस इकोनॉमिक लाइफ इज 0। ओके, तो रोनक वाज करेक्ट, है ना। लेट अस करेक्ट आवर थॉट प्रोसेस। यहाँ फोर्थ का आंसर दे रहा है, एसेट इज फुल्ली डेप्रिसिएटेड एज इट हैज नो बैलेंस इकोनॉमिक लाइफ। Depreciation is 95% of replacement cost, that is 950. तो मेरा करेक्ट था। So this we have to be clear about it. जब इनपुट कुछ हो तो इनपुट का मतलब होता है केस स्टडी में, if there is some additional input is there, तो बैलेंस नॉर्मल थ्योरी विल नॉट अप्लाई हियर, वो आपको माइंड में लाना पड़ेगा सर। डेप्रिसिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑब्वियसली 950 हो गया, बच गया 950, डेप्रिसिएशन निकल गया। साल्वेज वैल्यू ठीक है 50 लाख से, है ना, नो प्रॉब्लम। तो ये फंडा क्लियर हो गया सर। यहाँ वाला इस क्वेश्चन का फंडा था कि इफ देयर इज सम एडिशनल इनपुट यू हैव टू कंसीडर दैट थॉरोली। सर पांचवा जो पॉइंट है, डिप्रिसिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, हाँ, ये समझा नहीं। ये 9,50,000 ऊपर आपने डिप्रिसिएशन निकाला, फोर्थ में निकाला ना आपने 950। अच्छा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ओके ओके, करंट रिप्लेसमेंट 10 करोड़ हाँ, माइनस हाँ। 950, सो 50 लाख यू आर लेफ्ट विद, ठीक है। ओके। सर इसमें जो लिखा है नो इकोनॉमिक, नो बैलेंस इकोनॉमिक, वो जो एक लाइन लिखा है उसने, हाँ, पूरा हाँ। वही दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल क्लू ऑफ द क्वेश्चन, ओके, है ना। वंडरफुल सर। तो वी मूव टू नेक्स्ट नाउ। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, जो 4 स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। वो कंफ्यूज करने के लिए देते हैं सर स्टेटमेंट। आप कोई मटेरियल इनपुट है कि नहीं वो देखो सर। Which is the most accurate approach to derive the market value based on available data? अब इसमें थ्योरी कर दिया थोड़ा सा। मार्केट अप्रोच। मार्केट अप्रोच, वो रीसेल वैल्यू चार्ज इनपुट दिया इसलिए आप कर रहे हैं सर। तो सातवां का पहला का ले रहे हैं हम, ये वर्मा साहब डी है। एनी अदर आंसर? To derive the market value based on the available data. आपका 2011 में है, मार्केट अप्रोच चारों डाटा दिया है आपको, लेकिन आप देखो 11 का कोई डाटा है इसमें? नहीं है, नहीं है ना। तो एग्जैक्टली आपको रेप्लिका अवेलेबल नहीं है इंफॉर्मेशन। सर 2010 है कि 11 है सर? आई थिंक 11 है सर, क्वेश्चन इज 11 और 10 ही है। 10 ही है, हाँ हाँ।
तो दे रहा है कि कार विथ ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 10 इज अवेलेबल फॉर सेल एट 2.5 लाख। ठीक है ना, तो डाटा है आपके पास, ठीक है ना, 10 का रीसेल डाटा है, तो मार्केट अप्रोच शुड बी द करेक्ट आंसर, अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन इज कॉस्ट अप्रोच, तीसरा ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ये सारा इनपुट दिया हुआ है आपको, दिस विल हेल्प टू अराइव एट कॉस्ट अप्रोच, है ना, यही दो में एक आंसर है, तो वर्मा जी का ही सही मान के चलते हैं। विच इज द मोस्ट सुटेबल इंस्टेंस फॉर डिराइविंग द मार्केट वैल्यू, सेकेंड में आपको पहले का आंसर का क्लू दे दिया, ऑब्वियस है, स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट, यस, मोस्ट सुटेबल, है ना, ठीक है ना, तो स्टेटमेंट 1 हो गया, हाँ, दूसरा का ए हो गया, तीसरा ऑर्डर फॉर सुटेबिलिटी ऑफ अवेलेबल इंस्टेंस, 1 और 4 मोस्ट सूटेबल है क्योंकि 2010 का है, जिसमें से 1 इज द मोस्ट सूटेबल। मोस्ट सुटेबल 4 इज सेकंड Yes. मोस्ट सुटेबल, 80, 4 3 2, 8, हाँ 8, 10, 3 का डी होगा ना सर, डी। डी होगा ना सही, डी। तो 3 का डी हो गया, फोर्थ में आ जाओ, आउट ऑफ दीज विच वन इज लिस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनालिसिस ऑफ कंपेरेबल, कह रहा है मेक एंड मॉडल है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, यूसेज ऑफ कार है एंड कंडीशन, विच इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कह रहा है एलॉय व्हील्स है तो, एलॉय व्हील्स इन द कार, हाँ हाँ, alloy wheels, एलॉय व्हील इन द कार, सो फोर्थ का डी हो गया, फिफ्थ व्हाट ग्रॉस इज ग्रॉस ब्लॉक ऑफ द एसेट, 4 4 lakhs, lakhs, 4 lakhs। 4 lakhs, पांचवा का ए हो गया 4 लाख, ठीक है, सॉल्यूशन देख लो सर, मार्केट अप्रोच इज द करेक्ट आंसर, instance 4 is the most suitable instance, it has same year of manufacturing in comparison with the subject asset, तो दूसरा का ए नहीं है, इंस्टेंस 4 करा है, 1 नहीं है, further the sold instance has been given priority over available instance as it removes the factoring of discount negotiation, क्या है चौथा इनपुट देखिए अब आप, अगर ये गलत हुआ तो वो भी गलत हो जाएगा, अगला क्वेश्चन, कार विथ 10, यहाँ पे देखो सर, हैज बीन सोल्ड ए मंथ बिफोर द डेट ऑफ वैल्यूएशन एट 2 लाख ओनली, ठीक है सर, यस, फोर बिकम मोर सुटेबल ना, ठीक है सर, तो ये गलत हुआ था हमारा, ये इसका आंसर भी गलत हो जाएगा, क्या नाम है इसका भी, 1 4, हाँ 4 1, ये बी हो जाएगा सही, ठीक है, हाँ, बी हो जाएगा, यस, थर्ड का डी नहीं होगा, बी होगा सही है, इसी आंसर पे हाईएस्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू 4 1 2 3, ठीक है ना, यस, फैक्टर ए बी सी आर एसेंशियल फॉर द मार्केट, अवेलेबिलिटी ऑफ एलॉय व्हील इज नॉट ए क्रिटिकल, करेक्ट आंसर भाई, ग्रॉस ब्लॉक इज 4 लाख, सही है, ठीक है, पर वही यही दो क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग घूमे। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन,
ऑलमोस्ट तीसरे क्वेश्चन की तरह है जो डिफिकल्ट था थोड़ा। चलें क्वेश्चन पे सर, हो गया क्वेश्चन रीडिंग? यस सर। Okay. So first question says, what is the percentage loading, including applicable freight, charges, insurance, taxes, etc., except pre-operative expenses and interest on X work? 11.5 सर। एक्सप्लेन कर दीजिए सबको। सर इसमें वही जो दिया है कि 20,000 ट्रांसपोर्टेशन, 50,000 टैक्स और 5,000, 30,000 और 10,000, ये तीनों भी दिया हुआ है। इंस्टॉलेशन कमीशनिंग का है 30,000 जी। और 5,000 है अनलोडिंग एंड लोडिंग और फाउंडेशन है 10,000। तो दीज आर द टोटल लोडिंग अपार्ट फ्रॉम द एक्स वर्क्स। कितना लोडिंग है टोटल अमाउंट सर? दिस इज एक्चुअली सब मिला करके 1.15 lakhs। और बेसिक कॉस्ट आपका है 10 लाख। 10 लाख। तो 11.5 11.5%। करेक्ट आंसर। कुछ छूट तो नहीं रहा है आपसे? इंश्योरेंस फ्रेट 20,000 ले लिया आपने, टैक्स ले लिया 50,000। हाँ मैंने प्री ऑपरेटिव नहीं लिया है सर। प्री ऑपरेटिव छोड़ना है, इंटरेस्ट छोड़ना है, ठीक है ना? अच्छा हाँ हाँ प्री ओके। ऑपरेटिव और इंटरेस्ट छोड़ना है, तो ठीक है। 2.5% जो छोड़ना है हमें प्री ऑपरेटिव, 11.5 और इंटरेस्ट 9.8% वो छोड़ना है, बाकी सब लेना है। यू आर राइट। तो 20,000, 50,000, 70,000, 5, 75,000 और 30, कितना हो गया सर? 1.5 प्लस 10, हाँ 1.15, 15। 11.5, ठीक है सर। दैट इज अ गुड वन। What is the amount of pre-operative expenses in INR? If you want to go back to question, I will go. बताइएगा। हाँ सर, गो बैक टू क्वेश्चन। यहाँ पे लाइन। $27,000। सीधा देखो ना सर, 10 लाख रुपए आपका ओरिजिनल कॉस्ट है, प्लस एप्लीकेबल एक्सपेंस, सारा एक्सपेंस एप्लीकेबल है इसमें, ठीक है ना? तो सारा एक्सपेंस एप्लीकेबल हो गया तो आपका मतलब इंटरेस्ट भी इसमें जुड़ जाएगा। अच्छा इंटरेस्ट। जी जी। तो 10 लाख प्लस ये जोड़ा था हमने 1,15,000, ठीक है? प्लस
9.8% इंटरेस्ट रेट जोड़ दीजिए। तो ये 11.50 का जो है 11 नहीं 10 11 15 का 9.8% 9.8 निकालिए जरा कितना आता है इसमें। मैं एक्सेल सीट खोल ही लूँ सर। 11-15,000 इसका ले लो आप दिस इंटू 1.092 098 ले लिया ना, हाँ या 1.98 कर दो ना, सही है सर 1.098 ठीक है ना। हाँ ये हो गया सर 12-24-270 ठीक है ना। और इस पे आप लगा दो 2.5% 0.025 30,606 आ रहा है हाँ ना सर। 30,000 हाँ सर 30,606 यस 606 से 7 टू बी प्रिसाइज है ना। वो 0.75 दिया बाद में। कोई ऑप्शन ही नहीं है सर यहाँ पर। सर थोड़ा माइक नजदीक कर लेंगे सर। मैं कह रहा हूँ कोई ऑप्शन ही नहीं है सर 30,000 का आपके पास हाँ है ना। तो इट मीन्स हम जो इंटरेस्ट रेट लगा रहे हैं वो एक्सपेंसेस दे रहा है, इंटरेस्ट के बारे में लिखा नहीं है स्पेशली है ना। तो इंटरेस्ट अगर हटा देते हैं तो 1150 का हो जाएगा ये। 1150 का ही हम ले लें 2.5% इज इक्वल टू दिस इनटू 0.025। हाँ 27,000 ये देयर इज वन ऑप्शन है, ऑप्शन ये यस ऑप्शन है हाँ। इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं जोड़ा इसने। अमाउंट ऑफ 27,875 ओके सीधा आंसर है। अब वही कंफ्यूजन रह गया बिकॉज वहाँ पे हमारा 30,000 आ रहा है। देखते हैं अभी आंसर, देखते हैं सर लेट अस सी। सर प्री ऑपरेटिव में इंटरेस्ट तो नहीं जुड़ाएगा ना क्योंकि इंटरेस्ट अलग से लिखा है उसने। हाँ प्री ऑपरेटिव के बाद भी दिया है उसने, दैट इज व्हाट। अच्छा हाँ 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 ओके प्री ऑपरेटिव के एक्स बाद वर्क भी एक्स वर्क लिखा है सर। एक्स वर्क मतलब इसमें 10 एक्स हुआ। नहीं, बट यहाँ पे दे दिया ना सर इंश्योरेंस टैक्सेस ईटीसी है ना। टैक्सेस टैक्स भी ले ही लिया हमने ठीक है। एक्सेप्ट प्री ऑफ एन इंटरेस्ट, देखिए ये गलती कर रहे थे ना हम लोग। ऊपर के क्वेश्चन में एक्सेप्ट प्री ऑफ एन इंटरेस्ट लिखा हुआ है यस एक नंबर पे देखिए अगर आप। और यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज अमाउंट ऑफ प्री ऑपरेटिव Yes. एक्सपेंसेस इन आईआर। तो हाँ वो इंटरेस्ट छोड़ के है एज यू राइटली सेड ठीक है सर। तो वो इसलिए वो सेकेंड क्वेश्चन कंटिन्यूटी में है। एंड व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट इन आईएनआर। इसमें सर 9.8 इंटरेस्ट आ जाएगा अपना यस दिस माइनस दिस हो जाएगा दिस माइनस दिस। तो वो आ रहा है 1.09 हाँ 1.09। तो वो है ऑप्शन आपके पास। लेकिन वो नहीं है सर इसमें। 112002 इसमें प्री ऑफ एक्सपेंसेस भी जुड़ेगा सर, तब निकलेगा ये व्हाट इज ना। बिकॉज ग्रॉस ब्लॉक जो होता है वो प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस भी इसमें कैपिटलाइज होगा। वो तो प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस हमारा 27 आया तो ये हमारा जुड़ जाएगा इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। अब इससे निकालेंगे अगर हम इज इक्वल टू दिस माइनस हाँ ये 137,145 आ गया। वहाँ से ऑप्शन है अपने पास से। सर ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा ये कैसे आए ये मतलब इंटरेस्ट जो है हमारा एक्स वर्क्स पे निकलेगा प्लस एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस पे भी आएगा ना सर बिकॉज एक्सपेंस भी तो खर्च कर दिया ना आपने। तो वो भी तो हाँ लोन लेके ही खर्च किया आपने हाँ हाँ राइट ना। अब यस उसमें प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा दैट इज द क्वेश्चन। हाँ ओके 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 गॉट इट ना। यस तो प्री ऑफ जोड़ने के बाद जो है हमारा नियरेस्ट आंसर आ रहा है ये भी गलती आ रहा है सर। इसमें कुछ गलती 1.9 1.12 1.22 ये दो में कोई करेक्ट है। 1.12 और 1.22 में कोई करेक्ट है।
देखते हैं हाउ दे हैव वर्क। हाँ, 1/12 आ रहा है सर। 12 आ रहा है सर। पास में आ कितने रहा आ है, रहा है? 12 के पास में। पास में आ रहा है एग्जैक्टली, हाँ, ये नियरेस्ट नंबर वही है। एग्जैक्टली आ रहा है 1.1200175, मतलब हाँ तो वो एक हाँ 12 वाला ही सही होना चाहिए सर। लेट अस हाँ। सी व्हाट इज द करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट इन आईएनआर। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैसे निकालोगे सर आप? करंट रिप्लेसमेंट क्लू ही नहीं है आपके पास। नहीं सर, 2018 में ही हम 2018 में ही ले रहे हैं ना। हाँ 10 lakhs का है ना सर। वो तो 2013 का है ना, 10 लाख। नहीं इंडेक्स तो दिया नहीं आपको। तो उस पे क्या है कि उस समय से इंटरेस्ट रेट आज तक का ऐड हो जाएगा। नहीं, आरसीएन दिया हुआ है। नहीं दिया है। एंड व्हाट इज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, आरसीएन निकलेगा तभी डेप्रिसिएशन निकलेगा। व्हाट इज डेप्रिसिएटेड कॉस्ट, वो भी निकलेगा। अब इसका आंसर देखते हैं सर। 11.5 वाज करेक्ट, ठीक है, यस। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस का निकाला इसने 2.5% ऑफ एक्स वर्क कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, टैक्सेस, लोड एंड अनलोड चार्जेस, फाउंडेशन कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग। इंटरेस्ट नहीं जोड़ा सर यहाँ पे, ठीक है ना। तो फिर एक 12 वाला आंसर आपका ये 27,875। वी कैलकुलेटेड दिस सर। इंटरेस्ट को देखो। ओके, 27,875 यस। हमने हाँ कैलकुलेट किया हाँ, था, ठीक है। यस। इंटरेस्ट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड हियर, दैट इज क्लियर। और नेक्स्ट इज इंटरेस्ट कॉस्ट निकालने के लिए क्या किया इन्होंने, सब जोड़ा। एक्स वर्क, इंश्योरेंस, फ्रेट, टैक्सेस, लोड एंड अनलोड चार्जेस, फाउंडेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग, प्री ऑपरेटिव भी जोड़ दिया, ठीक है सर। ये सब कुछ जोड़ के इनटू, इसको ब्रैकेट में ले लीजिएगा। ये ब्रैकेट दिया नहीं है इसमें से, यहाँ से ब्रैकेट होगा, हाँ, यस। यहाँ तक ब्रैकेट होगा, एंड देन 9.8% लगा दिया, तो दैट कम्स 1/12। बिल्कुल सही आंसर था सर, ठीक है। करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी 1/12 निकाल लिया आपने, तो ऑब्वियस है 10 लाख प्लस 1.15 वो जो आया आपका वो, प्लस 27,000 जो आपने प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस निकाला, प्लस 1/12 जो इंटरेस्ट लगा, हाँ, यस। है ना सर। इंटरेस्ट ऐड हो गया तो वो 1254 आ गया आपका। और डेप्रिसिएशन अगर 1254 मालूम हो गया फिर तो आप सब कुछ निकाल सकते हो सर। नहीं, 1254 का 5% निकाल लिया और उसको वो फॉर्मूला लगा दिया, इकोनॉमिक लाइफ बाय बैलेंस इकोनॉमिक यूज टोटल लाइफ, है ना। सर, अगर जैसे ये जो पांचवा पॉइंट में जो लिखा है कि depreciation, this depreciation value, it will not be in the book value, right? ये चीज कॉस्टिंग। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट इफ क्वेश्चन टॉक्स अबाउट, देखिए, ग्रॉस ब्लॉक, नेट ब्लॉक और क्या बोलते हैं बुक वैल्यू, ये सब टर्म बैलेंस शीट के हैं। ओके। सो अकाउंटिंग चैप्टर हुआ कि नहीं हुआ आपका? अकाउंटिंग चैप्टर हाँ, में हुआ बताया गया हुआ। इन सब चीजों। हाँ हाँ आपको बैलेंस शीट देखना भी बताया गया होगा वहाँ पे। आई हाँ डोंट नो है। हाँ, बताया गया था, लेकिन एक्चुअली हमको प्रैक्टिस करना है थोड़ा सा वो तो आप दो प्रेजेंटेशन। चार कंपनियों के बैलेंस शीट लेके आप देख लो सर, है ना। उसमें फिक्स एसेट रजिस्टर शीट देखना आप, वही आपके मतलब की है ना। ढूंढना, आप फिक्स एसेट ओके। रजिस्टर मिल जाएगा। बैलेंस शीट में आपको जहाँ पे दिखेगा ना फिक्स एसेट टोटल इतना है हमारे पास, उसका शेड्यूल नंबर लिखा होगा, वो शेड्यूल जाएंगे आप उस पेज पे तो दिख जाएगा। शुड आई शो यू वन कंपनीज बैलेंस शीट हियर? हाँ सर। हाँ, दिखाता हूँ। ये मेरे कोई क्लाइंट हैं, उनका बैलेंस शीट है, ठीक है सर। एक्सपोर्ट लिमिटेड करके हैं,
17-18 का बैलेंस शीट है, आपको बैलेंस शीट ऐसे दिखेगा सर। ये सब जब स्टेटमेंट है, ये सब कोई मतलब की चीज़ नहीं है। आपको सीधे जाना है किस पेज पे, ये सब स्टेटमेंट है, ऑडिटर्स स्टेटमेंट रिपोर्ट और ये वो है ना, डिफरेंट डिक्लेरेशंस बाय डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स, ऑडिट रिपोर्ट है ना, सब लगा होता है इसमें। ये सब पहले लगाना है एज पर न्यू कंपनी एक्ट है ना। एंड वंस यू जस्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे आप सीधे सीधे सीधे, ये खन्ना एंड ब्रदर इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट उनकी रिपोर्ट लगी हुई है, उसका ऑब्जर्वेशन क्या है इस पर, ये यहाँ से शुरू होता है, ठीक है ना। ये बैलेंस शीट है कंपनी का, ठीक है। ये 2 साल का दिखाता है, 31 मार्च 2017 में क्या था, 31 मार्च 2018 में क्या है, ठीक है सर। यहाँ पे देखेंगे शेयर कैपिटल इतना है, ये सब का मतलब की नहीं है। यहाँ पे देखिए नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। अब जो सैप सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है उन्होंने अकाउंटिंग के लिए, सैप या डिजाइन के लिए कैड लगाया हुआ है, ये भी एक्सपेंड करता है, बट दे आर सॉफ्टवेयर, दे आर इंटेंजिबल, करेक्ट। तो वो उसका भी जो खर्चा है वो यहाँ बुक होता है, ठीक है ना। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब स्टॉक, करेंट इन्वेंट्री जो बोलते हैं आप, वो यहाँ दिखता है, ठीक है ना। तो दिस इज फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, करेक्ट ना। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डाल दिया शेड्यूल नंबर कितना है, 12 दिख रहा है आपको, शेड्यूल नंबर 12। शेड्यूल, ओके। आप 12 नंबर शेड्यूल पे सीधे जाएंगे तो नीचे शेड्यूल सब लगा हुआ है, देखिए सब शेड्यूल, सब डिटेल में शेड्यूल लगा हुआ है। तो द मोमेंट यू गो टू शेड्यूल नंबर, देखिए शेड्यूल शुरू हो गया है ना। तो शेड्यूल नंबर 12 पे जैसे ही हम जाएंगे, ये 6 नंबर है, 8 नंबर आ गया, ठीक है। ऐसे करके आपको इजी है देखना इसको। ये आपको दिखा शेड्यूल नंबर 12, ये है शेड्यूल नंबर 12, करेक्ट। ये शेड्यूल नंबर 12 है, रोटेट व्यू कर देता हूँ आपको देखने में आसानी रहेगी। हाँ करेक्ट, दिस इज द टिपिकल फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, ठीक है ना। ओके। तो पहला आपको दिखेगा लैंड फ्री होल्ड, ठीक। लैंड तो आपका वैल्यूएशन स्कोप में है नहीं, तो लैंड भूल जाओ आप। फैक्ट्री बिल्डिंग यहाँ दिख रहा है, देखिए कितने का बिल्डिंग है इनका, 3 करोड़ 70 लाख का था 31 मार्च 17 को, ठीक ना। उसमें कोई एडिशन नहीं किया इन्होंने, कोई एडिशन नहीं किया, नया बिल्डिंग कुछ नहीं बनाया था, ठीक है ना। तो टोटल 372 ही रह गया 31 मार्च 18 को भी, 17-18 के बीच में कोई नई बिल्डिंग नहीं बनी। 2017 में भी कोई एडिशन नहीं था बिल्डिंग का, पर 2017 में इनका वैल्यू यहाँ 19 है ना। तो 2018 में टोटल बिल्डिंग इनके पास हो गया 1 करोड़, सॉरी हाँ, ये आप देखिए, अब ऊपर देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पढ़िए इसको और बड़ा ग्रॉस ब्लॉक, हाँ, दिस इज द वर्ड ग्रॉस, ग्रॉस ब्लॉक। ये इनका ओरिजिनल प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट है। ओरिजिनल जो बिल्डिंग बनाने में खर्चा किया 90 में बनाए प्लान, 19 बना हुआ है, ये खर्चा उनका उस समय हुआ, ठीक है ना। ये देखो प्लांट एंड मशीनरी सर, कितने का प्लांट मशीनरी है इनके पास, 3 3 6 एक साथ 12 करोड़ 24 लाख का, ठीक ना। ये 17 में था, इतना नया मशीन लिया इन्होंने, एडिशन किया 17-18 में, ठीक है, और इतना बेचा भी, ये डिडक्शन है ना। तो टोटल इनके पास बच गया 149 का, 114.91 करोड़ का मशीन है इनके पास। इसका मैंने वैल्यूएशन किया हुआ है, इसलिए डाटा मेरे पास है ना। तो यू विल सी हियर नाउ नेट ब्लॉक, देखिए ये वर्ड है नेट ब्लॉक। कोई कोई कंपनी इसके बदले बुक वैल्यू यूज करती है, ठीक है ना। ये जो है हिस्टोरिकल ब्लॉक, हिस्टोरिकल वैल्यू, एक्विजिशन कॉस्ट, ग्रॉस ब्लॉक है ये सब इंश्योरेंस, इंस्टॉलेशन, फाउंडेशन सब लगा के ये कॉस्ट है, ठीक है सर। इसकी भी बैकअप इनके पास है, ओके। ये 12 करोड़ कहाँ से आया वो दिखाओ मुझे, तो वो भी कहेंगे तो वो 1 सेकंड में भेज देते हैं वो, है ना। अकाउंटिंग इज दिस। तो ये आपके लिए मोस्ट क्रिटिकल पेज है इन एनी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो अब मेरे ख्याल से फ्रॉम वेयर वी आर कमिंग, तो इस पर्पस के लिए निकलेगा, तो दैट हैज टू गो बाय द कंपनी एक्ट। ये सारे वैल्यूज वर्कआउट होंगे कंपनी एक्ट पे, और उसके लिए आपका ये जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है
इसी पे काम करेंगे आप, रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू पे काम नहीं करेंगे। व्हाट इट ना वर्मा जी? हाँ सर। फॉर इंजीनियर बैलेंस शीट इज ए डिफिकल्ट प्रोपोजिशन, इसलिए मैं थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई एम ऑल्सो नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव लर्नड ऑल दिस थिंग्स, है ना। तो वी नीड टू लर्न दिस टू बी एजुकेटेड अबाउट दिस लिटिल बिट। और किसी कंपनी का बैलेंस शीट, किसी की वेबसाइट पे जाओगे, द कंपनी यू आर वर्किंग फॉर, उसका बैलेंस शीट खोल कर देख लेना, उसमें भी ये सब चीज़ें दिखेगी। बैलेंस शीट बनाने का यही फॉर्मेट है, ठीक है सर, कंपनीज के लिए। दे कांट डेविएट दिस। Shall I close this, sir, now? Yes, sir. Okay, fine. So from where we return back? No, not this. Ah. Is it visible to all of us now, screen? No, sir. नहीं? नो। Now it's visible. हाँ, ठीक है ना? yes. तो इसीलिए यहाँ पे अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट से शुरू हो रहा है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट से, ठीक है। बट द मोमेंट यू गो टू कंपनीज नेट ब्लॉक और बुक वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो यू हैव टू गो बाय द हिस्टोरिकल कॉस्ट। वो एक फंडा क्लियर कर लो सर। क्वेश्चन केस स्टडी 9। ये फ्रेट ऑन बोर्ड है, एफओबी, मतलब इसमें इंश्योरेंस इंक्लूडेड नहीं है ना? फ्री ऑन बोर्ड बोलते हैं इसको, नॉट फ्रेट। हाँ, या फ्री ऑन बोर्ड। मतलब आपके कंट्री ऑफ ओरिजिन में शिप पे दो लोड करके दे देगा आपको। हाँ ठीक है ना, शिप पे लोडिंग तक कॉस्ट उसका है, हाँ, और वहां से सी फ्रेट आपका है, वहां से इंश्योरेंस भी आपका है, वहां तक इंश्योरेंस उसका है, अप टू पोर्ट ऑफ ओरिजिन, यस। राइट। एफओबी, इसलिए ये सब टर्म आपको बताया जाना चाहिए था ड्यूरिंग योर कोर्स। एनीवे, सेल्फ लर्निंग कर लीजिएगा सर। 4-5 होते हैं, एक्स वर्क होता है, एफओबी होता है। एक्स वर्क मतलब फैक्ट्री में ही आपको लोड करके दे देगा, है ना। और फ्री ऑन बोर्ड होता है, सीआईएफ होता है, एक सीएनएफ होता है, कॉस्ट एंड फ्रेट ओनली, इंश्योरेंस इज आउट ऑफ दैट स्कोप। तो राइट फ्रॉम सेलर्स प्रेमाइसेस यू हैव टू ऑर्गेनाइज इंश्योरेंस, है ना, एज ए बायर। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट मार्केट में पॉपुलर है। तो दो तो आ गए आपके पास, एफओबी एंड सीआईएफ। सीआईएफ केस पहले वाला था, ये एफओबी केस आ गया आपके पास।
When you are done with the question, tell me, we will go to question now. ठीक है सर. Yes, sir. What is the historical FOB price in INR? 36 lakh B. 60,000 into 65. Correct, sir? Yes. हाँ 60,000. 60,000 into 60 सर. 60 है वो. अच्छा, मैंने 65 लिख दिया था उसमें. 36 Flat. Yes, sir. FOB. ठीक है. Okay. Should be correct. Should be correct. What is the current replacement cost in INR? $54. Explain कर दो रौनक, आसान हो जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा आपका. So basically, negotiated cost was at 65, Good. मतलब 65,000 USD at Right. 65. So it Okay. costs 42 lakhs, 0.25. Then the freight and insurance is 2 lakhs, and taxes is 10 lakhs, and total of three of both 42 plus 2 plus 10 is Tax is 54. 10 lakh or 1 lakh? Taxes is 10 lakhs. 10 lakh. 10 lakh. Correct. 10 lakh. Correct. ठीक ठीक ठीक. हाँ. 54. हाँ. 54. Yes. So correct answer is 54.25 lakh. B. ये का 36 था. ठीक है. तीसरा का 54.25 हो गया. थर्ड बताओ सर. 1.51 सर. 1 फर्स्ट वन. बहुत जल्दी बोल दिया सर आपने. चौथा बोलो सर. 51. 1.51. फोर्थ का 2.71. 171. 54.25 का 5% निकाला आपने. That's what you are saying. ले लो फिर. हाँ 2.7. Yes. Okay. अब आप धीरे धीरे now confidence is coming in all of you. What is the amount of depreciation considering a straight line method in INR? 10.31, sir. C. What is DRC? $43.94. Sir, 5 or 6. 43. हाँ क्लैरिटी देंगे सर. भाई साहब चिंता ना करो, क्लैरिटी आएगी, बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी आपको. इसमें अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ है ना. दिस इज एक्सप्लेन करेंगे आपको. आप रौनक यू आर एट 43.94. Yes, sir. ओके. डी. So here is your answer. 36 lakh is correct. 54.25 is correct. 1.51 is correct. 271 is correct. 1031 is correct. And 4394 is correct. क्या बात है रौनक, मार लिया बाजी. हाँ? So रौनक is now 100% on case study. Good to see कि मतलब this session is now useful for you because ये आना ही आना है. इसको आपको हैंडल करना ही करना है. ठीक है ना. इसमें कोई डाउट नहीं है. अब यही क्वेश्चन दूसरे तरह से दे दे, वो एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है. ठीक है ना. बट ये एग्जैक्टली नहीं आएगा, आई एम श्योर अबाउट इट. बट इससे मिलता जुलता
केस ही रहेगा आपके, वन ऑफ इतना जो अभी तक आपने 8-9 कर लिया आपने, ये 9वां है, लास्ट 10th है, एक और करेंगे, इसके बाद वी विल मूव टू एक्चुअल क्वेश्चन व्हिच केम ऑन 13। अच्छा सॉरी, मिस्टर रॉय रिक्वेस्टेड फॉर एक्सप्लेनेशन ऑन क्वेश्चन 5 and 6। हाँ देख लीजिए सर, 5 का एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। वही फॉर्मूला लगा हुआ है। हाँ 4 निकाल लिया आपने, सॉरी हाँ 3 निकाल लिया आपने ना, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 54.25। यस। यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं था, वो आपके लिए गाइडलाइन हो गया। 5वां क्वेश्चन वहीं शुरू हो गया, डिप्रिसिएशन वर्कआउट करने के लिए करंट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू यूज लाइफ बाय टोटल लाइफ, वही लगाया फॉर्मूला, यू रीच 103750। एक्चुअली सर ये जो डिप्रिसिएशन हम निकालते हैं हाँ और उसके बाद जो डिप्रिसिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है, तो मतलब वो एक्चुअली रिप्लेसमेंट हाँ कॉस्ट से डिप्रिसिएशन बाहर कर दीजिए, बाहर कर देंगे। डिप्रिसिएशन यस कॉस्ट यस आ गया। करेक्ट। क्लियर ना सर? यस नो सर। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। So here we go on the last question of the case study chapter, but still 2 are left, componentization of asset और discounted cash flow, वो दोनों अलग से करें। तो इस बार जो है 3 क्वेश्चन थे मैथमेटिकल 13 वाले एग्जाम में, दिखाएंगे तीनों क्वेश्चन क्या क्या थे। मैं तो फोटो खींच लेता हूँ, मैं एग्जाम नहीं देता हूँ, मैं फोटो खींचता रहता हूँ क्वेश्चन का मोबाइल चोरी से ले जाते हैं और फोटो खींचता रहता हूँ आप लोगों के बेनिफिट के लिए। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसलिए लेट अस बी केयरफुल अबाउट इट, यू नीड टू रीड इट वेरी केयरफुली। पर्पस क्या है? लिक्विडेशन, ठीक है, लिस्ट वैल्यू पे जाना है आपको, ठीक है ना। लिक्विडेशन पर्पस है ऑफ a shipbuilding company as per insolvency and bankruptcy code 2016. The company was involved in construction of merchant and defense vessel and of offshore rigs. Tangible asset comprise plant and machinery of capital asset, capital work in progress, raw material, stocks and spares, and work in progress. Valuer has followed ex situ approach after appropriate study of industry outlook and purpose of exercise. Input जो है इसके पास, a list of steel plate to be used as raw material has been provided, which comprises the specification details like quantity, size, weight, material grade, which covers around 35,000 metric ton of steel plates. ये इनका main asset है. Which information data is least important, not required for said asset? Liquidation purpose के valuation के लिए इसमें से कौन सा डाटा है which नहीं चाहिए आपको? C हाँ सॉरी, C ex situ वर्ड आया है रौनक, आई जस्ट गिव यू ex situ मींस यहाँ पे डिसमेंटल करके वहाँ लगाना पड़ेगा आपको, समझे ना। इन situ नहीं है, ex situ वर्ड यूज हुआ है इसमें। ex situ का बड़ा क्लियर मैंने बताया था उस दिन, इन situ ex situ, यू आर डूइंग वैल्यूएशन एट द सेम लोकेशन, ex situ मींस यहाँ से डिसमेंटल होगा, ये जाएगा कहीं और लगेगा, ठीक है। लॉस ऑफ एसेट होगा सर, डी इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। सॉरी कुछ पूछ रहे थे पर लॉस ऑफ एसेट, loss of asset sir, एक्स2 है इसलिए वो तो least important sir, loss of asset ही है ना। लेवल ऑफ कोरोजन, पुराना मशीन है इसलिए कोरोजन हो चुका होगा, उसमें कितना कोरोजन हुआ है इंपॉर्टेंट है। स्टील ग्रेड, ग्रेड कौन सा है वो भी इंपॉर्टेंट है। लॉस ऑफ एसेट जो है वही बिल्कुल सही है आपका, दिस शुड बी द आंसर, ठीक है। 10 का पहला का लॉस ऑफ एसेट,
ठीक है सर, वी गो मूव टू द क्वेश्चन 2. These Bargaining power of buyer. Bargaining power of buyer. obsolescence, sir. और सेइंग अबाउट ऑब्सोलिसेंस, ठीक है. और एक व्यू आ रहा है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर. इट मींस कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, ऑल ऑफ अस एग्री, इज ए इंपॉर्टेंट इनपुट. करेक्ट सर. Yes. Then plant layout showing process flow machinery each at each stage. This is also important. ठीक है. Obsolescence, ये चीज़ें अभी यूज हो सकती है या उससे बढ़िया ग्रेड की स्टील आ गई है, वो भी इम्पोर्टेंट है सर. बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर इज द ओनली थिंग, बिकॉज आप मार्केट में जाएंगे कि इस स्टील का प्राइस बताओ, तो वो स्टील का आज का जो प्राइस है वही कोट करेगा वो, और वो स्टील के परचेज में देर इज नॉट मच बार्गेनिंग, है ना. बट यस, टरबाइन का सेल हो रहा है, एनटीपीसी को दे रहा है, तो डेफिनेटली एनटीपीसी विल गेट ए बेटर प्राइस देन टाटा पावर. बिकॉज टाटा पावर हैज ओनली वन यूनिट, एनटीपीसी हैज नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट सर, एंड ह्यूज एक्सपेंशन मोड. तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर इज द, आई एग्री विद बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर. तो देखते हैं सर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर. A list of store item has been provided which comprises imported items like winch, propeller, gensets. Which information is required to carry out the valuation of the said asset? C. Material storing capacity. Yes, sir. Number 4. Actually, number 3. Number Yeah. 3, sir. C. हाँ, नंबर 3 पे आपने अभी लिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स फॉर ऑक्सिलियरी सप्लाई लाइक लुब्रिकेंट, स्पेशल पर्पस गैसेस, पेंट्स, कूलेंट्स, etc. ठीक है. has been provided. Which factor list important? Quality, quantity of each item important. Expiry date of material important. D Material होना चाहिए. storing capacity and preservative condition. Required quantity per annum. जी, राय साहब डी पे हैं और वर्मा साहब सी पे हैं. मैं दोनों लिखता हूँ सर. रॉय साहब डी और वर्मा साहब सी. रौनक इज साइलेंट. Sir, D. डी. ओके, तो डी में 2 वोट हो गया. चौथा. I think all of above होना चाहिए. D. All of above. ऑल आंसर इज ऑल ऑफ द All of. Yes. I think B होना चाहिए. The CWIP as percentage of gross block. Progress report A, sir. रिपोर्ट आप कर रहे हैं वर्मा जी. A. सॉरी, ए. A.
यहाँ भी आ गया डाइवर्सिटी ऑफ थॉट। वर्मा जी ए और राय साहब बी। सिक्स। यार उसे बी होना चाहिए, 6 का डिमांड है क्या उसका? कह रहा है लिस्ट इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट। अच्छा हाँ, लिस्ट इंपॉर्टेंट सर, प्रोग्रेस रिपोर्ट होना चाहिए। ए ए। ऑल आर विद ए। छठा का ए प्रोग्रेस रिपोर्ट। आ जाओ सर। स्टील प्लेट्स आर लूज कंडीशन विच डज नॉट रिक्वायर एनी कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। तो आई थिंक रौनक वाज करेक्ट है। रौनक ने कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग ही कहा था। क्यों रौनक? यस सर। क्या था सर? क्वेश्चन पे जाते हैं सर एक बार फिर से। A list of steel plate to be used as raw material has been provided. मतलब आपके पास कॉइल पड़ा हुआ था, कॉइल में ही, which comprises the specification detail like quantity, size, weight, material grade, which covers around 35,000 metric ton of steel plates. तो इसमें कह रहा है कि which information is least important, कहता है cost of dismantling is least important because there is no dismantling required. स्टील को उठा के यहाँ से वहाँ ले जाना है बस, ठीक है ना सर? There is no dismantling involved. ये raw स्टील है, पड़ा हुआ है प्लांट में आपके, स्टील प्लेट्स। यस। सेकेंड का आंसर है the said valuation is carried out with the consideration of ex-situ condition. No operation in the said premises is exercised further. Hence, detail related to plant layout is not required. इसका आंसर था प्लांट लेआउट। एक्सप्लेनेशन दिया है इसमें कि वाई, मतलब कह रहा है चलो इसे कैरिड आउट विद द कंसिडरेशन ऑफ एक्स सिटू कंडीशन। तो नया प्लांट जो लगेगा वहाँ का डिजाइन इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ का डिजाइन इंपॉर्टेंट नहीं है सर। ओके, दिस इज व्हाट इट सेज। तो प्लांट रिलेटिव यहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल सेकेंड का आंसर दिया था डी। डी वाज बेसिकली, देख लेते हैं, बार्गेनिंग था सर। बी हम होना। लोगों ने दिया था आंसर इसका दो का डी, बार्गेनिंग कॉस्ट पावर ऑफ बायर। बट यहाँ पे कर रहा है प्लांट लेआउट। रौनक ने प्लांट लेआउट बोला था, बट फिर वो बैकअप कर गया, नहीं? मैंने फिर सी बोला था सर। हाँ, फिर उसके बाद ऑब्सोलेशंस आ गए थे ये। So that is the plant layout is of this plant is not important from valuation perspective. Otherwise important है, but this plant is not important. Plant is not expected to run in future as per the said valuation exercise. Hence quantity required per annum is not required. ठीक है? तो थर्ड में आपने रौनक और वर्मा, राय साहब ने डी बोला था और वर्मा जी ने सी बोला था। यहाँ पे क्या निकला कंक्लूजन? क्वांटिटी रिक्वायर्ड पर एनम, है ना? तो ये मेरे ख्याल से डी था सही। तो वर्मा जी और रौनक सही है, सॉरी राय साहब और रौनक सही है। वर्मा जी शुड रिक्वायर्ड क्वांटिटी पर एनम, वी ऑल सेटल विद दिस, है ना? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, विच इज लिस्ट इंपॉर्टेंट। और वर्मा जी ने बोला था सी, मटेरियल स्टोरिंग कैपेसिटी एंड प्रिजर्वेटिव कंडीशन। प्रिजर्वेटिव कंडीशन इज इंपॉर्टेंट सर। कोरोजन कितना है ना, और कितने सोने की संभावना है। फोर्थ, here all detail mentioned in ABC are important. They are required to estimate the market value and subsequently revision value. So all of above correct answer था, ठीक है ना? No problem on that. Progress report of CWIP is most important detail
अदर डिटेल्स आर सुपरफिशियल, लिस्ट इंपॉर्टेंट ड्यू टू लिक्विडेशन वैल्यूएशन, ठीक है ना। प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ CWIP, ये क्वेश्चन नंबर 5 का वर्मा जी ने ए बोला और राय साहब ने बी बोला। तो वी नीड टू विजिट 5। यस, ए होना चाहिए। प्रोग्रेस रिपोर्ट था राय साहब का, ये वर्मा सर प्रोग्रेस रिपोर्ट। वर्मा साहब का प्रोग्रेस जी। रिपोर्ट, वर्मा साहब इज करेक्ट, राय साहब should correct himself and that's what I will suggest. सर इसमें मतलब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब जैसे जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो एक्सप्लेन किया वहाँ पे प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ CWIP, तो क्यों इम्पोर्टेंट देखिए, प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ CWIP is most important detail, other compared to other details this is the most important, है ना, that's what it says। मतलब कह रहा है कि कुछ आपको ऐसे दिया, CWIP मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, करेक्ट ना। यस। कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस है तो प्रोग्रेस रिपोर्ट कितना तक बना हुआ है वो तो इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया ना सर। ओके कितना काम कंप्लीट है, कितना काम बाकी है, ओके वो यस। इम्पोर्टेंट है। CWIP, ये मशीन अभी कमीशनिंग हो ही रहा है, लगा नहीं है पूरी तरह से, प्रोग्रेस में है, तो प्रोग्रेस रिपोर्ट इज इम्पोर्टेंट। छठा का बोल रहा है सर, द सेट वैल्यूएशन इज कैरिड आउट with the consideration of ex situ condition, no operation in the said premises will be exercised, hence detail related to facility in the shipyard to complete the under construction ship is least important, है ना। अच्छा 6 का हम लोगों ने ए बोला था, हम लोगों ने प्रोग्रेस रिपोर्ट इसमें बोला था, यहाँ पे कर रहा है कि फैसिलिटी इन द शिपयार्ड टू टेक आउट द अंडर कंस्ट्रक्शन शिप इज लेस्ट इंपॉर्टेंट। बिकॉज यहाँ पे प्लांट पे यहाँ पे देखिए दोनों आंसर ऑलमोस्ट सेम है, शिपयार्ड रिग और यहाँ पे रिग के बाद एक एल भी लगा दिया है ना सर। आपका आंसर जो है दैट इज छठा, शिप रिग वाला है आंसर, ठीक है सर, एल वाला नहीं है, लिस्ट इंपॉर्टेंट एनी मटेरियल का है। ये क्वेश्चन हमें और दिख रहा है बॉटम में, ये एंड है सर, ये लास्ट करिए लेकिन छोड़ दे इसको, कर लेते हैं सर, कर लेते हैं इसको भी, इसको एक क्यों छोड़ा जाए। दो बच रहा है दादा, एक के बजाय दो बच रहा है। सर ये वाला जो है ना, ये जो ग्रुपिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये कहीं सिलेबस में था, मगर ये वो ब्रॉड कैटेगरी ऑफ मशीन है ना, उसमें है वो तो। हाँ हाँ नहीं हाँ। सॉरी, नहीं वेरिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी उसमें है वो, हाउ टू ग्रुप इट, ठीक है, सॉरी वो उसमें नहीं है, इसमें है सर ब्रॉड, सॉरी
फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी करेंगे ना, उसमें दिखेगा आपको। सर इसका थोड़ा थ्योरी करवा करके करें क्या ये वाला? ठीक है, छोड़ हाँ। देते हैं इसको, नो प्रॉब्लम, इसको छोड़ो सर। अब आप सीधे चलो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। environmental asset, I'm unable to exactly locate the presentation because this came as a surprise to me that I have to take that also. तो हम इससे चलते हैं सर, फिर वो क्या नाम है, बुक से चलते हैं, बुक से बता देते हैं। ओके सर। Can you see the screen? हाँ। Okay, Yes. fine. So see, जब आप इंजीनियर के साथ प्लांट में विजिट करते हैं सर, तो we have to collect details from the client. On an online program, can I call you maybe after 1 hour? I'll call you back. Thank you. Sorry. Physical verification of plant and machinery equipment. When you go for physical verification of the plant, तो ये तो उस दिन बात हुई थी हमारी आपकी कि सबसे पहले तो फिक्स एसेट रजिस्टर जो बताया मैंने वो आपको मिलेगा। तो वो फिक्स एसेट रजिस्टर जो मिलेगा आपको, जो दिखाया आपको शेड्यूल 12 था ना, शेड्यूल 12, करेक्ट ना? शेड्यूल 12, यस सर। शेड्यूल 12 का फर्दर बैकअप होता है जो 14 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग की फर्दर डिटेल जो है वो फिक्स एसेट रजिस्टर में होगी। गॉट इट ना? वो फिक्स एसेट रजिस्टर जो है वो 14 करोड़ का जो बैकअप है वो दैट विल कंप्राइज ऑफ 1 लाख एंट्री वर्टिकल लाइन एंट्रीज, है ना? 1 लाख होंगे, नट वोल्ट भी उसमें कैप्लाइज होगा। ठीक है सर? डिफरेंट मोटर्स, डिफरेंट पंप्स, है ना, डिफरेंट हर इंडस्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में जाओ सर 1 लाख इक्विपमेंट होता ही होता है, छोटा छोटा, छोटे से लेके बड़ा तक, है ना? यू विल हैव मल्टीपल एंट्रीज। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आप ऑफिस में ही एबीसी एनालिसिस कर लेंगे। एबीसी एनालिसिस मतलब क्या हुआ कि 80% ऑफ दैट वैल्यू, टोटल वैल्यू अगर 14 करोड़ है उसका,
तो उसमें 1 करोड़ से ऊपर के आइटम 10 होंगे, सिर्फ 10 एंट्री है 1 करोड़ से ऊपर वाला, और बाकी जो 20% बचा 20%, वो 1 करोड़ से नीचे के होंगे, 10 रुपए के भी होंगे और 1 करोड़ तक के भी होंगे, ठीक है ना। वो 99,000 एंट्री वही है। तो हम उस 10 में से 5 हमने रैंडम बेसिस पे मार्क कर दिया कि ये पांचों मुझे फिजिकली देखना है, ठीक है सर। तो उसमें क्या क्या होता है कि किस डेट में उन्होंने परचेज किया, डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है ना, किस डेट पे कैपिटलाइज किया अपने बुक्स में। तो डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है कि आपने 2000 सपोज दैट 2019 में एक आइडिया परसीव किया कि मुझे एक पावर प्लांट लगाना है, ठीक है सर। The first thing you will prepare is feasibility report. Then you will approach the financiers with your report. Financiers will agree for providing you loan, or you have your own money. There may be different situations. Or now once financial institution have cleared you, then you will start searching equipment seller. You will negotiate the best cost. This process will kill 6 months. After that 6 months, you will get quotation from various vendors, then analyze those quotations, then zero down on a particular vendor. Fine. Start negotiating with them. Then सर आपका शायद कनेक्शन फ्रीज हो गया है। हाँ वर्मा सर, रौनक सुनाई दे रहा है क्या? आई थिंक सिंह नहीं सर का, हाँ शायद सिंह सर का कनेक्शन में, क्योंकि उनका फोटो स्टिल दिख ब्लैंक रहा हो है। गया। हाँ स्टिल दिख रहा है उनका फोटो ना, तो कनेक्शन का कुछ इशू है लगता है। sorry for inconvenience. There was some my internet suddenly became zero. This was problem on my side. Okay. यस नो प्रॉब्लम सर। So okay, fine. So then you have zeroed down on that I will physically verify these machines. So FAR will have date of capitalization. Capitalization means on which date the plant was commissioned, right? That would be the date of capitalization captured in that. Second is gross block. Third would be net block. Fourth would be who is the manufacturer for that, whose invoice is there, which party has supplied them that machine, and then they will add up to that insurance cost, freight cost, and a foundation cost, and whatever we have discussed in the various case studies. All the costs will be added, and final capitalized value of that equipment will be there, gross block. Then they will apply rate of depreciation, and then next column will be net block, right sir? So net block. So these are the various entries in their asset register. Fine. एसेट रजिस्टर भी आपको मैं दिखा दूंगा। एक बार वो एफएआर का एनालिसिस किया आपने, एबीसी एनालिसिस किया आपने, सेकेंड इज एबीसी एनालिसिस, एंड देन रैंडम बेसिस पे यू सेलेक्टेड दीज आर द एटलीस्ट 20 मशीन्स आई नीड टू वेरीफाई। फाइन सर। तो वो करने के बाद जब प्लांट में पहुंचे आप, तो प्लांट में जो आपको चाहिए categorization and identification. Adequate description of machine and equipment is important to be able to attach value for the manufacturer to be able to identify it and thus be able to give the cost of similar new machine. Fine. So there are two categorization. One is macro identification details and second is micro identification details. Micro identification details. Macro identification details क्या क्या है सर? Who is the manufacturer or producer? जिसका प्लांट का वैल्यूएशन कर रहे हैं उसका डिटेल, ठीक है सर। कि XYZ is a power manufacturing company having total commissioned in 2015, right?
it has installed a turbine of 5 turbines of 200 megawatt each, steam turbine, right? MEP, BHEL, or Triveni, or whatever the case is there, or Siemens, or Alstom, whatever is there, right, sir? Those details, a brief macro description. What is the plant? What the plant manufactures and produce. This is the first macro information we will capture. Second is how the product is manufactured. So process flow diagram. You will understand कि पहले कोल हैंडलिंग प्लांट है, वहाँ पे कोल आया, फिर वो कोल बॉयलर में गया, ठीक है, और बॉयलर में जाने के बाद वहाँ से स्टीम प्रोड्यूस हुआ, स्टीम प्रोड्यूस होने के बाद टरबाइन पे गया, टरबाइन से पावर प्रोसेस फ्लो डायग्राम, that is basically. And what is the capacity of plant is. These are the macro information about the plant for which you are doing valuation, right? These are known as macro information. Now, a list of information to be considered when gathering the data for macro identification of machinery and equipment include. अब क्या क्या information चाहिए होगा? Date of manufacture, कब capitalize किया, कब commission किया, company name and address, who furnishes the information, उसका नाम डालोगे, किससे बात हुई आपकी, ठीक है ना सर? Suppose that I discussed with Mr. Mrinal Rai, I'll put Mr. Mrinal Rai, DGM, है ना? DGM production, DGM, or GM production, or whatever the case may be. नाम किससे किससे बात हुई आपकी? Product produced with each process name and description. There may be single product, power plant like, or there may be multiple products. ठीक है? तो मारुति 800 का मारुति का कर रहे हैं आप, तो मारुति के डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं, जो मॉडल आज बना रहे हैं, वो यू हैव टू डिस्कस एवरीथिंग. दीज आर द मॉडल्स दे आर मैन्युफैक्चरिंग विद इन द सेम प्रेमाइसेस, कितने लाइंस हैं उनके पास, एवरीथिंग हैज टू कम हियर इन डिटेल. इंजीनियरिंग डिजाइन फर्म, कॉन्ट्रैक्टर, इफ अदर देन इंजीनियरिंग फर्म. जनरली मेगा ईपीसी प्रोजेक्ट जो होता है उसमें इंजीनियरिंग डिजाइन एंड कॉन्ट्रैक्टर मे बी डिफरेंट. So you need to collect those inputs also and cover up in your report. Original date of construction and expansion. तो पावर प्लांट का केस में 3-3 साल लग जाते हैं, 4-4 साल लग जाते हैं. हाइड्रो पावर प्लांट में 5-7 साल लग जाते हैं सब बनाने में, है ना? तो दैट total period of construction, what were the problems faced by them during construction, was there a delay from the target date of commissioning, correct? So those all input has to be collected. And further expansion, after initial 3 turbines, they took 5 turbines in after 5 years, right? So that stage-wise expansions also till date of valuation need to be captured since inception. Plant process, byproducts, amounts and uses. ठीक है सर? प्लांट का प्रोसेस क्या है, बाय प्रोडक्ट कुछ है, लाइक एक्सट्रैक्शन, solvent extraction plant में I said that they will have a byproduct also, cornflakes. Fine, sir. They may produce themselves or they may sell it to a cornflake manufacturer, right, sir? So that is raw material sell to them. Plant process, so plant and unit capacity per day, tons per day, gallons per day, barrels per day, जो भी चीज़ है, liquid का product है तो it will be tons, और solid product है तो it will be tons per day. So capacity per day, megawatt, है ना? So it depends what kind of valuation we are doing. So annual production capacity need to be captured. Plant, Mr. Ajay, can you mute yourself, please? कहीं से आवाज आ रही है सर. Plant capacities, design capacity, rated capacity, and actual consistent capacity. ठीक है सर? So design capacity is suppose that 100 megawatt. Rated capacity is 100 megawatt. Installed capacity जो है, that is design capacity. Rated capacity. Design में there will be 3 things. Design capacity will be different because for boiler, generally design capacity is 1.5 times of the actual pressure they are handling. Fine, sir. So design capacity will be that. Design parameter will be that. Rated capacity and actual consistent capacity. So during the year, it has produced only 70% of the annual production target. So actual consistent capacity is 70%. Okay, sir. Yield or losses, reason for losses. If it is not performing at 100% capacity of design capacity, there may be reason marketability. They are not able to market the product, or there is a less demand. So all kind of that parameter, yield or losses.
feedstock and sources, what is raw material, coal from where they are getting. So if a plant located in Maharashtra is getting coal from Jharkhand, the transportation cost of coal is very high for them. But if a plant located in Odisha is getting coal from Odisha itself, so their cost of operation will be much better than compared to plant located in Maharashtra. So that is what is known as feedstock, means raw material, and sources for that. कहाँ से ले रहे हैं वो कोयला, कहाँ से आ रहा है उनके पास. Operating mode, days, month, if not identified in capacity. Operating mode means it is a continuous process plant, right? It runs only one shift, it runs two shifts, it runs three shifts. That has to be discussed here. Outlets for finished or intermediate products. So, if there is an intermediate product, what are the marketing pattern for that? Plant sales outside the parent country. Export भी involve है. We will discuss that also. 70% is domestically sold and 30% is exported. ऐसे भी majority यही unit है. If 100% export unit, तो 100% they have to sell overseas. That kind of thing. For use in other company plants, other product sales possibilities. Available historical operational data over 3 to 5 years. कह रहा है 3 to 5 year के डाटा तो लेना है आपको अगर 15 साल पुराना प्लांट है तो. You can't collect for all 15 years. Fuel and power consumption by unit. So that has to be given. Operating a staff per unit, type of control system, and if the control is centralized. So वो instrumentation जो है ना वो that you have to see. There may be 5 units all over India which you are valuing. Our head office is in Bombay. Fine. तो आपके पास input आएंगे 5 जगह से, but control सारा input आएगा through head office Bombay. तो वो that is a control center Bombay from administrative point of view. Fine. But if you then you have to talk about local controls also. So that then the automation and everything that will be discussed there also. So this is known as estimated maintenance budget over the past 3 years and projected upcoming budget if plant is operational. मतलब यहाँ पे आपको plant के बारे में macro information is कि you are discussing about plant. You have not come down to machines till now. है ना? आप machine पे नहीं आए अभी आप. Which equipment require more than routine maintenance and why? How the maintenance program is conducted, regular, preventive and or demand need based. जब breakdown हुआ तो कर लिया maintenance. So generally continuous process plant the fertilizer refineries, power plants, they do not do I mean to say on demand. They keep on keeping it pending till that annual shutdown is taken. And during that major breakdown, they will repair there only. But if it is a critical breakdown, then they do on demand basis. If the plant is modern and operating at total efficiency standards, or if the process is obsolete, right? So that need to be and expendable also. Plant flow considered adequate, manageable. General condition of plant and components. Age, chronological and effective life. The chronological age is if they purchased equipment in 2014, but if it was commissioned in 2017, the effective life is start from 17. Fine, sir. But chronological age is from 2014. If safety and environmental standards are good, if not, they are upgraded and at what cost? So if that need upgradation, then what will be the estimated cost of that upgradation? Pollution control equipments are in place, support facilities, obvious determinant factors. है ना? ये आप समझिए इतना चीजें आपको प्लांट के बारे में टच करना है अंडर द व्हेन यू आर डूइंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लांट. ठीक है सर. Then the moment you come to micro identification details, in the process finding the individual characteristic of the equipment, each piece and value of it as such. अब आप आ गए मशीन के ऊपर था जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट. नाउ यू आर कमिंग टू मशीन स्पेसिफिक. मैंने कंपनी की मेंटेनेंस फिलॉसफी क्या है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में प्रिवेंटिव शट डाउन कर रहे हैं या डिमांड शट डाउन कर रहे हैं या
क्या वो ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर रहे हैं फॉर वाइब्रेशन एंड एवरीथिंग, which power plant keep on doing, है ना. So those things need to be discussed. Once the macro information is majorly about the project you are doing valuation, considering its historical perspective, expansion details, maintenance cost, and also little bit balance sheet details also need to be captured. Micro identification, total value is arrived by summing up the individual value. तो वो जो फिक्स एसेट रजिस्टर पे अब आ गए, आप ऊपर वाली थी, अब यह फिक्स एसेट रजिस्टर पे नहीं आए, सेकेंड पे जैसे ही आ गए तो आप FAR पे आ जाएंगे, फिक्स एसेट रजिस्टर, ठीक है ना. टोटल वैल्यू इज अराइव्ड बाय समिंग अप द इंडिविजुअल वैल्यू. हर मशीन की आप उस FAR के आगे वैल्यूएशन करेंगे और उसको सम करेंगे तो प्लांट की टोटल वैल्यू निकल आएगी मशीनों की, सेम बिल्डिंग की. This enables one to identify the peculiarities of each piece of example, capacities, mode of installation, materials used, manufacture, age, working condition. It is more accurate involving but generally preferred. The following information are gathered in this type of identification. अब चाहिए आपको मशीन टाइप, सेंट्रीफ्यूगल है, क्या होता है दूसरा, कंप्रेसर कितने टाइप होते हैं सर, सेंट्रीफ्यूगल, देन यू हैव रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी, हाँ, रेसिप्रोकेटिंग, है ना. एंड देन देर आर पिस्टन प्लंज टाइप, पता नहीं क्या वो 4-5 टाइप के होते हैं. तो व्हाट इज मशीन टाइप, व्हिच टाइप ऑफ पंप इट इज, टैंक, ड्रायर, इवेपोरेटर, एयर कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूज, होमोनाइजर, कूलिंग टैंक, और दोज ऑल मेजर मशीनरी के बारे में वी हैव टू टेक दिस डिटेल. हु इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ मेन मशीन, व्हाट इज द मॉडल, मॉडल मीन्स ईयर ऑफ 2010 में ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट मशीन, करेक्ट ना. मॉडल कार में बोलते हैं सर, कौन सा मॉडल है आपका, बोलते हैं 2010 में लिया था हमने, लाइक दैट, है ना, मॉडल एंड सीरियल नंबर. तो वो जो रैंडम बेसिस पे आपने किया ना 5 मशीन का ऊपर में, उसका सीरियल नंबर भी डालेगा आप, कि एसेट फिक्स एसेट रजिस्टर में जो मशीन का सीरियल नंबर डाला हुआ है वही एक्चुअली ग्राउंड पे भी है, राइट. साइज, कैपेसिटी एंड मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्लांट के बारे में, मशीन के बारे में. ऑक्सिलरी इक्विपमेंट सपोर्ट वर्क इन कंजंक्शन विद मेन इक्विपमेंट, टाइप ऑफ ड्राइव, वेदर प्राइम मूवर, इलेक्ट्रिक मोटर और फ्यूल इंजन, है ना, वो भी डालना पड़ेगा. कंट्रोल सिस्टम ऑटोमेटिक और मैनुअल, स्पेशल फाउंडेशन, प्लम्बिंग एंड प्लेटफॉर्म्स, everything need to be discussed in this. तो वेरिफिकेशन मीन्स प्रोवाइडिंग द ट्रूथ और कंफर्मेशन. अब आपको जो है कंपेयरिंग द लेजर अकाउंट ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, वेरीफाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट. ठीक है सर, आपको फिक्स एसेट रजिस्टर मिली है जिससे उनका बैलेंस शीट बना है, करेक्ट ना. तो अब आपको वो उसको देखना है कि जो बैलेंस शीट तो बनती है 31 मार्च 2020 को, ठीक है सर, और आप जा रहे हो वैल्यूएशन के लिए जुलाई में. तो हो सकता है कि बिटवीन जुलाई एंड टुडे, मार्च एंड टुडे, उन्होंने कोई इक्विपमेंट सेल कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया. तो दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड, दैट वो जो बैलेंस शीट के डेट पे था पहले तो वो वेरीफाई कर लो आप, ठीक है सर. तीसरा कह रहा है सेटिस्फाइंग दैट दे आर फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और मॉर्गेज. अब क्या है कि इस मशीन पे इसका जो है लीज पे लिया हुआ है कोई मशीन इसने, अब वो कह रहा है आपको कि ये सब फिक्स्ड एसेट हमारा है, तो फिर देन यू हैव टू चेक इट इज फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज, करेक्ट. फाइनेंस लीज है तो फिर इसका राइट है, अपने बुक्स में उसको दिखा सकता है. ऑपरेटिंग लीज है, ही कांट शो इन हिज बुक्स, ठीक है सर. वेरीफाइंग देयर प्रॉपर वैल्यू, फिर वैल्यू का 1-2 रैंडम चेक कर लेंगे आप, FAR में जो एंट्री किया है कहीं एक्स्ट्रा कॉस्ट तो नहीं डाला हुआ है इसने, ठीक है. क्या करते हैं ये लोग, बता रहे हैं हम आपको गेम क्या होता है इसमें, कि सपोज दैट लाइसेंस लेना पड़ा उनको, ब्रूअरी लगा रहे हैं कोई, अल्कोहल इन यूनिट, तो ब्रूअरी लगाने के लिए आपको कम से कम 20-25 लाइसेंस की ज़रूरत है, ठीक है ना. तो लाइसेंस लेने में क्या होता है कि लाइसेंस फी तो 500 रुपये होता है, बट वो अंडर द टेबल डीलिंग जो होती है वो करोड़ में होती है, करेक्ट ना. तो वो अंडर द टेबल जो अमाउंट दिया, तो
कस्टमर की इच्छा हमेशा होती है कि हम इन कॉस्ट को इसमें बुक कर दें, बुक्स में डाल दें एज एक्सपेंस, है ना, तो वो टैक्स बचती है उससे उनकी, तो वो उसको डालने की कोशिश करते हैं, वो वैल्यू कहीं ना कहीं घुसेड़ देते हैं मशीन के अंदर वो, है ना। कुछ चार्टर अकाउंटेंट्स आर वेरी स्मार्ट पर्सन, तो चार्टर अकाउंटेंट का यही काम है, तो वो अगर ऐसी कोई एंट्री है तो विथ आवर इंटेलिजेंस एंड प्रूडेंसी वी शुड कैच इट, ठीक है सर, वही कर रहा है। सेटिस्फाइंग दैट दे आर फ्री फ्रॉम एनी चार्ज ऑफ मॉर्गेज, वेरीफाइंग देयर प्रॉपर वैल्यू, जो मैंने बोला अभी कि कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट तो नहीं इसमें इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। एसेट्स वेर एक्वायर्ड फॉर द बिजनेस, अब घर का खर्चा भी जो है सेठ का वहीं से जा रहा है, तो वो वहाँ से जा रहा है, तो वो अगर बिजनेस कॉस्ट से निकाल रहा है और कहीं घुसेड़ रहा है उसको एसेट रजिस्टर में, तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दोज एंट्री इफ एनी। तो ये भी काम है ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन। तो 3 काम हो गया, पहला तो हो गया मैक्रो इन्फॉर्मेशन कैप्चर करना, दूसरा हो गया माइक्रो इन्फॉर्मेशन कैप्चर करना। तो अब क्वेश्चन जो आता है इससे कि मॉडल ऑफ द मशीन इज ए दे दिया माइक्रो इन्फॉर्मेशन, बी दे दिया मैक्रो इन्फॉर्मेशन, सी दे दिया फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। क्या हो गया सर? वो माइक्रो है, वो मॉडल ऑफ द मशीन, ईयर ऑफ परचेज ऑफ मशीन, है ना। तो दैट कमीशनिंग ऑफ प्रोजेक्ट इज ए मैक्रो इन्फॉर्मेशन। किस टाइप से देता है क्वेश्चन? क्वेश्चन इस तरह से आता है। तो ये करके फिजिकल वेरिफिकेशन ये भी किया आपने। द ऑडिटर शुड कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हाइल वैल्यूइंग द एसेट: ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, एक्सपेक्टेड वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट, ये भी डिस्कस करेंगे आप, वियर एंड टियर ऑफ द एसेट। अब सवाल है कि वो कहता है कि 5 साल एक्स्ट्रा लाइफ है, देख बताया ना आपने कि वो बैलेंस शीट बताएगा उसका, ठीक है 5 साल वी कैन एलोकेट टू देम। wear and tear of the asset, breakup value of the asset, the chances of asset becoming obsolete. This also you have to discuss with them and find out. Objective of verification क्या होता है? Verification जो करते हैं इसका objective क्या है? To know whether balance sheet exhibits a true and fair value of the state of affair of the business. Balance sheet में game बहुत होता है, you know that, है ना? तो वही कह रहा है कि ये to know whether balance sheet exhibits a true and fair value of the state of affairs of the business. As a valuer, we are supposed to catch it, if any fishy is there, to find out whether the assets were in existence. अब क्या होता है कि एसेट रजिस्टर में 1 लाख एंट्री है, तो आर दोज 1 लाख एसेट एग्जिस्टिंग एट द प्लांट। तो हमने 5 किया, जैसे रैंडम बेसिस पे एबीसी एनालिसिस किया और 5 इक्विपमेंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उस 5 में एक एसेट नहीं मिला हमें, 4 मिल गए। तो नहीं मिला तो इसका मतलब गलत एंट्री है 5 में की, या तो इन्होंने बेच दिया, एंट्री नहीं की, एंट्री में डिलीट नहीं की इन्होंने, आज भी दिखाना चाहते हैं और बैंक से उसके पे लोन लेना चाह रहे हैं वो। अब समझिए बात को। तो वो 5 में 1 मिल गया, तो फिर देन फर्दर वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, सीधी सी बात है। फिर अब हम अपना नंबर 5 से कर देंगे 50, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए। फिर 50 में देखेंगे कि 10 मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। अगर नहीं मिला 10, 2 ही मिला, तो फिर उसको बोलेंगे भाई जो है बता दे तू, अब अदरवाइज मैं 100% करूँगा। वो अपने आप वो डिस्क्लोज कर देगा कि यार वो टाइम बर्बाद होगा अपना भी आपका भी, तो वो सब डिस्क्लोज कर देगा कि ठीक है सर ये एसेट उसके बाद हमने निकाला है। उसके बाद लिस्ट होती है सर, डोंट वरी अबाउट दैट। Objective, so to find out whether the assets were in existence, to find out ownership title of the asset। अब लीज पे है, उसको अपना मशीन बता रहा है ना, इसलिए ओनरशिप टाइटल भी वो 5 जो रैंडम बेसिस पे गए उसका सब कुछ चेक करेंगे, ठीक है ना सर। तो उस 5 से आइडिया मिल जाता है कि यहाँ पे कुछ फिजी है कि नहीं है, और मिलता है देन वी शैल टू शो करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, टू वेरीफाई द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, to ensure that the asset have been recorded properly, to detect frauds and errors if any. So these are the objective of identification of plant and machinery. ठीक है सर। वेरिफिकेशन में मैंने बता दिया, वही इसमें एबीसी एनालिसिस वाली बात हुई है। देखिए, इन केस इंडस्ट्रियल कंसर्न out of total 20 to 50% cost of that plant and machinery, and hence the auditor is required to take much more precaution while verifying the plant and machinery। ठीक है ना सर। यहाँ तो वही सब बताया है कि एबीसी एनालिसिस करोगे, है ना, और बैलेंस शीट लोगे,
और डिप्रिसिएशन वगैरह सब कैलकुलेशन उसका देखोगे। बैलेंस शीट रीडिंग करना आना चाहिए आपको, दैट्स व्हाट इट सेज कि यू शुड नो। He should scan the plant register and physically inspect some of the major plant by visiting to the works. He should finally ensure appropriate disclosure of all information on the balance sheet. He should obtain certificate from the local auditor to this effect, है ना। और इन्वेंट्री लिस्टिंग मशीनरी एंड डाटा टू बी कलेक्टेड व्हाइल टेकिंग इन्वेंट्री। अब उसके एसेट रजिस्टर को हम एनालाइज करेंगे और अगर उसमें कोई चीज़ वाइटल इंफॉर्मेशन मिस हो रही है विच यू फील कि दिस शुड हैव बीन कैप्चर्ड अंडर द डाटा कलेक्शन, तो वो उसको एडवाइस करेंगे कि तुम्हारे एसेट रजिस्टर में ये प्रॉब्लम है। और ड्राफ्टिंग वैल्यूएशन रिपोर्ट बताया था, दिखाया था उसमें मैंने ना, इफ यू रिमेंबर दैट डे, तो उसने लिखा था कि मतलब एसेट रजिस्टर नीड टू बी मॉडिफाइड एंड देयर आर मेनी मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड इन एसेट रजिस्टर। वो सजेशन आपके वैल्यूएशन रिपोर्ट में कैप्चर होगा। ये हो गया इंपॉर्टेंस। देन ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स, जो बोल रहे थे ना, ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स। अब वैल्यूएशन के हमारे कई मेथड हो सकते हैं। ग्रुपिंग ऑफ एसेट क्या होता है कि सपोज दैट यू आर गोइंग टू ए डिस्लरी यूनिट, जो ब्रूअरी की बात की ना हमने, तो ब्रूअरी में जा रहे हैं जो बियर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उसमें सबसे पहले तो अल्कोहल टैंक होगा। तो अल्कोहल टैंक 5 होंगे उसके पास, ठीक है सर। तो अल्कोहल टैंक एरिया, अब उस अल्कोहल को पंप करने के लिए उसके पंप भी लगे होंगे, ठीक है ना सर। उसको क्या बोलते हैं फिर वो, तो वो अल्कोहल टैंक एरिया ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन कर लिया और उस ब्लॉक में कितने मशीन है उसको उस ग्रुप में डाल दिया। तो अल्कोहल टैंक एरिया। दूसरा हो जाएगा एक होता है मैच्योरिंग टैंक, उसमें जिसमें बियर को रख के मैच्योर करते हैं और फिर बॉटलिंग करते हैं वो, तो मैच्योरिंग टैंक एरिया, ठीक है। फिर ब्रूअरी प्रोसेस ब्लॉक, मेन प्रोसेस ब्लॉक है जहाँ पे कि बियर को प्रोसेस करके वो जब मैच्योरिंग हो गया तो मैच्योर से आने के बाद अब क्या है, सीधा उसको डायरेक्ट वाटर मिक्स करके परसेंटेज के हिसाब से 5% अल्कोहल एंड बैलेंस डिस्टिल्ड वाटर, करेक्ट ना, वो मिक्स करके और गैस वगैरह जो डालना है, कार्बन डाइऑक्साइड फिलिंग, बॉटलिंग एंड दिस इज मेन प्रोसेस ब्लॉक, करेक्ट ना। तो मेन प्रोसेस ब्लॉक एक बना दिया, ब्लॉक ऑफ एसेट जिसको बोलते हैं आप, है ना। तो बना के और फिर उसके सपोर्टिंग डीजी सेट होगा तो यूटिलिटी में चले गए, यूटिलिटी में ग्रुप बना दिया, पावर प्लांट, उसका सारा इक्विपमेंट एक जगह डाल दिया। दिस इज ग्रुपिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट, ठीक है सर। और दूसरा होता है ये इसने एक आइडिया दिया आपको किस किस तरह से आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से कर रहा है प्लांट एंड मशीनरी, द मेन मैन्युफैक्चरिंग एसेट, सर्विस सिस्टम, द रिक्वायर्ड सपोर्ट सिस्टम, यूटिलिटी एंड ऑफ साइट्स, लूज टूल्स एंड इक्विपमेंट, है ना, फिक्सचर एंड फिटिंग, ऑफिस फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट, है ना, फैक्ट्री व्हीकल्स, एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट, रॉ मटेरियल स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड स्टॉक, कंज्यूमेबल स्टॉक। ये ग्रुपिंग करके दिखाया है कि दिस वे वी कैन डू ग्रुपिंग ऑफ मशीन, बट देयर मे बी मेनी अदर वे। तो दिस इज नॉट द फाइनल लिस्ट। तो बस मेरे ख्याल से इस चैप्टर में इससे ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसे एक ही क्वेश्चन आता है सर, तो बहुत टाइम देने की, 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा इससे, इसी में से कुछ आएगा। अब कह रहा है कि असेसमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट बेस्ड ऑन विजुअल इंस्पेक्शन। जब इंस्पेक्शन करेंगे ना तो उसमें कह रहा है कि दीज आर द कोडिफिकेशन यू कैन पुट इन द एसेट रजिस्टर इटसेल्फ। एसेट रजिस्टर में कॉलम नया डाल दिया, उसमें ये डाल दिया कि एन मीन्स ब्रांड न्यू, ई मीन्स एक्सेलेंट जस्ट लाइक ब्रांड न्यू, ठीक है सर। वीजी मीन्स वेरी गुड बट नो रिपेयर रिक्वायर्ड, ठीक है ना सर। जी मीन्स गुड कंडीशन, एफ मीन्स फेयर कंडीशन, है ना। ये कह रहा है ए टू जेड तक, एक्स तक जो है आपके पास, ये 7 डिफरेंट कैटेगरी में डाल सकते हैं उसको, ठीक है। कोई बहुत पुरानी मशीन है, कोई नई मशीन है, तो इस तरह से हम कोडिफिकेशन कर सकते हैं एसेट रजिस्टर में ही। कंपेयरिंग इन्वेंट्री विथ प्लांट एंड मशीनरी रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय द कंपनी, ascertaining discrepancy if any, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव, सरप्लस एंड ऑफ द बैलेंस शीट एसेट्स। ऑफ द बैलेंस शीट मतलब कोई कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो प्रोजेक्ट चल रहा है, एक नया एक्सपेंशन चल रहा है उनका, ठीक है सर। तो उसकी बिल्डिंग बन रही होगी, तो वहाँ सिविल कॉन्ट्रैक्टर का भी मिक्सर होगा, वहाँ पे सिविल कॉन्ट्रैक्टर का ही वो क्या बोलते हैं स्क्रीनर होगा,
स्क्रीनिंग करते हैं वो ना सर, तो सिविल कॉन्ट्रैक्टर का भी होगा। प्लस मशीन का अगर इरेक्टर है तो वो क्या नाम है, वो अपना जो 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 कॉन्ट्रैक्टर है मशीन लगाने वाला, वो भी अपना क्रेन लेके आया होगा, अपना सब कुछ लेके आया होगा, प्लांट के अंदर होगा सब कुछ, ठीक है सर। बट ये उनके ऑफ द बैलेंस शीट एसेट है, राइट। किसी चीज़ को इन्होंने रिपेयरिंग के लिए भेजा हुआ है, तो बॉम्बे चला गया कोई ट्रांसफार्मर उठ के, ठीक है, रिपेयरिंग रिकॉयल करना है उसका, फिर बॉम्बे से आएगा तब इनके प्लांट में आएगा, बट तो दैट इज बिकेम ए asset which is outside plant but still appearing on the balance sheet, ठीक ना, बैलेंस शीट का पार्ट है वो। बट ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव सरप्लस एंड ऑफ द बैलेंस शीट एसेट्स। कोई मशीन बंद कर दिया बट प्लांट में पड़ा हुआ है, स्क्रैप है वो, ठीक है ना, बेचा नहीं है उसको इन्होंने, अभी लगा हुआ है प्लांट, होता है ना, एक प्लांट एक यूनिट चल रही है एक यूनिट नहीं चल रही है, तो वो वाला एसेट पड़ा हुआ है, इनके बैलेंस शीट वो एसेट दिखेगा फिर आपको। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन प्रोडक्टिव सरप्लस एसेट्स, ठीक है सर, वो अगर कोई है केस तो यू नीड टू मेंशन अबाउट दिस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट्स premises occupied as tenant under the rent control act, अगर रेंट पे है प्लांट लगाया है इसने, तो ऑब्वियस है इंटायर कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज डेबिटेड अंडर द रेवेन्यू एक्सपेंस अकाउंट इन गुड टाइम्स इंस्टेड ऑफ कैपिटलाइजिंग एंड हेंस डू नॉट अपीयर इन एफआईआर। तो रेंट पे जो अगर लिया हुआ है तो बिल्डिंग को ये अपने बुक्स में अकाउंट फॉर नहीं कर सकते, दैट काइंड ऑफ थिंग इज हियर। एज, इफेक्टिव एज, टोटल इकोनॉमिक लाइफ, इकोनॉमिक बैलेंस लाइफ, फिजिकल लाइफ एंड देयर इंपॉर्टेंस इन वैल्यूएशन। ऑब्वियस है, एज हम डिस्कस कर चुके, इफेक्टिव एज भी डिस्कस कर चुके, टोटल इकोनॉमिक लाइफ भी डिस्कस कर चुके। इस पे मेरे ख्याल से अब ये क्लियर है आपको आफ्टर डूइंग केस स्टडी। तो the period that reflects the elapsed time from the date of installation देखिए बड़ा क्लियर है, to the date of observation of an asset, ठीक है ना। effective age is the apparent age of a property comparison with the new property of like kind, that is age indicated by the actual condition of the property। तो होता क्या है कि कोई इक्विपमेंट है, डिफाइन लाइफ 15 साल है, पर 2 साल में ही थक जाता है, तो उसकी अब 15 नहीं रहेगी, अब घटा के 10 होगी उसकी लाइफ, है ना। तो दैट काइंड ऑफ बैड मेंटेनेंस है ना। तो अब टैक्सी वाले को एक कार दे दीजिए, उसकी लाइफ 5 साल ही होती है, बट राय साहब चला रहे हैं तो उसकी लाइफ 12 साल भी हो जाती है, 15 साल भी हो जाती है, ठीक ना सर। तो दैट इज ऑफिस गोअर यूज कर रहा है कार को, या मतलब वो कौन कर रहा है, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ इफेक्टिव एज, इट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन डाटा मेजर मॉडिफिकेशन ओवरऑल डन बाय द एस्टिमेटेड वेटेड इन्वेस्टमेंट इन रेस्पेक्टिव ईयर्स। कह रहा है कि ये भी लेना है कि अगर वो टरबाइन है उसमें रोटर बदल दिया, बहुत बड़ी चेंज है वो, तो रोटर पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा ईयर ऑफ चेंज से, टरबाइन का ओरिजिनल डेट जो है वहां से नहीं लगेगा उस पर डेप्रिसिएशन, राइट ना। तो दिस इज व्हाट दिस इज टॉकिंग अबाउट। लाइफ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, टोटल इकोनॉमिक लाइफ, टोटल फिजिकल लाइफ। तो बस ये क्लैरिटी दे दी मैंने आपको कि यू हैव टू इकोनॉमिकल लाइफ जो है यू हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम डेट ऑफ कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। वही चीज़ घुमा फिरा के बहुत ज़्यादा डिस्कस किया इन्होंने, तो लेट अस नॉट डिवोट मच टाइम ऑन दिस फॉर वन क्वेश्चन। Being engineer, all of us are clear now about this useful life, economic balance life, and remaining useful life. ठीक है सर। तो historical cost, acquisition cost, book cost, written down value, and net block value. I think we now understand it. In case studies, we have sufficiently done it, and I don't think original cost of purchase price, acquisition cost is cost of company recognizes the book for the property in the equipment. These all are the same. Gross block यहाँ पे आया है, नहीं आया। ग्रॉस ब्लॉक एक नया टर्म है जो मैंने इसके अलावा आगे भी बता दिया आपको। ग्रॉस ब्लॉक है ना, book cost, written down value, and net book value. I think we all know it now. WDV and net book value.
ये 2 वर्ड अकाउंट का है, ये दोनों कैलकुलेट करना है आपको, तो यू हैव टू गो टू एज पर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ परचेज बाय द कंपनी, नॉट ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू, राइट सर। तो ये दोनों अकाउंट वाला कॉस्ट है। बुक कॉस्ट भी वही है, यहीं से शुरू हो जाता है। तो बुक कॉस्ट, ये तीनों बैलेंस शीट का है, बुक वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू, नेट ब्लॉक वैल्यू, नेट ब्लॉक है ना। नेट ब्लॉक तो दिखा दिया एक बैलेंस शीट में आपको, किसी किसी बैलेंस शीट में देखेंगे WDV, किसी बैलेंस शीट में आप देखेंगे बुक वैल्यू, है ना। इसी चीज़ को लिखते हैं, अपना ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का वो है, तो लेट अस नॉट बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट। WDV ये सब समझा दिया आपको। अब ये आइटम्स हैं इन द नेचर ऑफ बिल्डिंग टू बी ट्रीटेड एज प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। ये सारे आइटम जो हैं, लाइक इट सेज कि जैसे कि आप मॉल का वैल्यूएशन कर रहे हैं किसी, तो मॉल में अगर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग यूनिट है तो दैट इज ए डक्टिंग और सब कुछ प्लांट एंड मशीनरी है सर, है ना। इट सेज वाटर एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इफ यू सी दिस वाटर एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो इट इज पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। बट अगर इसका सिविल और वो देखें, जनरली क्या होता है कि इफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 50% ऑन सिविल, तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी ए सिविल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इसका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इसी गेम ऑफ टैंक एंड मशीन बहुत कम होते हैं इसमें, बड़े बड़े पानी के टैंक बने होते हैं सर, है ना, और क्लैरिफिकेशन टैंक होते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक होता है ना। तो इन द सो मशीन्स विल बी वेरी लिटिल, पंप होगा, मोटर लगा होता है किसी के पास, है ना। तो वो क्या है कि मतलब दीज आर द सिविल स्ट्रक्चर्स, बट it has to be treated as plant and machinery. This is what is being talked about, है ना। Chimney of boiler, no confusion, it is a machine, ठीक है सर। बट उसमें अगर आप कॉस्टिंग देखें तो ज़्यादातर सिविल है, पूरा सिविल ही है, नीचे से ऊपर RCC का कंस्ट्रक्शन है। ब्रिक और कंक्रीट स्ट्रक्चर, फाउंडेशन एंड टैंक्स एसोसिएटेड विथ प्लांट एंड मशीनरी। Foundation already we have discussed, foundation costs need to be added to plant and machinery. And effluent treatment plant, alarm system, fire preventive system, these all are machines, है ना। So what it is talking about, so अब बच गया, कह रहा है कि बिल्डिंग के रूप में क्या ट्रीट होगा, तो वेल, ट्यूबवेल, अंडरग्राउंड टैंक, ओवरहेड टैंक, रोड, इंटरनल रोड भी होता है प्लांट के अंदर, बट दो दैट विल गो टू अंडर बिल्डिंग हेड। तो ये भी आप याद कर लीजिए, इससे ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, आया भी था जो उस दिन करवाया था मैंने, उसमें भी आया था ये क्वेश्चन, इफ यू रिमेंबर, है ना। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। प्लांट एंड मशीनरी, सिविल स्ट्रक्चर टू बी ट्रीटेड एज प्लांट एंड मशीनरी, एंड सिविल स्ट्रक्चर टू बी ट्रीटेड एज बिल्डिंग। ये दोनों आप बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिए, इसको हार्ड डिस्क में कहीं स्टोर कर दीजिए माइंड पे। दिस इज माय सजेशन। आई थिंक विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर, ठीक है सर। तो इसमें क्वेश्चन करवाएं, you want to do MCQ or you want to go to next chapter first? Yes sir, हाँ क्वेश्चन कर लेते। इसका क्वेश्चन कर लें, ओके। Broad category of machine to be encounter, law, industrial process, report writing, using, approaches, innovation, MCQ, इससे जो क्वेश्चन आया है सर, बस वही आता है, मैक्रो माइक्रो, ब्रॉड कैटेगरी ऑफ मशीन टू बी
नहीं सर, आई एम नॉट एबल टू लोकेट एग्जैक्ट क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है बट एग्जैक्ट क्वेश्चन है मैं लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ अभी. We'll do it. Let me search it during lunch time. So I'll show it to you. So we now move to second part जो आपने कहा depreciation नहीं हुआ है, depreciation भी डिस्कस कर लेंगे. Identification हो गया? नहीं, broad categories of machine to be encountered. This also you wanted to be covered. Broad categories of machine to be covered. अभी आपका 1 बजा है सर. So I think before lunch we can finish it. 2 o'clock we take lunch time. I think I'm not delaying you. Yes, sir. That's okay? Fine, sir. So we'll do now broad category of plant and machinery to be encountered. Yeah, this is the, you can see the screen? Yes, sir. Okay, sir. So इसमें basically we shall come across 3 different circumstances. First is valuation of a machine which is no longer being manufactured. Second is valuation of machine for which current cost of identical brand new machine is available by other manufacturers. Got it ना? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब क्या है कि एक 5 मेगावाट की टरबाइन टीजी सेट है, राइट? वो BHEL बना रहा था, बट नाउ बिकॉज कंसेप्ट इज गोइंग टू अ हायर कैपेसिटी, मतलब पहले लो कैपेसिटी की प्लांट लगती थी, अब जो है 500 मेगावाट से 800 मेगावाट तक के प्लांट आ गए हैं एक यूनिट, और अब 1000 की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, R&D चल रहा है अभी. तो अब 5 मेगावाट बिकेम ए नॉन इकोनॉमिकल प्रोपोजिशन फॉर BHEL एंड दे हैव स्टॉप्ड मैन्युफैक्चरिंग दैट, बट त्रिवेणी इज स्टिल मैन्युफैक्चरिंग 5 मेगावाट डीजी सेट. ठीक है ना? तो क्या है, 5 मेगावाट का डीजी सेट का कॉस्ट आपको मिल जाएगा, बट मिलेगा किससे? त्रिवेणी से, राइट? So that is first category of machines we shall come across is which is no longer being manufactured at all. ठीक है? जैसे नोकिया का मोबाइल ढूंढो आज आप, वो वाला जो N70 2005 में मेरे ख्याल से वो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड था, if I am not mistaken. Yes, yes. But today if you try to search N70, it is of no use. Nokia has stopped manufacturing that now, right? So that is the case which is no longer being manufactured, right? But आपको एक Nokia N70 का valuation करना है. So category 1 is we come across is valuation of machine in which is no longer being manufactured. तो आपके पास सिर्फ historical cost है और वहाँ से आपको valuation करना है, correct ना? Second category is valuation of machine which original equipment manufacturer has discontinued, but other manufacturers are producing it. ठीक है सर? बहुत मैन्युफैक्चरर गायब हो जाते हैं मार्केट से सर, बिजनेस नहीं चला पाए, गायब बोलेंगे वो. तो वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर नहीं है, बट दूसरे आ गए उसको बनाने वाले, तो अदर ब्रांड के रूप में आ गया है वो चीज बन रहा है आज. वैल्यूएशन ऑफ मशीन फॉर विच करंट कॉस्ट ऑफ आइडेंटिकल ब्रांड न्यू मशीन इज नॉट अवेलेबल. थर्ड कैटेगरी वी कम लाइक दिस, मतलब HP ने इस लैपटॉप को बनाया जिसपे मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, ये HP 245 है, करेक्ट ना? I purchased this in 2017, but if you go to the HP shop today, showroom today, they will say, sir, we have stopped manufacturing this. 245 is no more under manufacturing because modification is so fast in electronic gadgets especially, है ना, कि वो आप अगली बार जाएंगे, कार मैन्युफैक्चरर भी आजकल यही कर रहे हैं सर. अभी आप जाएंगे तो मॉडल होंडा सिटी का एक दिखा देगा, 6 महीने बाद होंडा सिटी का नया मॉडल आ जाता है और आप पुराना फील करने लगते हैं. तो कार में भी, ऑटोमोबाइल में भी ऑलमोस्ट एवरी सेगमेंट सेम थिंग इज हैपनिंग, है ना? सो दिस टॉक्स अबाउट वैल्यूएशन ऑफ मशीन फॉर विच करेंट कॉस्ट ऑफ आइडेंटिकल ब्रांड न्यू मशीन इज नॉट अवेलेबल. तो वो तो बोलेगा कि सर हमारे पास है, बट वो नोकिया HP का जो है 265 मॉडल है आज की तारीख में, 245 नहीं है.
उसका हार्ड डिस्क जो है 1 GB का है और रैम जो है 4 GB का है, ठीक है। जबकि ये 17 मैंने खरीदा था 245, इसका हार्ड डिस्क 500 GB मैक्सिमम आता था और रैम जो है 2 GB का है, करेक्ट ना। सो नाउ इट इज अवेलेबल बट दिस इज नॉट अवेलेबल, मॉडिफाइड वर्जन इज अवेलेबल, ठीक है ना। तो ऐसे 3 सर्कमस्टांसेस, 3 डिफरेंट कैटेगरीज के मशीन जब आप वैल्यूएशन कंडक्ट करने जाएंगे तो यू विल कम अक्रॉस such 3 different type of machineries. So what we have to do now in different circumstances, that is what is being taught in this chapter. Clear na? ये chapter किस बारे में है sir? The broad category of machineries you will encounter when you go for valuation. These are the 3 different circumstances you will come across. तो उसमें आपको वैल्यूएशन करना है तो कैसे करेंगे। दूसरा चीज हम कवर कर रहे हैं इस चैप्टर में, द रीजन फॉर डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ मशीन्स विथ सेम स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है सर। द फैक्टर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल अडॉप्टिंग कॉस्ट अप्रोच, डाटा कलेक्शन एंड वैल्यूएशन एनालिसिस अंडर कॉस्ट मार्केट एंड इनकम अप्रोच। ऐसे मशीनों के केस में आप कैसे कैसे डाटा कलेक्ट करेंगे प्लांट में, दीज आर थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। पहला केस है machines identical to the machine under consideration as available in the market from the original manufacturers. Most simple case, BHEL के 5 मेगावाट का आप कर रहे हैं और BHEL आज भी वो 5 मेगावाट बना रहा है, ठीक है ना सर। दिस इज द मोस्ट सिंपल केस। In the case of these machines, it is not difficult to ascertain replacement cost and depreciation and may be calculated from the following information. सिर्फ एज चाहिए उसका, जिसका कर रहे हैं आप, उसका एज कितना है, क्रोनोलॉजिकल और इफेक्टिव एज, यूसेज क्या है, 3 शिफ्ट 2 शिफ्ट 1 शिफ्ट, ठीक है, काम कर रहा है वो, एस्टिमेटेड इकोनॉमिक बैलेंस लाइफ, 3 चीज मिल गया और एक मार्केट शिफ्ट का प्राइस मिल गया आपको, ठीक है सर। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कोटेशन BHEL का मिल गया 5 मेगावाट वाले का, आप ये 3 चीज लगाइए, यू आर एबल टू वर्क आउट DRC फॉर दैट, करेक्ट। दिस इज द मोस्ट सिंपल वन। Machine discontinued by original equipment manufacturer, but identical machine being manufactured by different manufacturer. अब इस पे आ गया। So many a time it is observed that the same machine by 2 different manufacturers are sold at different prices. But अगर वो त्रिवेणी का जो है BHEL का है और एक सीमेंस का है 5 मेगावाट का, तो BHEL ने तो डिसकंटिन्यू कर दिया, बट त्रिवेणी एंड सीमेंस इज स्टिल सेलिंग, है ना। बट अगर त्रिवेणी के 5 मेगावाट का प्राइस अगर मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम 10 करोड़ है, ठीक है, तो BHEL विल डेफिनेटली सेल एट 12 करोड़ एंड सीमेंस में जाएंगे तो वो 13 करोड़ बताएगा वो, गॉट इट ना। तो सेम कैपेसिटी मशीन बट 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर, 3 डिफरेंट प्राइस, व्हाई? ब्रांड नेम। द रीजन फॉर डिफरेंस कैन बी ब्रांड नेम, better quality, less maintenance cost, less power consumption, correct sir, less fuel consumption. So if the product of other manufacturers are well comparable with the original manufacturer, their replacement cost can be accepted. अगर बिल्कुल स्पेसिफिकेशन पे कंपेरेबल है, बेटर क्वालिटी नहीं है, मेंटेनेंस कॉस्ट सेम है, फ्यूल कंजम्पशन सेम है दोनों का, तब तो हम त्रिवेणी की प्राइस को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अगर नहीं है, ये तीनों सेम और देयर इज बेटरमेंट और इंफीरियर कंपेयर टू BHEL, है ना, तो वो डिस्काउंटिंग एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। व्हाट इज द बेटरमेंट? तो ये आ गया सर, ओल्ड एंड आउटडेटेड मशीन डिसकंटिन्यूड बाय द मैन्युफैक्चरर, ठीक है सर। इट विल बी नेसेसरी टू कैलकुलेट ऑब्सोलिसेंस एंड फॉर दैट पर्पस it will be necessary to carry out comparison of machine under consideration with the latest available machine with regard to the following factors. Technical specifications, wages में कोई ऐसा है, ऑटोमेटिक कर दिया सर नए मशीन को, ठीक है। पुराना मशीन मैनुअली चलता है तो उसको चलाने में एक ऑपरेटर लगता है, उस ऑपरेटर की सैलरी तो बचेगी ना नई मशीन में, अगर ये ऑटोमेटिक कर दिया सब कुछ तो वही कर रहा है। डायरेक्ट वेजेस फैक्टर जो है उसमें अगर कोई सेविंग हो रही है यूजर को, कंजम्पशन ऑफ स्टोर एंड स्पेयर्स, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है इसमें, नए वाले ब्रेक डाउन कम है, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी ऑलरेडी आई हैव डिस्कस, फिक्स्ड कॉस्ट,
सेविंग इन स्पेस, ये लैपटॉप बहुत बड़ा है, एकदम छोटा सा लैपटॉप आ गया, ठीक है सर, दैट इज सेविंग इन स्पेस, डाउन टाइम, और साल में कितने घंटे बंद होता है मशीन, अगर दोनों इन पैरामीटर्स को कंपेयर करेंगे और देन वी शैल डू वैल्यू। तो एक एग्जांपल दिया इन्होंने, machines identical to machine under consideration as available in the market from the original. Client purchased lathe machine of 2002, cost was 2 lakh. Identical lathe machine on valuation date is 2,50,000. इतना केसेस नहीं करने के बाद ये केस बहुत सिंपल लगेगा आपको, ठीक है ना। सो रिप्रोडक्शन कॉस्ट न्यू इज 2,50,000, करेक्ट ना। Depreciation may be calculated from the following information: age, usage, estimated economic, DRC निकाल लोगे आप इसमें, ठीक है। बट अब दूसरा सिचुएशन दिया, मशीन डिसकंटिन्यूड बाय ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर बट आइडेंटिकल मशीन इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर, है ना। तो कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ वन मैन्युफैक्चरर आर वेल कंपेरेबल विद द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर, देयर रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैन बी एक्सेप्टेड बाय यू, कंपेरेबल है। Otherwise, adjustment will have to be made for good with good judgment. है ना? This is known as replacement in like and kind and utility. ठीक है सर? So, machine mentioned in the previous example is discontinued by A, but same is being manufactured by B, having price of 3 lakh. वहाँ पे 2 लाख का था ना मशीन जो, अब वो 3 लाख का दूसरा मैन्युफैक्चर दे रहा है. On the date of valuation, comparison has to be done with respect to the following factors. अब इसमें देखा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी जो है ये 3 लाख वाले में वो 15% कम है, कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स जो है 10% कम है, मेंटेनेंस और स्पेस रिक्वायर्ड, कॉम्पैक्ट है मशीन ये, तो जगह भी कम ले रहा है, 5% कम चाहिए जमीन इसको, ठीक है ना। ये तीनों फैक्टर 15, 10, 25, 5, 30% हो गया, तो 3 लाख आज का कॉस्ट है माइनस 30%, 2,10,000 becomes the replacement cost new for the BHEL machine. Model A. Model A, correct. Clear ना? वर्मा साहब? Clear? Okay. Same old and outdated machine discontinued by the manufacturer. So old and outdated machine discontinued by the manufacturer means old machine purchased 10 year back for rupees 1,50,000, ठीक है। कह रहा है आउटडेट हो गया बिल्कुल मशीन और मैन्युफैक्चरर भी नहीं है, सिर्फ आपके पास ग्रॉस ब्लॉक या हिस्टोरिकल कॉस्ट अवेलेबल है, इनवॉइस इसका दिखा देगा कि ये मैंने इतने में खरीदा था, 10 साल पहले खरीदा उन्हें 1.5 लाख में। लेटेस्ट मशीन हैज डबल द कैपेसिटी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक। देखिए ड्यू टू 100% कैपेसिटी इंक्रीज, रेवेन्यू अर्निंग पोटेंशियल इज ऑलमोस्ट डबल। ऑब्वियस है, डबल कैपेसिटी है डबल रेवेन्यू, तो प्रॉफिट होगा उसमें। दिस हैज रिड्यूस्ड वेजेस बाय 15%, क्योंकि ऑटोमेटिक है तो लेबर 2 चाहिए था, अब नहीं चाहिए इसको चलाने के लिए। कॉस्ट ऑफ मशीन इज 5 लाख, ठीक है सर। तो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी 10% कम है, स्टोर्स एंड स्पेयर मेंटेनेंस। पीछे वाले एग्जांपल का ही ले लिया, 10 और 5 तो वेजेस पे एक एक्स्ट्रा दिखा दिया, 15% सेविंग है। सो आरसीएन ऑफ ओल्ड मॉडल इज, ये 40% निकला, तो 5 लाख इंटू 40% माइनस कर दिया, 3 लाख बिकम द replacement cost new for the whole machine of 10 years. This way we have to do adjustment. This is a guideline for doing adjustment for the factors as discussed. Reason for difference in price of the machine with the same technical specification and features by different manufacturers. सबसे बड़ा होता है ब्रांड नेम, कॉस्ट पे जो लोडिंग करते हैं ना। आप बाटा का जो पावर शू है वो बाटा के शोरूम में जाइए तो दैट विल कॉस्ट यू 3,000 रुपीज, बट वही पावर मॉडल पावर के इक्विवेलेंट शू आप किसी सेकेंड बी ग्रेड के मैन्युफैक्चरर्स ले लीजिए, वो 700-800 रुपये में मिलता है सर। डू यू एग्री? टी शर्ट आप नाइक का लीजिए तो दैट विल कॉस्ट यू मे बी 1,000, 2,000। शर्ट में होता है, पैंट में होता है सर, हर जगह ये चीज़ है।
The moment you go to higher brand and you pay maybe 7-8 times of cost, and same material, same specification you can get at 10 times less cost. So that is the brand name is the biggest factor for loading the price. Better quality, percentage of rejection of finished product, maybe less in the new downtime of machine while in operation, maintenance cost, accuracy achieved which claim, longer life. These are the factors because of which price vary by two different manufacturers. So, this you need to understand. Value of plant and machinery will normally be on the basis of DRC, except where permanent diminution below this level has been recognized, in which case value to the business will be the recoverable amount. Clear why? Nine. In the event of decommissioning, the cost of dismantling and demolition of plant no longer required by the company shall be reflected in the report separately, even if the same creates negative value. ये डिस्कस किया था कि इफ यू आर डूइंग इट फॉर लिक्विडेशन पर्पस, तो जो बायर लेगा, इट इज नॉट नेसेसरी कि बायर यहीं पे चलाएगा. बायर कहीं जल्दा अपने प्लांट में ले जा सकता है, वहां अपने प्लांट में एक्सपेंशन कर सकता है. ठीक है ना सर? This is one possibility. So in that case, dismantling cost have to be forming part of your report if you are doing into the cost approach. आपके रिपोर्ट में रहेगा कि dismantling cost of this machine is total dismantling cost will be 5% of the value of all machine arrived at. So if 100 crore is the value of plant and machinery, 5 crore will be the investment on dismantling and demolition. And for that purpose, estimated cost is 5 crore. That 5 crore will be mentioned in your report. Where plant and machinery to be moved to another site and recommissioned for production, due allowance shall be made for cost of removal, reinstallation and commissioning cost also. अगर आप वहाँ के लिए वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो वो भी एक पैरा रिपोर्ट में आएगा कि चूंकि प्लांट यहाँ से वहाँ ले जाया जा रहा है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रास्ते के इंश्योरेंस का कॉस्ट, और वहाँ पे जो लगाने में खर्चा आएगा वो कॉस्ट इतना आएगा. तो these are the factors to be considered when you are doing valuation for different purposes. Data collection and valuation analysis under cost, market and income approach. ये आपको बता दिया गया है, तो मतलब आई डोंट थिंक कि अगर रिकैप करना है तो कहिए, मैं करूं या मैं आगे बढ़ूं. ये तो डिस्कस हो चुका डिटेल में जैसा आप बता रहे हैं सर. हाँ, तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे हमें तो तीनों बता रहे, कॉस्ट, मार्केट, इनकम हो गया सर. हो गया ना सर. इस पे फिर जरूरत नहीं है फिर आपको कुछ करने की. Sales comparison method, this is one example. Then I think this finishes this chapter. आप कुछ क्वेश्चन करवा लेते हैं सर इस चैप्टर का, तो you will be comfortable. क्योंकि आपके पास अब आधा घंटा समय है सर बिफोर लंच, एंड वी शैल फिनिश दिस इन बिटवीन. ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ मशीन का क्वेश्चन 1 कीजिए आंसर सर. Give me some water. Machine identical to the machine. गर्म पानी देना साथ में. Under consideration as available in the market from the original manufacturer. As I mentioned, first slide में मैंने बताया कि this is the most simplest scenario and easiest to do valuation. ठीक है, but ये ideally होता नहीं है generally. है गर्म. Good.
सो फर्स्ट का ए, बी। B. रिप्रोडक्शन कॉस्ट न्यू इज बी। थ्री का रह गया सर मेरा, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन पे यू वांट टू गो बैक? अच्छा रह गया क्या? हो गया सर। अच्छा थर्ड ऊपर चला गया, ओके। हो गया सर, नेक्स्ट फोर। नहीं, क्वेश्चन आंसर क्या हुआ थर्ड ए। का? ए हुआ सर, थर्ड का ए। 15 लाख। ओके, फोर्थ ए होना चाहिए। डी। D. डी। क्वेश्चन है आपका शैल नॉट बी मेड, क्वेश्चन इज नॉट शैल बी मेड। हाँ, डी होना चाहिए, एस्थेटिक्स। हाँ, वो एक्चुअली सर Next. एक वर्ड वो उसकी वजह से बहुत गलती होता है, शैल नॉट बी, और मैंने देखा है काफी सारा क्वेश्चन में यही होता है। फोर्थ का अभी हम फोर्थ का नहीं है आंसर सर अभी। फोर्थ का आप फिफ्थ में चले गए, राय साहब फिफ्थ में चले गए। नहीं सर, ये फोर्थ का डी। फोर्थ का डी Fourth सर। का D. डी। डी। पांचवा बताओ। B, sir. बी। B. Look and feel. बी। Yes. डी। 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 डी इज करेक्ट सर। मर्सिडीज वाले फील करते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बट मर्सिडीज को आप किसी एंगल से देखिए अदर देन इंडियन रोड्स आर नॉट मेड फॉर यूज ऑफ मर्सिडीज। जहाँ आप 150 की स्पीड कितने रोड पे ले सकते हो सर? मोस्टली यू आर इन टाउन, तो बस वो फील गुड फैक्टर ही है। एवरेज मिलता है 6 किलोमीटर पर लीटर का, उसमें प्राइस आपका इतना लग गया, इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा जाता है लोन पे, कार लोन पे, तो बट वो फील गुड फैक्टर ही है जिसपे मर्सिडीज ले आते हैं लोग उठाकर। So that is what I'm saying. So that is feel good factor. 6 का आपने बता दिया डी, 7 का बताइए सर।
मेंटेनेंस सी होना चाहिए। सी। स्टोर्स एंड स्पेयर जो लिखता है, स्टोर्स एंड स्पेयर, वो बात मेंटेनेंस कॉस्ट की है सर। आई थिंक डी इज द करेक्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट इज सी ना, which one? Which is one reason for the difference in price of the machine with similar feel good factor is not the look and feel is, हाँ बिल्कुल सही, सी सही है सर। 8 चलेगा 5 अभी होगा लंच हो गया। ये कंफ्यूजिंग है बी बी। क्यों कंफ्यूजिंग क्यों है सर? क्योंकि सर सी और डी तो नहीं होगा, लेकिन एसेट इज नॉट डायरेक्टली, अगर मैं ए कंसिडर करूं, एसेट इज नॉट डायरेक्टली इनकम जनरेटिंग। देखिए कह इज रहा है मार्केट कि अप्रोच एक्चुअली। which among the following factors will be considered while adopting cost approach of valuation, ठीक है ना? तो कॉस्ट अप्रोच वैल्यूएशन में इनकम जनरेटिंग है कि नहीं है? इज इट इम्पोर्टेंट? Similar transaction has not happened in the past. This is market approach. मार्केट अप्रोच। It is not possible to apply market approach. Yes, it is not possible to apply market approach. It is not possible to use income approach. तो मतलब कह रहा है कि following factor will be considered while adopting cost approach of valuation. तो 1, 2, 3, 4, तो चारों फैक्टर जो है ये सब रिलेट्स टू इनकम अप्रोच एंड मार्केट अप्रोच, करेक्ट ना? यस। ये कॉस्ट अप्रोच से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है चारों में, ऑल 4 इज यूजलेस फॉर अस। तो सिमिलर ट्रांजैक्शन हैज नॉट हैपेंड इन द पास्ट। अगर वहां पे पास्ट में हो जाता तो हम मार्केट अप्रोच लेके चल सकते थे, ठीक है सर? लेकिन चूंकि सिमिलर ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है तो अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है अदर देन हम नए का कॉस्ट कोटेशन मंगवाएं और उस पर डिप्रिसिएशन लगा के इसका अराइव करें कॉस्ट अप्रोच से, है ना? दिस इज द मोस्ट वाइटल इन्फॉर्मेशन कि ऐसा कोई ट्रांजेक्शन पास में नहीं हुआ है तो मार्केट अप्रोच हम लगा ही नहीं सकते इस पर, ठीक है सर? तो ये मेरे ख्याल से सिमिलर ट्रांजेक्शन हैज नॉट हैपेंड इन द पास्ट। ओके, दिस शुड बी द आंसर इन माय ओपिनियन। देख लेते हैं 9 का, 9 का बताओ सर। But I think 11 is the last question. We have only 11 questions on this. नाइन का सी। बराबर। Which one is not the factor? डी होना चाहिए। अगर बी रहेगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू रहेगा, तो मैं तो ठीक है, कॉस्ट अप्रोच निकाल सकते हैं हम। हाँ, या तो ठीक है, बिल्कुल। इट इज पॉसिबल टू रिक्रिएट एन एसेट विद सब्सटेंशियली द सेम यूटिलिटी एज द सब्जेक्ट एसेट। ये भी इंफॉर्मेशन कॉस्ट अप्रोच की तरफ ले जाता है, ठीक है? यस यस। Asset is not directly income generating. Market data on similar transaction is available, which is not the factor. Market data similar transaction पे available है ना? तो ये मार्केट अप्रोच भी जा सकते हैं। यस, तो डी होना चाहिए। डी डी है, सिमिलर डायरेक्ट इनकम इनकम अप्रोच है ये, नहीं? यस। 9 का डी। 10 आ जाओ सर।
10 का 20 है। B. हाँ बी होना चाहिए। Ascertaining remaining life of asset is possible by knowing date of installation, correct ना? अब क्लियर हुआ फंडा आपका ये। नहीं तो मैं मॉर्निंग तक मैंने देखा माइंड में थोड़ा वो था क्या बोलते हैं एम्बिगुअस काइंड ऑफ सिचुएशन थी कि परचेज से लें कि मतलब इंस्टॉलेशन से। हाँ आई कुड अंडरस्टैंड इट। यस 11 से लास्ट क्वेश्चन। 11 का डी सर, प्लेस ऑफ सेल। डी बहुत फास्ट जवाब दिया वर्मा सर ने। 1 का ए करेक्ट, 2 का बी करेक्ट, 3 का ए। मैं यहाँ से बोलता हूँ आप वहाँ बोलिए आपका आंसर जो है। 4 का डी, जब गलत होगा बताइएगा। 5 का बी, 6 का डी, आई वॉज नोटिंग योर आंसर। 7 का सी, 8 का बी, 9 का डी, 10 का बी, 11 का डी। 100% करेक्ट है, करेक्ट ना? 8 का मेरा बी हुआ, 8 का सर क्या था, ए था। 8 का बी, बी सही है। ए आप सही है ना? तो 8 गलत हुआ। हाँ 8 का सर ऊपर क्या क्वेश्चन में फिर जाते हैं सर? हाँ जाते हैं ना, फिर जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। ये है इसका। Which among the following factor will be considered while adopting cost approach? और हमने बी बोला था, ये कह रहा है एसेट इज नॉट डायरेक्टली इनकम जनरेटिंग। ये गलत है, गलत, ये सही आंसर है सर। करेक्ट योरसेल्फ, ठीक है। ये मेरा ही था कि सिमिलर ट्रांजैक्शन हैज नॉट हैपेंड इन द पास्ट, है ना। तो वी कंफ्यूज बिटवीन ए एंड बी। ए इज करेक्ट आंसर 8 का। एसेट इज नॉट डायरेक्टली इनकम जनरेटिंग, इसीलिए हमें इनकम जब रेटिंग है तो इनकम अप्रोच पे जाएंगे सर। इनकम, हाँ इनकम अप्रोच लग जाएगा ना फिर तो। हाँ इनकम अप्रोच लग इनकम जाएगा। अप्रोच लग जाएगा। तो इसीलिए इनकम जनरेटिंग डायरेक्टली नहीं है, इनकम अप्रोच छोड़ के हम कॉस्ट अप्रोच ले रहे हैं, ये कर रहा है ये। Which among the following factor will be considered while adopting cost approach of valuation? Asset is not income generating, so it has to be done by cost approach. ये कर रहा है। So with this sir we complete. हाँ लंच ले लेते हैं सर। हाँ लंच ले लेते हैं, ब्रेक। आप देर कर दिया आपने, 1:30 पे जनरली आप लोग लेते हैं। So what is reassembly time? Suggest me. 3 o'clock sir? Yeah 2:45. I think 2:45. Let us not run short of time. 1 घंटे का लेते हैं सर, ठीक है। Yes sir. So we reassemble at 2:45. अभी तक के चैप्टर में आपका स्टडी ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर का बहुत अच्छा हुआ। ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन यू डिड करेक्टली, है ना। तो इस चैप्टर में बहुत अच्छा हुआ। उसका हम एमसीक्यू ढूंढ लेंगे बीच में, और आई विल ट्राई टू, जो पहले वाला चैप्टर था। अब एक बच गया अपना डेप्रिसिएशन, कंपोनेंटाइजेशन, ठीक है सर। मेरे हिसाब से ये 2 बचा है कवर अप करने के लिए, ठीक है सर। Yes sir. और डिस्काउंटेड कैश फ्लो का केस स्टडी, और एक केस स्टडी में दिखाऊंगा जो 13 तारीख को आया था, ठीक है ना सर। वी आर लेफ्ट विथ ओनली दिस मच, सो वी कैन मीट एट 3 ऑल्सो, वी कैन मीट एट 2:45 ऑल्सो। 2:45 इज डन, राइट सर। Yes सी sir. यू एट 2:45। Yes sir.
Questions दिए प्रैक्टिस के लिए करवाए थोड़ा डाउट है चल रहा है ये माइक वाइक चल रहा है इसमें बहुत कम चलता है थोड़ा बहुत ज़्यादा उसका वो बोल कर
candidates are available to join at 2 o'clock. Welcome back to the heavy session post lunch, sir. But problem is this: the other two colleagues are yet to join. yes sir, yes sir. They will be coming sir, joining. बात हुआ है आपका? नहीं बात नहीं हुआ सर, कर रहे होंगे, मैं Maybe. बात कर लेता हूँ। Maybe. नहीं नहीं छोड़ दीजिए आने दीजिए we'll wait for them. 1-2 मिनट की बात है। In between, Burma Sahab, I got a message from institute that there are 2 more chapters which has not been covered. One is uh, law, plant and machinery. Yes, sir. General law has been discussed, if I remember correctly, but law, plant and machinery has not been discussed. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Rai Sahab has joined. So now only Raunak is also there, but Raunak, you are there? Yeah, he's there. He's there. So law, plant and machinery and process of valuation. Process of valuation, by and large, now you are clear by doing case studies. But still, process of valuation also we shall just run through so that your thought process is crystallized. But by and large, you know all things what we have discussed in the morning that covers law of process of valuation, right? So before we go to these 2 chapters, which is additionally you have to hear now, Hana? So we will finish this part of, I mean to say, first depreciation and componentization and useful life concept, right, sir? First, we shall finish that. Okay, sir. So, what was bothering you that company law, income tax law, these different regulations govern company to how to prepare their balance sheet. Fine. So I will straight take you to depreciation part only of this chapter. Yes. So there are 2 types of asset. One is tangible and other is intangible. Tangible, all of us understand, which you can touch and feel. And intangible is we cannot touch, but you can feel it, right? So tangible assets are mostly depreciable except land. Except land. So land it never depreciates; it always appreciates. Right? So why it appreciates? Any reason behind that? You can assign. Population increase, but land is limited. Is it the reason? A specific answer to this is that land is appreciating only because you cannot create this. Okay. Any other tangible asset, you can put factory, you can create additional capacity, but land now you are only trying at moon. But fact remains that your answer is also correct because of population increase. Now increased population needs accommodation, so they occupy some house, they need a car parking space, so they are occupying some additional lands. So land is decreasing in fact. So supply is less, demand is more. That is third reason because of which land is always appreciating. So there is no depreciation on land. That's why most type of property except land, such as building, machinery, vehicles, furniture and equipments are depreciable, right? Likewise, certain intangible property also, such as patent, copyright, computer, software are also depreciable because technology gets out of date very fast. So that's why depreciation has to be applied on that also, right? So only land does not attract. One year this question, one candidate was telling me that this question was there, that why land, which one of this does not attract depreciation? Plant and machinery, intangible assets, then you have furniture, fixture, or all 3-4 options. So land was one of them. Land was the correct answer. So
Depreciation is an income tax deduction that allows taxpayer to recover the cost of other basis of certain property. It is an annual allowance for the wear and tear, deterioration, and obsolescence of the property. Depreciation is a measure of the wearing out, consumption of other loss of value of depreciable asset arising from use, passage of time, or obsolescence through technology and market changes. This is the second reason of depreciation. Depreciation is the one of the expenditure debited from the profit and loss account. It is non-cash expenses. So now we have come to depreciation part, right? So depreciation part, what it says that basically industry is putting machine with a useful limited life. So after 15 years, if useful life is 15 years, after 15 years they have to replace this equipment with all possibility, unless they have a enhanced value or something like that. So they are supposed to replace this property. So the car day you purchase, you came out of the showroom car, you take out of the showroom, your car is minus 10% at what value you purchased it. So the moment the car is on road, the price depreciate by 10%. Right? So if that car is just stolen, insurance company will not pay you 100% price. Insurance company will pay you 90% only of that, because 10% depreciation they will apply on that. So see, this is a award for use of the equipment. By that use you have lost some financial value, that is depreciation. So depreciation के लिए आप बैलेंस शीट जब किसी कंपनी का देखेंगे तो you will find there are various terms being used. Depreciation is systematic allocation of depreciable amount of an asset over its useful life. This is the most accurate definition of depreciation. Allocation of depreciable amount of an asset over its useful life. Depreciable amount is the amount of depreciation. You are taking advantage in the balance sheet. That is amount of depreciation. That is depreciable amount per year. Carrying amount. Carrying amount, it is the amount at which an asset is recognized after deducting any accumulated depreciation and accumulated impairment losses. अब दो नए शब्द आ गए यहाँ पे, depreciation and impairment. ठीक है, आप किसी किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो depreciation का synonyms है amortization. I don't know whether you have come across this terminology or not. Yes, I've seen Amortization. amortization. तो MNC जितने होते हैं ना, MNC मल्टीनेशनल कंपनी, जो ग्लोबली amortization is more popular. India depreciation is popular, right? So Indian company, typical Indian company will use depreciation in the balance sheet. जो जहाँ ग्रॉस ब्लॉक है ना उसके ऊपर depreciation लगा के फिर नेट ब्लॉक अराइव करते हैं, तो depreciation कॉलम में जो है वो amortization डालते हैं MNC वाले. They will put the word amortization. So depreciation and amortization is same, whereas impairment value is different, right? What it says, impairment loss is, it is the amount by which carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. So impairment क्या हुआ? Impairment हुआ कि suppose that एक equipment का life आपने 15 साल ले लिया, useful life कंपनी लॉ में 15 साल लिखा हुआ है, तो depreciation अगर आप 15 साल के हिसाब से लगाते जाएंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो 15वें साल its value will be 0, right? और एक WDV होता है, WDV रिटन डाउन वैल्यू. रिटन डाउन वैल्यू में क्या होता है कि 100 रुपए का इक्विपमेंट आपने खरीदा और मान लेते हैं 10 साल पुराना है आज की तारीख में वो, ठीक है ना, तो 100 रुपए में ओरिजिनल खरीदा था, तो पहले साल आपने 10 साल मानो लाइफ उसका सिंपल बनाने के लिए, तो 10 रुपीज निकाला तो 90 बच गया आपके पास, ठीक. 90 पे अगले साल जो डिफरेंस लगेगा 9 रुपए, 10% ऑफ 90, तो यू केम टू 81. फिर अगले साल जो लगेगा 8.1, तो यू विल रिमेन समवेयर 72 पॉइंट समथिंग. तो 10 साल के एंड पे भी WDV मेथड में आपके पास कुछ वैल्यू बचेगा, करेक्ट ना? whereas स्ट्रेट लाइन मेथड में इट विल बी 0 10th ईयर, बिकॉज 100 पे ही 10 लगता जा रहा है हर साल. तो दोनों अलाउड है. इनकम टैक्स एक्ट WDV बोलता है, और ये जो कंपनी लॉ है वो स्ट्रेट लाइन मेथड बोलता है.
ठीक है सर, वो आप आगे 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 आएंगे उस पर, तो अभी इतना ही डिस्कस करते हैं इस पर। तो कहते हैं कि वो जो कॉस्ट बचा लास्ट में एंड में, सपोज है 10 साल के बाद भी वो इक्विपमेंट आपको 100% आउटपुट दे रहा है, ठीक है सर। तो इट मीन्स अगर उसको बेचने जाएंगे तो इट विल नॉट बी सेल एट WDV, but it will sell at much better price. If you try to sell that particular machine, it will sell at much better price. So for that is the impairment cost. It is the amount by which carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. Carrying amount is WDV as per your books. But अगर बेचने जाए उस equipment को, if it will perform 5 year more, so its sale value will be much better than WDV. That is difference between carrying amount and the recoverable amount. So अगर मान लीजिए कैरिंग अमाउंट हमारा बचा 9 रुपए और अगर हम उसको बेचते हैं 50 रुपीज का, 41 रुपीज इज द इम्पेयरमेंट कॉस्ट। व्हाट इट ना, दैट इज इम्पेयरमेंट लॉस। फेयर वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, वैल्यू इन यूज, एमोटाइजेशन। देखिए यहाँ पे ये कर दिया, इट इज द सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ द डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। समझ गया ना। एमोटाइजेशन जो इसलिए फॉरेन वाले यूज करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर को भी डेप्रिसिएट करते हैं अपने बैलेंस शीट में, इसलिए दे यूज वर्ड एमोटाइजेशन। इट इज एमोटाइजेशन और डेप्रिसिएशन में डिफरेंस है, लिटिल बिट डिफरेंस। टेंजिबल एसेट पे जो लगा वो हुआ डेप्रिसिएशन, और एमोटाइजेशन क्या हुआ, इंटेंजिबल एसेट पे लगता है। करेक्ट ना? ऑल राइट सर। ये इम्पेयरमेंट जो है, इम्पेयरमेंट लॉस, इसका मतलब यूज क्या होता है, क्या मतलब जो बैलेंस शीट होता है उसमें लिखा कुछ रहता है क्या? Yeah. Some companies, not all, but some of the companies, what I have seen, companies like Reliance, which is very advanced stage, they take advantage of all accounting loose ends, है ना। तो वो क्या करते हैं कि सपोज दैट रियलाइजेबल वैल्यू ज्यादा है, ठीक है ना, उस रियलाइजेबल वैल्यू को अपने एसेट वैल्यू में ऐड कर देते हैं फिक्स एसेट रजिस्टर में। व्हाट इट ना, तो उनकी बैलेंस शीट अच्छी दिखती है, 5 लाख करोड़ का एसेट दिख रहा है उनका। जबकि अगर आप सिंपल डेप्रिसिएशन लगाते जाए तो you cannot add that impairment cost, and as a result your value will remain 9 rupees as per book। तो वो एसेट का साइज उनका बहुत अच्छा दिखता है, उसके लिए जो कंपनी मतलब अपना वैल्यूएशन बढ़ाना चाहती है वो एमोटाइजेशन को, सॉरी ये इम्पेयरमेंट कॉस्ट को अपने बुक्स में ले लेती है एसेट में। ओके। Gross block value I have explained you. Historical cost is again same terminology. Net block book value already we know. Depreciation के बाद जो बचता है वो net block of asset is, block of asset means group of asset falling within class of assets which same rate of depreciation is prescribed. Like सारे कंप्यूटर जो हैं, चाहे HP में हो, चाहे क्या बोलते हैं वो जो भी है, लिनोवो हो या वट एवर द मेक इज देयर, सारे कंप्यूटर को एक जगह डाल दिया, उस पर 25% डिप्रेशन लगा दिया आपने, है ना। दैट इज नोन एज ब्लॉक ऑफ एसेट। ये है सर डिप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट और कंपनीज एक्ट। ये टेबल है, ये दोनों में डिफरेंस बताता है कि कंपनीज एक्ट में डिप्रिसिएशन क्या बोलता है और इनकम टैक्स एक्ट में क्या बोलता है। इनकम टैक्स एक्ट इज बेस्ड ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट्स, whereas this is based on individual asset। कंपनी लॉ मतलब हर मशीन पे अलग अलग डिप्रिसिएशन आप लगाएंगे, और आप जो वैल्यूएशन करते हैं वो सेकेंड मेथड करते हैं कंपनी एक्ट के हिसाब से। आपका देखिएगा मोस्टली इस लाइन इसमें फॉल करेगा कंपनी एक्ट के हिसाब से, ठीक है ना। यूजिंग रिटन डाउन वैल्यू मेथड, WDV अभी एक्सप्लेन किया आपको मैंने कि एंड में कुछ वैल्यू बचेगा, बिकॉज यू आर अप्लाइंग ऑन रिड्यूस्ड बैलेंस डेप्रिसिएशन, है ना। यूजिंग ए स्ट्रेट लाइन मेथड, इसमें आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हो और एंड में जाके वैल्यू सिर्फ स्क्रैप वैल्यू बचता है आपके पास, राइट। ये कह रहा है वही, इट यूजेज स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड एंड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन यूज करता है, ठीक है। ये सिर्फ WDV रिकॉग्नाइज करता है, इनकम टैक्स एक्ट। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द इनकम टैक्स एक्ट डिफाइंड, हर ब्लॉक ऑफ एसेट का रेट डिफाइंड है। जैसे ये कहता है इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कंप्यूटर को 5,000 तक के एसेट का 100% डिप्रिसिएशन आप पहले साल ले लो,
ठीक है ना। whereas ये कहता है बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ। कंपनी एक्ट ने यूजफुल लाइफ डिफाइन कर दिया है और उस यूजफुल लाइफ के हिसाब से एडमिशन लगा होगा बैलेंस शीट। ठीक है सर। So this is based on rate of depreciation prescribed, whereas this is based on useful life concept. Adoption of lower rate of depreciation is not permitted. जो इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है वही लेना है आपको. You cannot deviate from that. Whereas this says deviation from useful life specified in Schedule 2 Part C is permitted, provided financial statement shall disclose such difference and provide justification in this behalf, duly supported by technical advice. कंपनी लॉ क्या बोलता है कि आप डेप्रिसिएशन के यूजफुल लाइफ को चेंज कर सकते हो. अगर 15 साल उसमें डिफाइंड है तो जो अभी एक केस किया ना आपने उसमें 28 साल चला गया. वो एक केस स्टडी किया ना आपने तो वहाँ पे एक जस्टिफिकेशन था कि मेंटेनेंस उसका बहुत अच्छा है इसीलिए वो 28 साल रख सकता है अपने इक्विपमेंट को लाइफ को. 18 साल यूज हो गया अभी भी इक्विपमेंट परफॉर्मेंस दे रहा है. इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट विल गिव अनदर 5 years द सेम परफॉर्मेंस. So for that reason 15 year was enhanced to 28. So his depreciation rate was being calculated with 28 years. Right sir. So that is the but income tax act does not permit any deviation. जो यहाँ टेबल में लिखा हुआ है you have to follow that. Residual value is not permitted. इनकम टैक्स एक्ट बोलता है whereas इसमें रेसिडुअल वैल्यू इज परमिटेड. स्क्रैप वैल्यू जो है वो आप कैरी कर सकते हैं. 100% डेप्रिसिएशन फॉर कॉस्ट लेस देन 5000 बताया ना यहाँ अलाउड है. यहाँ पे इंक्रीज इन परसेंटेज फॉर एक्स्ट्रा शिफ्ट. ये क्या कहता है कंपनी लॉ कि अगर एक शिफ्ट काम करता है सपोज दैट डेप्रिसिएशन एक शिफ्ट काम करने पर उसका लाइफ 20 साल डिफाइंड है. ठीक है सर. तो वो 2 शिफ्ट अगर काम करेगा वही इक्विपमेंट अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो वो दो शिफ्ट चलाएगा उसको. तो 2 शिफ्ट चलेगा तो 50% डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा. तो 20 साल लाइफ था तो 5% डेप्रिसिएशन हुआ पर ईयर. तो उस केस में वो 7.5% हो जाएगा अगर एक शिफ्ट से 2 शिफ्ट किया तो. और 3 शिफ्ट किया तो डबल हो जाएगा मतलब पर ईयर 10%. तो उसकी लाइफ रिड्यूस होकर 10 साल ही रह जाएगी. ठीक है ना सर. दिस इज द इंक्रीज इन परसेंटेज फॉर एक्स्ट्रा शिफ्ट. 1 शिफ्ट टू 2 शिफ्ट 50% लोडिंग और 3 शिफ्ट किया तो डबल हो गया सीधे नॉर्मल से. कंपोनेंट अकाउंटिंग इज नॉट स्पेसिफाइड और ऑप्शनल. कंपोनेंट अकाउंटिंग जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आगे कह रहे हैं कि इसमें नहीं अलाउड है. यूजफुल लाइफ स्पेसिफाइड इन पार्ट सी ऑफ द शेड्यूल फॉर होल ऑफ द एसेट वेयर कॉस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एसेट इज सिग्निफिकेंट टू टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट. तो कंपनी लॉ कंपोनेंट अकाउंटिंग अलाउ करता है बट दे डू नॉट अलाउ. ठीक है. इनकम टैक्स डू नॉट अलाउ दैट. इसका मीनिंग ये समझा. अब ये इसी में कंपनी के लॉ के शेड्यूल 2 में ये यूजफुल लाइफ डिफाइन किया हुआ है. ठीक है. ये स्टडी मटेरियल जो आपने डाउनलोड किया ना उसमें टेबल है ये पेज नंबर 964 दोनों टेबल है आगे पीछे. ठीक है सर. वहीं से मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको. ठीक है सर. ये जो स्टडी मटेरियल IBVI साइट से डाउनलोड किया ना आपने वो वाला है उसमें ये टेबल है. CVSRTA. राइट CVSRTA. तो ये इसमें जो है यू विल सी कि प्लांट लाइक क्रूड ऑयल रिफाइनरीज कितना साल है लाइफ 25 साल. थर्मल गैस कंबाइंड साइकिल हाइड्रो पावर प्लांट कितना साल है लाइफ सर 40 years. 40 years. लेकिन सर एक चीज मैंने देखा है जैसे NTPC का स्पेसिफिकेशन. मैं पहले BHL में काम करता था जी. तो NTPC का जो सब स्पेसिफिकेशन होता है हर कंपोनेंट में लिखा रहता है कि 20 साल हमारा यूजफुल लाइफ होना चाहिए. मतलब 40 साल इट इज गिवन इन दिस शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट बट दे स्पेसिफाई 20 years. इट इज जस्ट हाफ. मैंने वही कहा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए कंपनी लॉ ने ये लिख दिया 40 साल तक आप लाइफ ले सकते हो. बट अगर वो बताया ना कि एक शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट करेंगे तो वही 20 साल घट के आ जाएगा. ओके. तो मैन्युफैक्चरर डजंट नो कि मतलब वो एक शिफ्ट यूज करेंगे कि 2 शिफ्ट यूज करेंगे या तीनों शिफ्ट यूज करेंगे. दूसरी बात है कि आपके पास पर्सनल एक्सपीरियंस होगा. अगर आपने लाइफ में 2 कार अब तक खरीदा है तो अगर उसका लाइफ डीजल कार खरीदा आपने 10 साल है. RTO भी बोलता है और कंपनी का ऑपरेशन मैनुअल देखिए तो वो भी बोलता है. ठीक है सर. बट आप बहुत कम चलाते हो मेंटेनेंस बहुत अच्छा है
तो 15वें साल भी गाड़ी ठीक ठाक चल रही है हमारी सर, है ना। देर आर मेनी पीपुल, तो वो ऑपरेशन मैनुअल में जो लाइफ डिफाइंड है, दे आर कंजर्वेटिव इन रिकमेंडिंग दैट, बिकॉज देयर मे बी इंस्टेंसेस जहां वो 10 से पहले भी खत्म हो जाए, ठीक है। तो उस केस में दे हैव ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग स्यूड बाय द कस्टमर, तो उसको अवॉइड करने के लिए दे आर कंजर्वेटिव, दे विल रिकमेंड इन देयर ऑपरेशन मैनुअल द मिनिमम लाइफ they will not recommend that 40 year or 50 year, but ये कंपनी लॉ जो है डिफरेंट पावर प्लांट के परफॉर्मेंस को सिंस इंडिपेंडेंस ट्रैक किया और उसके आधार पे इन्होंने ये लाइफ अलाउ किया है, ठीक है सर। तो दिस इज कंपनी बैलेंस शीट फॉलोज दिस, एंड फॉर वैल्यूएशन पर्पस आल्सो यू नीड टू स्टिक टू दिस, ठीक है। दूसरी बात है, अगर मैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ थर्मल पावर प्लांट का टरबाइन का क्या लाइफ आप रखोगे, तो हो सकता है आप 50 साल बोल दो, हो सकता है आप 30 साल बोल दो। उस ह्यूमन एलिमेंट को मिनिमाइज करने के लिए जो इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन है ना, तो यू आर फ्रॉम बीएचईएल, तो बीएचईएल टरबाइन को बोलोगे तो 50 साल आंख मूंद के चलाओ सर आप, है ना। तो एज पर बीएचईएल इट विल बी 50 ईयर, बट एज ए यूजर एनटीपीसी में से नहीं 30 साल से ज़्यादा चलता नहीं है, गॉट इट ना। तो ये ऑलवेज इट्स ए मैटर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ यूजर यू आर बायर और यूजर और सेलर। सेलर के लिए इट इज ऑलवेज बेटर, यूजर के लिए इट इज ऑलवेज कंजर्वेटिव, है ना। तो वो इट डिपेंड्स। सो कंपनी एक रूल चाहिए जो एवरीबडी विल फॉलो दैट, एवरीबडी विल फॉलो इन लाइन विद दैट, एंड दिस इज द रूल, दिस इज द रूल, ठीक है सर। तो इसमें ये शेड्यूल 2 में आपको डिप्रिसिएशन का लाइफ ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ प्लांट, इसमें सारे प्लांट आ गए, तो जितने प्लांट, कोई भी प्लांट आप जाओगे तो इसमें मिलेगा आपको, ठीक है सर। उसका लाइफ यहाँ डिफाइंड है, एंड वी आर सपोज टू स्टिक टू इट। फैक्टर टू बी considered for estimation of useful life, that is utility, physical and working condition, status of repair and maintenance, availability of raw material, availability of spare parts, demand and supply. All these factors we shall consider while we are working out the useful life of the equipment. Now we are coming to the componentization of asset, जो आपने कुछ शिकायत की कि कुछ क्लियर नहीं हुआ फंडामेंटल, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात बता रहे हैं कि फ्लाइट में हम सब बैठे हैं, एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा व्हाट इज कंपोनेंटाइजेशन ऑफ एसेट। तो कंपनी लॉ क्या बोलता है कि आप मशीन वाइज वैल्यूएशन करोगे, करेक्ट। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है ब्लॉक ऑफ एसेट वाइज वैल्यूएशन करोगे, करेक्ट सर। बट यहाँ पे कंपनी लॉ में एक प्रोविजन दिया गया है कि देयर मे बी ए सिचुएशन जहाँ एक ही मशीन में 3 पार्ट लगे हुए हैं और तीनों पार्ट की इकोनॉमिक लाइफ डिफरेंट है। एज फॉर एग्जाम्पल, फ्लाइट में हम सब बैठे हैं, फ्लाइट की जो बॉडी होती है उसकी लाइफ 20 साल होती है जिसमें हम बैठते हैं, ठीक है सर। बट फ्लाइट में 2 इंजन भी लगे होते हैं, वो दोनों इंजन की लाइफ सिर्फ 8 साल है। 8 साल के बाद दे आर सपोज टू रिप्लेस द इंजन, ठीक है सर। वेयर एज आप अगर वो क्या बोलते हैं, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, ऑटोमाइजेशन जो है, वो बहुत हेवी ऑटोमाइजेशन है उसमें, तो वो जो ऑटोमाइजेशन जो है उसका लाइफ 5 साल ही है, वो 5 साल में ही उनको चेंज करना है, एवरी 5 ईयर दे हैव टू चेंज इट, है ना। दिस इज एविएशन गाइडलाइंस रेगुलेशन, है ना। तो 5 साल ही है, 5 साल में ही बदलेगा। लेकिन अगर आप वैल्यू देखो कि एयरक्राफ्ट का वैल्यू 200 करोड़ है, तो 200 करोड़ में बॉडी मुश्किल से 70-80 करोड़ का होगा और 100 करोड़ की इंजन होगी और मात्र 20 करोड़ की वो ऑटोमाइजेशन होगा, ठीक है ना। तो फिर कंपोनेंटाइजेशन ऑफ एसेट यही है कि अगर ऐसी एसेट आ जाती है जहां बल्क वैल्यू इज ऑन ए लिमिटेड लाइफ पार्ट, राइट, तो इंजन इज मोस्ट एक्सपेंसिव इन फ्लाइट और उस इंजन का 100 करोड़ का है और उसकी लाइफ 8 साल ही है, तो अगर 20 साल से हम उसको ले लेंगे बॉडी के लाइफ से, तो फिर वी शैल लीड टू ए रॉन्ग कंक्लूजन। तो ऐसे एसेट जो हेवी कैपिटल आइटम के हों, इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू अब टरबाइन में ही लो आप, तो टरबाइन का आप रोटर ले लो और वो ले लो, स्टेटर ले लो सर, जो बॉडी है उसका, बॉडी तो 50 साल से ऊपर 100 साल चलेगा वो, लेकिन रोटर हैज विल नॉट गो बियॉन्ड 30-40 ईयर्स, 40 ईयर इट विल नॉट गो।
तो वो टरबाइन में भी रोटर और स्टेटर का परसेंटेज बड़ा ह्यूज है, तो वी हैव फ्रीडम टू डू दैट, है ना। So that is known as the component of a machine. If it has a very high value and different life of useful life, है ना, in that case you can adopt this componentization of asset. और ये क्या किया है, ये एग्जाम्पल एक दिया है आपको, ये दिया देखिए, ये ऐसे किया है एयरक्राफ्ट का। एयर फ्रेम बोलते हैं जिसमें आप बैठते हो, बॉडी को एयर फ्रेम बोलते हैं उसको। टोटल वैल्यू इस इक्विपमेंट का जो है 336 एक साथ 800 करोड़ है इस एयरक्राफ्ट का। मे बी A380 जो है, A444 कितना आता है आजकल, 400 समथिंग आ रहा है। तो वो 400 समथिंग वाला जो आ रहा है वो 800 करोड़ का एयरक्राफ्ट है। उसमें का रहा है बॉडी जो है सिर्फ 480 करोड़ का है, 480 करोड़ का, और इंजन जो है 256 करोड़ का है, और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो 64 करोड़ का है। ठीक है सर, तो टोटल 800 करोड़ का हुआ। इसकी लाइफ 20 साल ले लिया, इसकी लाइफ 8 साल ले लिया, इसकी लाइफ 5 साल ले लिया, और एक साल का डिप्रेशन कितना निकल गया, 688, 688। अब इस 688 को, सॉरी 68 करोड़ एक साल का डिप्रेशन निकला उसका। तो इस 68 करोड़ को आप जो है, जितना साल पुराना फ्लाइट है, परसेंटेज निकाल के 800 का वो निकाल के लगा दो, यू विल हैव ए करेक्ट वैल्यूएशन। 68 by 800, है ना, it will be somewhere around 8 to 9% per year. 68 by 800 will be somewhere 8% per year, है ना। ये 8% पर ईयर आप 800 करोड़ पे लगा दो, 5 साल पुराना फ्लाइट है, 40% माइनस कर दो, 60% वैल्यू उसकी बच जाएगी। तो दिस इज नोन एज कंपोनेंटाइजेशन ऑफ एसेट। क्लियर हो गया कंसेप्ट सर? क्लियर ना? यानी कि सर हर एक कंपोनेंट जो मेजर कंपोनेंट है उसको निकाल करके हाँ उसको अलग अलग से करके टोटल जो आता है दैट इज द पर ईयर डेप्रिसिएशन। पर ईयर डेप्रिसिएशन। अदरवाइज ऐसे करके ऐसे कैलकुलेट कर दो आप, ऐसे ही कैलकुलेट कर दो आप, इससे भी आगे 2 कॉलम ऐड करके आई कैन अराइव एट द फाइनल वैल्यू, है ना। तो यू हैव बोथ द ऑप्शन। तो कंपोनेंटाइजेशन शुड बी क्लियर नाउ टू यू, आई थिंक सो। यस सर। बस मेरे ख्याल से इन दोनों तीनों चीज़ों पे इतना ही था आपका मटेरियल। अब हम डेप्रिसिएशन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। बताइए सर। क्वेश्चन 1, फाइव परसेंट होना चाहिए। 5%। It should not be more than 5% of the original cost of the asset. ठीक है, दूसरा बताओ सर। यूजफुल लाइफ। Useful life, हाँ। बी। B. Yes, sir. थर्ड। बंद कर दो, एसी बंद कर दो, खुशी आवाज आ रही है, उधर चला लो। B. 50%, yes. And 100%. ये है 100% बी। बी। बी B. 50, 100. covered this, so it should not be wrong.
As per Company Act 2013, no extra shift depreciation is permitted for आई थिंक डी होना चाहिए। डी। प्रोसेस प्लांट नहीं, ए में क्या कंटिन्यूअस बोला? सी सर। वर्मा जी भी बहुत सही है, बिल्कुल वर्मा जी भी सही लाइन पे हैं। सती ए और डी ही आएगा सर। नहीं, आई विल गो विद वर्मा जी। कंटिन्यूअस प्रोसेस प्लांट हमेशा 3 शिफ्ट चलता है माय डियर फ्रेंड। बड़ा क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाइल आई वाज डिस्कसिंग यू टाइप ऑफ प्रोसेस। याद आया? Very first day we have understood this that continuous plant has to run all 3 shifts. पावर प्लांट कभी एक शिफ्ट चल सकता है सर? नहीं, बस हो गया, बात खत्म है सर। तो उस पर एक्स्ट्रा शिफ्ट के लिए कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। वर्मा जी इज करेक्ट। एनीवे, diminution in value of asset because of wear and tear is called depreciation. correct. छः का the method of क्या आएगा fill in the blanks में? Depreciation. Depreciation. Method of valuation. Valuation नहीं, depreciation selected affects the profit as well as the carrying value of assets. I think depreciation. Yeah, correct. Depreciation होना चाहिए सर। Depreciation is calculated Yearly, annually. Yearly. Schedule 2, B. 9. Block of asset, B. 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 Sorry? B. B. Raunak? Block of asset. Block of asset. Yeah, 10. Income tax act A. A. All is saying A. Huh? I am with C. Accounting, हाँ accounting sir, हाँ accounting मतलब companies act होता है। I am with C. So इसको देख लेते हैं correct answer से, don't worry. Depreciation figure reported for taxation purpose uses method of Taxation में income tax होगा सर। हाँ, sorry? Taxation है इसलिए income tax। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर। हाँ 12 नंबर पे आ जाओ सर। हाँ ये component B, componentization. Componentization. 13. Rated and actual A. Install capacity of the plant can be either based on its A. 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 rated or actual, huh? Yes. 14. License capacity. Installed. License installed capacity. दो व्यू आ रहा है सर। बर्मा साहब और राय साहब वेरी कर रहे हैं। रौनक इज साइलेंट एज यूजुअल। आई विल गो विद बर्मा जी सर, रौनक सर, सर राय साहब, है ना। इट इज ऑलवेज इंस्टॉल कैपेसिटी। मैन्युफैक्चरर तो वही कहता है कि इंस्टॉल कैपेसिटी पे चलाओ, आप ज़्यादा पे चलाते हो तो प्रॉब्लम है ना।
मैन्युफैक्चरर हमेशा इंस्टॉल कैपेसिटी गिराना चाहता है। मतलब कार के स्पीडोमीटर में आपका 150 का स्पीड है मैक्सिमम, आप उसको 160 पे चला दो तो क्या होगा सर? इंजन विल फेल। that is what is being said. Amount of product that a production facility actually produces as opposed to the amount that it could produce if it were to run at full theoretical capacity is known as Actual production. actual Yes. production. Correct. 16. पार्ट Part. Part A. Yes, sir. 17. A whole. नहीं, बिल्कुल होल फ्रैक्शन बिल्कुल गलत है। फ्रैक्शन होना चाहिए फ्रैक्शन हो सकता है। That is a good guess. 18. ये होल होगा। All machines whole. Valuing all machine and adding it up is a whole. Correct? A. 19 sir. अर्निंग इंक्रीजेस सर, Next. बिकॉज इसका म्यूचुअल फंड में भी ऐसे ही रहता है। FDR. हाँ, तो C sir, earning increases. 20 में आओ सर। ये ऑब्सोल्यूशंस में समझना है। ऑब्सोल्यूशंस 3 काइंड का होता है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं आपको। एक होता है टेक्निकल ऑब्सोल्यूशंस, दूसरा होता है फंक्शनल ऑब्सोल्यूशंस, तीसरा होता है इकोनॉमिक ऑब्सोल्यूशंस। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूं, देन यू रिप्लाई दिस क्वेश्चन। अभी होल्ड करो अपना रिप्लाई सर, पहले समझ लो। ओके, नाउ हाउ दिस थ्री आर डिफरेंट, what is technical obsolescence, what is functional obsolescence and what is economic obsolescence? 3 वर्ड है आपके पास। एनी गेस what is technical obsolescence? टेक्निकल मीन्स सर एनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी हैज मतलब मेड इट ऑब्सोलीट। सपोज सपोज 2G मोबाइल है, अभी 5G का आ गया, तो दैट टेक्नोलॉजी हैज मेड द प्रीवियस टेक्नोलॉजी कंपोनेंट ऑब्सोलीट। और फंक्शनल ऑब्सोलेशन क्या होगा सर? फंक्शनल मीन्स लाइक सर जैसे मल्टीमीटर हो गया, सपोज अब सब कुछ डिजिटल है तो फंक्शनली, लेकिन उसको फंक्शनलिटी इज नॉट रिक्वायर्ड, समथिंग लाइक दैट, कि दैट काइंड ऑफ नॉन डिजिटल जो होता था जब वोल्ट मीटर एमीटर इज नॉट रिक्वायर्ड। इकोनॉमिक तो क्लियर होगा आपको। इकोनॉमिक में बस टेक्निकल फंक्शनल हाँ, नहीं मुझे पता था, कंफ्यूज करोगे सर आप। इकोनॉमिक तो क्लियर है कि व्हेन इक्विपमेंट्स हैज लॉस्ट इट्स अर्निंग कैपेसिटी, it is not it cannot no more profit for you, right? यस, this is economic solutions, correct? प्रॉफिट उससे नहीं हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है उसको चलाने पे, स्पेयर मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक इज अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ अस। नाउ डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एंड फंक्शनल ऑब्सोल्यूशंस। फंक्शनल ऑब्सोल्यूशंस ये है कि टेक्नोलॉजी आज भी वैलिड है बट स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहे। अच्छा, ये सर टेक्निकल ऑब्सोल्यूशंस।
दिस इज फंक्शनल ऑब्सोलेसेंस। ओके। ठीक है। और जो आपने बोला वो सही है कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया और वो इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया, स्पेयर भी बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, आउट ऑफ डेट हो गया वो टेक्नोलॉजी। दैट इज टेक्निकल ऑब्सोलेसेंस। ठीक है। अब आप इसका जवाब दीजिए। I think sir economic obsolescence. क्योंकि डिमांड से रिलेटेड है तो इकोनॉमिक ऑब्सोलेसेंस होना चाहिए। दिस इज ए बिजनेस। ट्रेंड और फैशन भी बोल रहा है, ट्रेंड तो और फैशन इसमें भी चेंज हुआ है। टेक्निकल, इसमें भी टेक्निकल। Business specific economic. I think Ronak is on the correct answer. A. It should be A in my opinion. Anyway, we'll keep it A. और आप लोग इकोनॉमिक पे है ना, तो सी, ए और सी दोनों हाँ। रखते हैं। ए और सी। ए इज फॉर रौनक। चलो सर 21 पे आ जाओ। मटेरियल हैंडलिंग। यस, Efficient problem. बी। बी हाँ 22 का Management. आई थिंक डी होना चाहिए, लेस फ्लेक्सिबिलिटी। यस, डी। 23। डी सर। वी विल डू 25 बाद में भेज दूंगा, कर लेना आप लोग, है ना। ओके 25 सर। तक करते हैं, दो तीन सवाल और। D. रौनक जी, मैंने बड़ा अच्छा समझाया था ये कि लोएस्ट वैल्यू इज लिक्विडेशन वैल्यू। इसका कई बार मैंने डिस्कस किया है पॉइंट, है ना। लिक्विडेशन वैल्यू इज द लोएस्ट वैल्यू, है ना। Okay. गॉट इट ना। Yes sir. याद करो आप। तो इसका सी ले रहा हूँ No, मैं। no, right. Right. हाँ हाँ, करेक्ट योरसेल्फ। Liquidation. हाँ, वैल्यू ऑफ मोर एफिशिएंट लेआउट विल बी More. मोर। तो लेमैन भी जवाब दे देगा, ये इंजीनियर की जरूरत नहीं है इसके लिए। लास्ट 25वां क्वेश्चन करो सर। ये हमने बताया नहीं, इसलिए जो है Underutilization होगा ना sir. स्टैटिक इम्बैलेंस क्या है कि सपोज दैट हमारा ये वर्क पीस है, ये मूव कर रहा है, ठीक है ना। कि अभी इस पे टर्निंग होना है, इसके बाद इस पे ड्रिलिंग होना है, तो टर्निंग के बाद ड्रिलिंग पे ऑटोमेटिक चला गया वो, ठीक है ना। और स्टैटिक इम्बैलेंस है कि इसने पहले टर्निंग किया, तब तक वो वेट कर रहा है, राइट। और फिर आपने जाकर हाथ में उसको दिया कि भाई इस पे ड्रिलिंग कर दे, तो दिस इज स्टैटिक इम्बैलेंस। गॉट इट ना। दिस इज नॉन एज स्टैटिक इम्बैलेंस। तो ऑब्वियसली अंडर नहीं, हाँ राइट, यस। ऑफ मशीन्स, वर्क स्टेशन एंड पीपुल, तीनों का अंडर यूटिलाइजेशन होगा, है ना। तो 25 का सी। अब मैं आंसर बोलूंगा जो हम लोगों ने लिखा है, और जहाँ पे 25 ही क्वेश्चन ही थे सर, लोग पूरा ही कर डाला आपने। आप वहाँ देखना सर, जहाँ गलती होगा वो रोक देना मुझे। फर्स्ट का ए, सेकेंड का बी, थर्ड का बी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का आपने बोला बी, सिक्स का सी, सेवन का ए, एट का बी, नाइन बी, 10
ए और सी, इसमें कंफ्यूजन था। 10 का करेक्ट है सी, मैंने सी बोला था, आप लोगों ने ए बोला था सर। ले चलूं 10 पे फिर से? 10 फिर से भी हाँ इस बार 10 सर। मैंने टिक मार्क कर दिया। हाँ, 11 का ए, 12 का बी, 13 का ए, 14 का ए, 15 का बी, 16 का ए, 17 बी, 18 ए, 19 सी, 20 पे फिर कंफ्यूजन था ए और सी। रौनक ए, बाकी दोनों ने सी बोला। कौन सा करेक्ट है सर? सी। सी इज करेक्ट। सो रौनक प्लीज करेक्ट योरसेल्फ, मैंने भी आपको बोला था सी पे ही हूँ मैं। 21 का बी, 22 का डी, 23 का सी, 24 का सी, 25 का सी। सब सही है सर? सब सही है सर। सब सही है, सिर्फ 10वां 10, 16 और 20 एक बार। 10, 16 16 का बी है सर, आपने कुछ दूसरा बोला। 16 का बी है, ओके। 16 का, सो 10, 16 एंड 20, ये 3 क्वेश्चन विजिट करना है। यस ये आपका 10। 10 का कंपनीज एक्ट होना चाहिए। कंपनीज एक्ट था। मैं बार बार रिपीट किया हूँ, यस कंपनी की बैलेंस शीट कंपनी एक्ट के हिसाब से बनती है, और कंपनी की बैलेंस शीट सबसे पहले बन के जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को ही जाती है। लॉ है बना हुआ कि कंपनी हैज टू सबमिट इट्स बैलेंस शीट बाय 30 जून। 30 जून तक नहीं जाती है तो उनको फाइन होती है, ठीक है ना सर, एज पर कंपनी एक्ट। मैंने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी वांट टू इंश्योर कि ये कंपनी अभी वायबल है, ये लोगों का पैसा लेके भागेगी नहीं, व्हाट इज नहीं, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज हैं बहुत सारे, तो वो क्या है कि वो कंपनी लॉ नीड टू एक्ट इफ कंपनी इज ट्राइंग टू फ्लाई अवे। रोज होती है कहानी ऐसी सर, इसके लिए कंपनीज एक्ट के हिसाब से बैलेंस शीट बनता है, ठीक है ना। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से वो दूसरी बैलेंस शीट भी कंपनी वाले बनाते हैं, जो सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट को जमा करते हैं। बस एसेट रजिस्टर, बाकी जगह उनका इनकम टैक्स आता नहीं है कहीं। तो कंपनीज एक्ट सही है सर, ये तो 10वां तो हो गया। नाउ नेक्स्ट इज 16। Portion of whole business physically separated from whole or independent of whole is known as। 16 का आंसर हमने दिया था ए और बी, दोनों आंसर है सर आप लोगों का। ए कुछ ने सर बी पार्ट सही बोला है। था, बी सही है, फ्रैक्शन, मैंने फ्रैक्शन पे किया था। और 20 नंबर है, 20। When there is a definite change in trend of fashion, वही वाला क्वेश्चन है, affecting demand of product, better management cannot reverse। The answer, correct answer was सी। C. C is economic obsolescence। A नहीं सही है सर, बिजनेस स्पेसिफिक इकोनॉमिक वैल्यू नहीं सही है, दिस इज इकोनॉमिक ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। ये हो गया सर अबाउट डिप्रिसिएशन। आई थिंक योर कंफ्यूजन आर क्लियर नाउ अबाउट डिप्रिसिएशन। So I stop sharing this and हमारा जैसे वैल्यूएशन का जैसे रहता है तो उसमें तो मोटा मोटी कंपनीज एक्ट के थ्रू जैसे मेथड बनाया गया है वैसे ही हम करते हैं बेसिकली। डिप्रिसिएशन मतलब डीआरसी निकालने के लिए हम निकालते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू, वहाँ से सैल्वेज वैल्यू के माइनस से फिर हमको मिल जाता है। एनी अदर मेथड आल्सो लाइक ओनली दिस इज यूज्ड? दिस इज, एक तो मार्केट से आपने कोटेशन मंगवा लिया, दूसरा इंडेक्सेशन मेथड बताया ना सर। हाँ इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन मेथड है, इंडेक्सेशन मेथड पे भी एक केस स्टडी किया आपने, हाँ हाँ इंडेक्स दिया हुआ था यस 14 का, 16 का और 18 का, है ना। यस एंड कॉस्ट अप्रोच में तो यही दो मेथड है सर, ओके। कॉस्ट अप्रोच में तो यही दो मेथड है, बाकी के लिए आपको जाना पड़ेगा मार्केट अप्रोच और डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच फॉर कैश रिच कंपनी, नॉट फॉर ऑल। These are generally adopted for non-manufacturing companies. मार्केट अप्रोच और जो वो इनकम अप्रोच है ना, वो उस पे नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे लगता है। क्योंकि जैसे मैंने देखा है जैसे सोलार में सोलार का जो प्लांट होते हैं, मतलब मैं जैसे कस्टमर को भी प्रेजेंट करता था तो हम लोग दिखाते थे कि 25 साल तक आपको कितनी इनकम होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर अर्निंग। तो मान लीजिए प्लांट लगाने के बाद सपोज 3 साल बाद वो किसी और को बेच रहा है वो प्लांट,
तो वो ये शो करते थे कि जैसे हमने ये प्लांट 2 साल पहले लगाया, तो आगे 23 साल में 24 साल में हम कितना इसका इनकम पोटेंशियल है। तो उस हिसाब से आई थिंक इनकम अप्रोच विल बी द मोस्ट सूटेड, राइट, इन दैट काइंड ऑफ। करेक्ट। लेकिन वो आपका एज ए सेलर, योर प्रोजेक्शन कैन नॉट बी रिलाइड. हाँ, नो यस। I would like to refer to a actual solar plant balance sheet for past 10 years, and the kind of projection you are giving me is supported by that, is comparable on a scale, and it stands the test of the time. So then I can rely on your data, but otherwise seller's data should not be relied upon for valuation. हम तो अच्छा पिक्चर दिखाते हैं। वही मैंने कहा, तो आपका as a valuer I will not rely on your basic input. I'll check it with some manufacturer's balance sheet, financials. Well, sir, so we are done with this part also. So now we have 3 things left. Almost it is 3:40 is done. So you want me to do first balance case study, which we left, and move to other topics, or you want me to shift to process of valuation, or you want me to shift to law, plant and machinery? Choice is yours. What excites you? First cover that. सर प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन वर्क करा दीजिए। Process of valuation you want to attend to. ठीक है सर। मैंने कहा कि ये किया हुआ है, इसलिए ये बिल्कुल आपको रन थ्रू ही होगा। इसमें सर क्या चेकलिस्ट टाइप का कुछ होता है? मैं आई एम कमिंग टू दैट, वही सब क्लियर हो जाएगा सर। गलत जगह पहुंच गए सर। आई डोंट नो, प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन पार्ट खुल ही नहीं रहा है सर इस पे। तो व्हाट आई डू, आई हाँ खुल गया। यस, पावर पॉइंट का एक ही स्क्रीन दिखता है, दैट इज द प्रॉब्लम, है ना। तो इसमें जो आपका चेकलिस्ट फॉर वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डॉक्यूमेंट्स टू बी स्टडीड प्रायर टू प्लांट विजिट, इंस्पेक्शन, एबीसी एनालिसिस। मैंने कहा कुछ नया चीज़ नहीं दिखेगा इसमें आपको, सब आपको डिस्कस किया हुआ है हमने। बस क्रिस्टलाइज थॉट की प्रोसेस सिंक्रोनाइज्ड वे में कैसे होगा इन ए सिक्वेंशियल मैनर, दैट इज व्हाट। तो प्लांट विजिट के पहले कहता है कि आप क्या क्या कागज़ स्टडी कर लो, क्या क्या मिनिमम स्टडी कर लो, देन विजिट, इंस्पेक्शन एंड एबीसी एनालिसिस क्या है, हाउ टू डू दैट। आइटम्स टू बी ट्रीटेड एज प्लांट एंड मशीनरी, ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। सिविल स्ट्रक्चर टू बी ट्रीटेड एज प्लांट एंड मशीनरी, करेक्ट ना, ऑलरेडी आप समझ चुके हैं। आइटम्स टू बी ट्रीटेड एज लैंड एंड बिल्डिंग, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। फिजिकल वेरिफिकेशन, सर्वे एंड इंस्पेक्शन, सर्वे के दौरान क्या करना है, डाटा कलेक्शन एंड वैल्यूएशन एनालिसिस फॉर रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू मेथड, कॉस्ट अप्रोच, ठीक है सर। तो कहता है वी आर डीलिंग विद वाइड रेंज ऑफ एसेट फ्रॉम बाइसिकल टू क्रूड टैंकर्स, है ना, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कन्वर्जन प्रोसेस, different business models, right? Same asset will have different approach in different condition. Asset plus Y decide the way to value. So
factors to consider in valuation: a specific utility or usefulness of an asset, boiler used differently in different industries. ठीक है सर? तो बॉयलर का यूज जो है, बॉयलर इज मतलब क्या बोलते हैं, इंडिस्पेंसिबल इन केस ऑफ पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, है ना, बट बॉयलर इज नॉट वेरी डिजायरेबल इन केस ऑफ आई मीन टू से जहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस, कोल्ड स्टोरेज, कहीं बॉयलर का यूज ही नहीं है वहाँ पर, कंडेंसर का यूज जरूर करते हैं वो, ठीक है सर? तो लाइक दैट जो है, each asset has a different contribution in process and profitability. Potential of these assets will be different in different situations. Market condition will change the value. Use and maintenance standards, legal provisions, accounting norms, ownership, lease और outright ownership, वो भी वैल्यू को अफेक्ट करता है। चेकलिस्ट में कहता है आपके पास होना चाहिए ये सारी चीजें, डॉक्यूमेंट्स, फिक्स एसेट रजिस्टर, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज फिक्स एसेट रजिस्टर, and this you must have before visit to the plant. This is a must document and first document to start. वो वही आपको पूरे प्लांट के बारे में आइडिया दे देगा। प्लांट लेआउट रिक्वायर्ड एज पर फैक्ट्री एक्ट, बैलेंस शीट फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स, बैलेंस शीट आई मेंशन टू यू इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू यू बिकॉज दैट गिव्स यू अबाउट प्लांट, है ना, ये सब डॉक्यूमेंट है जो आपको लेना है क्लाइंट से। परचेज डॉक्यूमेंट, पीओ, इंस्टॉलेशन रिपोर्ट्स, maintenance documents, breakdown, preventive, capital repairs, process flow diagram decides the criticality of the asset, production reports, obviously efficiency of plant क्या रहा, बताया था ना वो रिपोर्ट में कि एक चीज़ कैप्चर करनी है आपको। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, व्हाई दिस एसेट वाज रिक्वायर्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्टेड होती है, जो आपने बताया सोलर पावर प्लांट बताते थे कि अगले 25 साल तक तुम्हारा ये रेवेन्यू रहेगा, तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट से आइडिया मिलता है कि प्रोजेक्ट क्या किया गया, एक्चुअली क्या हो रहा है। इफ दैट विल गिव यू हेल्प टू लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, प्रोमोटर्स, नॉट नेसेसरी दो, प्रोमोटर से अगर मुकेश अंबानी का नाम आता है तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि ये प्लान वैसे ठीक है, यहाँ ज़्यादा ब्ला ब्ला नहीं है ना, तो लाइक दैट जो है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड प्रोमोटर्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। स्टेप्स इन वैल्यूएशन प्रोसेस सेज कि आपका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, यू हैव टू डिसाइड कि हम मार्केट अप्रोच में जा रहे हैं कि यू हैव टू स्टेट द, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैं किसी 500 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट का कर रहा हूँ वैल्यूएशन, जो 90 विंटेज का है, ठीक है सर, तो 90 विंटेज का 500 मेगावाट का प्लांट है, तो आज के पावर प्लांट के कॉस्ट से जाएं थर्मल पावर प्लांट के कॉस्ट से, तो समवेयर टुडे कॉस्ट इज अराउंड 5 करोड़ पर मेगावाट, ये लेमन फॉर्मूला वाला जो है। जैसे आप सोलर पावर प्लांट की बात कर रहे थे तो उसका भी एक डिसाइडेड अमाउंट है कि 8 करोड़ पर मेगावाट, 9 करोड़ पर मेगावाट, समथिंग लाइक दैट नंबर इज, if you are in touch with the industry you will know this, है ना, you will know this, so that is being stated that from where you are coming to that primary idea of valuation कि आपके पास क्या क्या टर्म्स ऑफ डिफरेंस है। दिस इज वन वे कि आज अगर एक 800 मेगावाट का एक प्लांट लग रहा है तो उसका हम वैल्यू ले लेंगे, आज अगर कहीं लग रहा है तो क्या वैल्यू पड़ा आपको, वहाँ से आ गया मेरे पास इनपुट, 800 मेगावाट को डाउन साइज कर दिया 500 मेगावाट के हिसाब से आज की तारीख में, आई विल बी एबल टू कैलकुलेट इट, so that term of reference has to be quoted कि Mr. XYZ company is putting a 800 megawatt plant on which the total cost till production in the month of March 2020 came, suppose that 8 crore per megawatt, ठीक है ना, 5 crore per megawatt, so I am also taking for 500 megawatt 5 crore per megawatt, so estimated value is 2500 crore for building plant and machinery and land and everything, ठीक है सर। स्ट्रेटजी ऑफ वैल्यूएशन, फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे किया आपने, यू हैव टू राइट रिकंसिलिएशन, जो फिजिकल वेरिफिकेशन किया और फिक्स एसेट रजिस्टर जो आपको मिला है उन दोनों में रिकंसिलिएशन करेंगे आप, मीन्स मैच करेंगे, कहीं डिफरेंस तो नहीं है, अगर है तो एनालिसिस रिपोर्ट में वो आएगी आपकी, वो आने के बाद डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, देन यू विल प्रिपेयर रिपोर्ट, acceptance of report by the reader, so these are the steps involved। चेकलिस्ट फॉर प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूएशन में क्या होगा, वर्क ऑर्डर आपको मिलना चाहिए, वर्क ऑर्डर में लिखा होगा व्हाट इज टू बी वैल्यूड, व्हाई इट इज टू बी वैल्यूड,
where it is to be valued, ex situ in situ करना है ना, that you need to know for whom it is to be valued, fee for valuation, आपको पैसा क्या देंगे, और डेट ऑफ वैल्यूएशन, किस डेट पे उनको वैल्यू चाहिए। ये वर्क ऑर्डर में इतनी चीज़ें जो आपको मिलेगा वर्क ऑर्डर, उसमें इतनी चीज़ें होनी चाहिए सर लिखा हुआ, तो ये सारे एस्पेक्ट आपको रिपोर्ट में कवर करना है, ठीक ना। तो एबीसी एनालिसिस ऑलरेडी हमने बोल दिया आपको, नंबर ऑफ एसेट इज़ वेरी हाई, नॉट पॉसिबल टू वेरीफाई ऑल, तो इसलिए एबीसी एनालिसिस आपको करना पड़ता है। 1 लाख एसेट है, 2 लाख एसेट है, नंबर ऑफ आइटम्स मशीन्स, तो आप नहीं कर पाएंगे हर मशीन का, इसलिए एबीसी एनालिसिस करना पड़ता है। ये एबीसी एनालिसिस के फाउंडर हैं ये मिस्टर परेटो, है ना। ये 80-20 रूल कहलाता है, ये नीचे जो है ना 80-20 रूल, 80-20 रूल कहलाता है। ये प्रोफेसर है सिविल इंजीनियरिंग, टर्न्ड इकोनॉमिक्स, फाइनली प्रोफेसर इन स्विट्जरलैंड। 80-20 रूल है वो। 80-20 मीन सेज ए कैटेगरी इज 70 to 80%, है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 80% वैल्यू, एक्सप्लेन किया था मॉर्निंग मैंने आपको, और क्वांटिटी जो होगा 20 से 25% ही होगा। अगर 2 लाख इक्विपमेंट है तो यू कम डाउन टू 40,000 एसेट्स ओनली, ठीक है ना। बी कैटेगरी जो है वैल्यू वाइज होगा 10 to 15%, बट क्वांटिटी होगा उसका 25 से 40%, ठीक है सर। और सी कैटेगरी में आता है 5 से 15%, और वैल्यू उसका होगा 50 से 70%। आधी एसेट तो सी कैटेगरी में चली जाती है, मिनिमम 70% तक भी जाता है वो नंबर, और 30% में ही रह जाता है आपका ए बी कैटेगरी। वेरी we see that very low few items have large value, largest number of items have a small value, ठीक है ना सर। practically also 1 to 5 machines measure value, large number of smaller assets low value। तो आप इसमें से मार्क कर लो कि ए कैटेगरी का हम इतना आइटम करेंगे, 10 आइटम, बी कैटेगरी का हम 5 आइटम करेंगे, और सी कैटेगरी का हम 3 आइटम करेंगे, ठीक है। ये इतना कर लिया रैंडमली आपने तो यू आर सक्सेसफुल। दिस इज एबीसी एनालिसिस। व्हाट टू डू, make the ABC analysis from the fixed asset register, do 100% inspection of A, do at least 40% inspection of B, do about 10% inspection of C। ये गाइडलाइन है वैल्यूएशन का, ठीक है सर। mention the same in your report, efforts and attention where there is value, no need to put too much effort where the value is low, ठीक है सर। terms of reference, who has asked to do valuation, why the valuation is required, date of valuation, treatment of terms, लीज इक्विपमेंट है तो उसमें मेंशन करना पड़ेगा आपको कि इट इज फाइनेंशियल लीज और ऑपरेशनल लीज, so this asset can be shown in the register of fixed asset register of the user। हायर परचेज है या हेल्ड इन ट्रस्ट है, जिग्स डाइज इंस्ट्रूमेंट पाइपिंग एटीसी स्पेशल एसेट है। एजम्पशंस जो आप ले रहे हैं, डिस्क्लेमर एंड कैविएट रिपोर्ट में आना ही है। ये रिपोर्ट राइटिंग के टाइम पे ऑल पैरामीटर्स हैव बीन डिस्कस्ड। स्ट्रेटजी फॉर ऑफ वैल्यूएशन, फॉर वेरिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन देखेंगे, मॉडल देखेंगे, मेक देखेंगे, क्लाइंट एसेट नंबर देखेंगे, यूनिक नंबर देखेंगे, डेट ऑफ परचेज, इंस्टॉलेशन, उस पर ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इस लैपटॉप पे भी लिखा हुआ है सर, नहीं तो जो एसेट रजिस्टर में लिखा है 2000 तो यहाँ 2000 है मशीन पे प्रिंटेड कि नहीं, विल चेक दैट, है ना। मेजर अपग्रेड, कैपिटल रिपेयर आफ्टर इंस्टॉलेशन, वो भी देखेंगे, अगर कैपिटल है तो उस पर डिप्रिसिएशन वहाँ से ही लगेगा। type of total energy requirement, environmental condition, dusty, clean, etc, records, production, operator name, maintenance, accessories available or not। spare part availability is very important। कि अगर मान लीजिए टरबाइन 5 है हमारे पास, उसका हमने एक रोटर रखा हुआ है तो डाउन टाइम विल बी वेरी लो, व्हाट इज ना। ये अगर हम रोटर ऑर्डर करेंगे तो बीएचईएल बोलेगा बना के 6 महीने बाद देंगे, 6 महीने बाद दैट यूनिट विल बी डाउन। तो स्पेयर पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आइटम्स टू बी ट्रीटेड एज प्लांट एंड मशीनरी, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, है ना। ऑलरेडी यू हैव डिस्कस दिस, है ना, कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, चिमनी ऑफ बॉयलर, है ना। और बाकी ये तो कह ही रहे हैं, ऑल मैकेनिकल मशीन, ऑल इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, ऑल लैपटॉप प्रिंटर, ऑल सिविल फाउंडेशंस ऑफ मशीन, ईटीपी, केमिकल प्लांट, ऑटोमोबाइल्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, बॉयलर, चिमनी ऑफ बॉयलर, furniture for use of machine, conveyors, everything is plant and machinery।
एटीपी सर, सॉरी, हाँ या वर्मा जी एटीपी, बताएं। एटीपी, ईटीपी था ना, हाँ एटीपी फुल फॉर्म बताइए ना सर एक बार। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, अच्छा ओके। राइट सर। Then items under land and building, all building, boundary wall, tube well, road, है ना, पार्टीशंस ऑफ एल्यूमिनियम, ग्लास, पार्टीशन भी ऑफिस में लगे होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, आजकल ग्लास वगैरह यूज करते हैं। फर्नीचर सम टाइप यूज इन ऑफिस, मेन गेट, इन्वेंट्री ऑफ कंस्ट्रक्शन आइटम्स, है ना, सीमेंट और ये सरिया वगैरह रखे हुए हैं तो वो भी बिल्डिंग के वैल्यू में ही जाएगा। वेरिफिकेशन डिटेल्स, फिक्स एसेट रजिस्टर, डाटा कंप्लीट और नॉट, एसेट अवेलेबल बट नॉट इन एफएआर। कुछ ऐसे एसेट भी मिलेंगे जो फिक्स एसेट रजिस्टर में नहीं है, बताया ना, कॉन्ट्रैक्टर के इक्विपमेंट सब होते हैं, बिल्डर के हो सकते हैं। एसेट्स नॉट अवेलेबल बट इन एफएआर, डिफरेंट एसेट अवेलेबल एज इन एफएआर। एफएआर में एक्स लिखा हुआ है, वहां पे वाई, दैट इज डिफरेंट। माइक्रो में बोलता है लाइन ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इज बीइंग प्रोड्यूस, टाइप ऑफ प्रोसेसेस, यूज टू मैन्युफैक्चर, इंस्टॉल कैपेसिटी एंड यूज्ड। ये सब डिटेल माइक्रो जो बताया था, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट। टू नोट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, कंडीशन ऑफ एसेट बताया था, ये 7 कैटेगरी में डिवाइड कर दो, न्यू, ठीक है सर, और ये जो न्यू एंड सब स्टैंडर्ड। वर्किंग इन्वायरमेंट, क्लीन, ह्यूमिड, नॉइजी, डर्टी, अगर कुछ ऑब्जर्व करते हैं तो डालिए, बिकॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का इफेक्ट भी आता है वैल्यूएशन पे, राइट ना सर, वो हुआ होगा इन्वायरमेंटल aspects of valuation. Usage pattern, number of shifts, very important from depreciation point of view. Operator is skilled, dedicated, or any one. Maintenance record, plant maintenance record, operation manual, maintenance manuals, inventories with the asset, attachment, inspection, setting fixtures. ये सब शुरू में जब आप करेंगे वैल्यूएशन जरूरत पड़ेगी, बाद में धीरे धीरे आप कस्टमाइज हो जाएंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, फिर शुरू में करेंगे तो चाहिए होगा आपको। डेटा कलेक्शन फॉर रिप्लेस कॉस्ट ड्यू, वो कोटेशन की कॉपी, फॉर सेल्स कंपैरिजन और मार्केट अप्रोच, फॉर इनकम अप्रोच और कैपिटलाइजेशन, तो वो मतलब अलग अलग के सिचुएशन के लिए अलग अलग करेंगे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ड्यू में क्या चाहिए, सिमिलर मशीन का कोटेशन चाहिए, सिमिलर एज का कोटेशन चाहिए, सिमिलर कैपेसिटी का चाहिए, सिमिलर प्रोडक्टिविटी का चाहिए। यूजुअली दैट इज नॉट पॉसिबल, वी गेट बेटर मशीन, मोर प्रोडक्टिव, बेटर कैपेसिटी, सब बात हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है सर। फैक्टराइजेशन में ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको, नहीं, इतना परसेंटेज बेटरमेंट है तो वैल्यू विल बी 2.1 लाख, सेम केस इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। की स्टेप्स इन रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू, calculate the cost that would be incurred to create or get an asset giving equal utility. Yes, sir. Determine if there is any depreciation related to physical and external obsolescence with the asset. Deduct the total depreciation from the total cost of the new asset and arrive at a value, that is DRC. Reproduction cost न्यू निकालना है, calculate all the costs that will be incurred to create an asset replica of the subject asset, right? वहाँ पे क्या था, सेम यूटिलिटी का एक एसेट क्रिएट करना है, यही डिफरेंस था दोनों में, है ना। यहाँ पे क्या है, रेप्लिका ऑफ द एसेट क्रिएट करने के लिए क्या कॉस्ट आएगा। ये हमारा 245 मॉडल है, एचपी को बोलेंगे 245 बना के दो मुझे, और ना उसको दो ही काम करना है, इसी लाइन पे बना देगा, सिर्फ हार्ड डिस्क एक लगा देगा 500 GB का, ठीक है सर, और एक लगा देगा वो मदरबोर्ड लगा देगा 2 GB का, सॉरी रैम, और इसके ऊपर M265 की जगह M245 का वो लगा देगा स्टिकर, हो गया बात, रेप्लिका बना दिया उन्होंने मेरे लिए। बट ये काम करने के लिए वो मेरे से इस इक्विपमेंट का कॉस्ट 1 लाख रुपए ले जाएगा। इफ आई एम विलिंग टू पे फाइन, आई गिव मी so this is reproduction cost new. Determine if there is any depreciation related to physical functional, same thing, deduct the total depreciation from the and arrive at a cost. So this friends finish your I think this part also, and now we will what we do that ये करो सर, ये इंटरेस्टिंग है।
पहले इसका क्वेश्चन कर लें क्या, प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन का, या पहले केस स्टडी जो एक्चुअली आया था वो करेंगे? बताइए, चॉइस इज योर्स। सर केस स्टडी में वो यूज हुआ है क्या, DCF? है क्वेश्चन, बट यूज हुआ है उसमें यूज हुआ है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। आई हाँ। अंडरस्टैंड जो आप कहना चाह रहे हैं। तो उसमें वही कर लें क्या पहले? ये देखो सर, ये लाइव केस है। अच्छा, दिस इज, ये अभी आया था क्या सर, ये जो अभी बोल रहे थे? मैं लिखा ना, केस स्टडी एग्जाम 13 हाँ 8 हाँ 2020, ओके। और मैंने मोबाइल से फोटो लिया था, आई कैन शो यू दैट फोटो। क्वेश्चन लिया था, ये उसको मैंने वर्ड में डाल दिया उठा के, तो उसे पढ़ने में नहीं आ रहा था ना, उस दिन दिखाया था आपको मैंने। इसको करो सर। मोबाइल अलाउड है क्या सर एग्जाम हॉल में? नहीं सर, चोरी से ले जाते हैं। अच्छा अच्छा। बिल्कुल जबरदस्ती रखवा लेगा, हम कहते हैं मोबाइल में रखता ही नहीं हूँ, मैं ये बोल देता हूँ, सर्च नहीं करता है वो, है ना। ये एक्चुअल लाइव केस है, ये आया हुआ था। ये सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन था, पहला वाला जो है ना, सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन था। $29 लाख। 29 आ रहा है सर, 29 आ रहा है सर। बराबर सर, 29। करेक्ट आंसर। करेक्ट सर। ठीक है सर। ये जो कर रहे हैं ना, डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे आया था हाँ। क्वेश्चन, ये आया था। बट इसका क्वेश्चन अनफॉर्चुनेटली हम कॉपी नहीं कर पाए, बट दिस वाज द केस ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अभी आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो मैंने बताया नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को करने की उम्मीद नहीं करता हूँ। थर्ड जरूर करो सर, थर्ड आया हुआ था ये, इसके सारे क्वेश्चन भी मैंने कॉपी कर लिए हैं, ये आप करो। अब आप देखिए 20 से भी ऊपर का क्वेश्चन था इस बार, इसमें 4 क्वेश्चन थे, 4 दूनी 8, और वो पहला वाला 2 10, और इसमें कैश फ्लो वाले में 4 क्वेश्चन थे, 18 2 20 20 ही के थे, 20 ही के थे सर। ये 3 क्वेश्चन आए थे लाइव।